चलो बच्चों, आज हम लोग आपका जो नीट का 24 का जो एग्जाम हुई है उसकी फीस की सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको सबको अच्छा गया होगा कि ये पेपर तो मोस्ट प्रॉब्ली मॉडरेट टाइप का ही था, आपको भी मॉडरेट लगा होगा। तो हम लोग अभी प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन भेजेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आप चेक कर लो अपना अपना स्कोर, देन हमें सबको भेजो कि आपका कितना कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट। ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रीड नहीं कर रहा हूं, आपको दिख रहा है तो आने से टाइम वेस्ट नहीं करते। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको फॉर्मूला क्या चाहिए था? फॉर्मूला बी जो चाहिए था, दैट हैज टू बी इक्वल टू n टाइम्स म्यू नॉट I upon 2r, right? That is the required formula. Because mu naught I upon 2r is the magnetic field inside the center for a single loop. I have n number of turns. So this is the final formula. Now all the data given, right? n मुझे given है कितना 100, mu naught already given है 4 pi 10 minus 7, I 7 ampere and r radius कितनी है 10 centimeters. We put all the value, ultimately जो आएगी is coming to be 4.4 millitesla. That means option 1 is correct. Okay. Now we'll go to the next question. This is basically थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब मेमोरी बेस्ड है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, आपको पता होना चाहिए। देखो डायमैग्नेटिक, एक्चुअली यहाँ पे आंसर देखो, पहले डायमैग्नेटिक जो है उसके लिए कितना होना चाहिए आपको पता होगा शायद। डायमैग्नेटिक के लिए होना चाहिए था, पता होगा, थोड़ा आइडिया दो। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है 2 जो है, ये 2 कौन सी है? ये वाली पार्ट है, राइट? मतलब -1 से 0 का अंदर होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक आपको बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए था। तो देखो क्या बोल रहा है, ऑब्वियस ये होना चाहिए। देखो 3 परफेक्ट। देन आप बोल रहे हैं पैरामैग्नेटिक, देन इसके लिए आपको ये वाली पार्ट आएगी, ये जस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव क्वांटिटी। नॉन मैग्नेटिक 0। तो दैट मींस अगेन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। दिस इज आपको एनसीईआरटी पर कोई भी आपका जो बुक्स है उसमें देख लो, प्रॉपर डेटा को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This question came from thermodynamics, right? It's a very simple question. So यहाँ पे PV graph given है, and they are saying that work done by the gas on the path BC, this BC, right? Now in the BC आपको देख रहा है volume constant है, right? So the volume is constant. We know that dW is equal to होता है P times dV. Now since my volume is constant, it has to be always 0. That's why आपके third option is the correct one, right? Very simple. Next, again this is a actually theory based question, मतलब आपको पता होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं, पोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पे आपके आ रही है ऐसे। Now it will be reflected back like this and it will be refracted like this. Now obvious बात है, यहाँ पे क्या बोल रहे, देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, both the reflected and refracted light will be completely polarized. No, आपको पता ही है, theory based है। The reflected light will be completely polarized. Yes, ये correct है। But the refracted light will be partially polarized. ये भी correct है। That means option 2 is correct. Again, this is again memory based question. Nothing to explain. आपको पता है ये law कैसे होती है, right? Next question. This question. Again, it's a very simple question. For an ideal transformer, we know that Vs divided by Vp has to be same as Ns divided by Np, which is same as Ip divided by Is, right? Now they are giving Np upon Ns is half, so they are saying that Vs upon Vp will be how much? That is Vs divided by Vp will be how much? 2 upon 1, that is 2:1, right? So option 4 is the correct one. Very simple question, just check the solution. Next question. This is actually from logic gate, right? Now this question again very simple questions है, unnecessary आप फॉर्मूला यूज मत करने जाओ। देखो बेटा, ऑब्जर्व इट। देखो यहाँ पे b जो है ये 0 है, y आपका 1 1 0 0 1 1 0,
That means whatever value I am getting here in V, Y is coming reciprocal of that. Finally, Y has to be how much? It will be nothing but V bar, right? See, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. That means, of course, this will be correct one. Right? Next question. Vernier calipers. If you remember that least count is also known as Vernier constant, right? तो होता क्या है? That is nothing but आएगी 1 MHD minus 1 VSD, right? 1 main scale division minus 1 Vernier scale division, right? Now they're saying that n plus 1, see here given as n plus 1, VSD is same as n MSD. That is 1 VSD is same as n divided by n plus 1 MSD, right? Now that means least count or Vernier constant will be how much? 1 minus n divided by n plus 1 into, see they are given already that 1 MSD is how much? 0.1 mm. So into 0.1 mm. That is coming to be 1 divided by n plus 1 into 0.1 mm. Now they're saying get the value in terms of centimeter. So it's same as this, right? Okay, clear with that? This is very simple question, but basic questions. Now next question. The maximum elongation of a steel wire and all the big level questions. Both easy questions hai. We already know that Young modulus Y is equal to how much? F upon A divided by delta L upon L, right? They are saying maximum elongation. That means delta L upon L has to be equal to F divided by AY. That implies delta L is equal to F into L divided by A into Y. Now, naturally, delta will be maximum when F is maximum. Now, they are giving these. See, read the questions. Elastic limit of steel is how much? 8 into 10 to the 8. So, put the value here. So, it's 8 into, Newton per meter square actually, right? So, F by A given here, right? So, 8 into 10 to the power 8. Length is how much? 1 meter. Divided by young modulus is how much? 2 into 10 to the power 11. Right? So this coming to this will cancel out 4. It's coming to be 4 into 10 to the power minus 3. There is nothing but actually meter में आ जाएगी. There is nothing but आएगी 4 mm. So again 4 mm. Okay, option 3 is correct. Clear? Next question. This is again a very simple question. See, we already know that whole system will move with some acceleration A, right? So you can say that A is equal to how much? Net pulling force, that is F, divided by net mass, that is M plus M. Now, net force given is 10. Net mass, that is 2 plus 3. That is 2 meter per second square, right? So you got the acceleration. Now they are saying that the block B है उसपे force कितना लग रही है, right? So block B is also going with some acceleration A, and this is the end they're talking about. So this end has to be got how much? Mass of block B, that is 3 into acceleration. Acceleration how much? 2. That is 6 Newton. 6 Newton. Yes, option 1 is correct. Clear? Next question. If the monochromatic source in Young double-slit experiment is replaced by white light consists of 7 different colors, right? 7 different frequencies actually. So naturally, after the Young double-slit experiment you see, if you remember that,
let's say this is S1, this is S2, right? आपकी यहां पे आता था सेंट्रल मैक्सिमा, राइट, जहां पे डेल्टा एक्स इज 0। तभी कोई भी फ्रीक्वेंसी हो जाए सबके लिए ये वाली पोजीशन डेल्टा एक्स 0 हो जाएगी। दैट मींस हर कलर की यहां पे मैक्सिमा फॉर्म होएगी, राइट। बट देन सिंस माय फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर 7 डिफरेंट कलर्स, तो अलग अलग मैक्सिमा आता रहेगी। दैट मींस देखो बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देयर विल बी central bright fringes, perfect, surrounded by a few colored fringes. Why colored fringes? Because for different lambda, see for maxima, you know that formula. What is the formula? Or beta will be how much? Beta equals the d lambda upon small d, right? Now lambda for different colors will be different, so I have different position पे अलग अलग maxima for अलग अलग colors, but center maxima same रहेगा आएगी। That means option 1 is correct. This clear beta everybody? Next question. The graph which shows the variation of this. Okay. Now we already know that momentum P or lambda is equal to, just a minute, remember? The formula, de Broglie's equations. होता क्या है? Lambda is equal to H upon P, right? Now P is how much? I can say that 2 times M into E root of this. Of course, while E is P squared upon 2M. The implies I can say that lambda ka square is proportional to 1 upon E. Implies I can say that 1 by lambda ka square is proportional to E, implies straight line, right? So 1 by lambda square versus E graph should be straight line, okay? So option 2 is correct. Clear everybody? Next. What is the equivalent capacitance between terminal A and B? Now देखो बेटा यहाँ पे this by this is 1, this by this is also 1. That means this is a balanced twist-on bridge, right? So the balanced twist-on bridge, that means this will cancel out, this will be not there. So that you can say this is nothing but this like this only. This is 2, this is also 2, this is also 2, this is also 2. So these two are in series, that is 1. Then you can say this is equivalent to 1 and 1 in parallel, right? 1 and 1. That is C effective will be how much? 2 microfarad. For the answer given, 2 microfarad, option 3. Perfect. Clear? Next question. Now, in the above diagram, a strong bar magnet is moving towards solenoid 2. This is solenoid 2 from solenoid 1. The direction of induced current in solenoid 1 and that in solenoid 2. मतलब ये बाहर की तरफ इस तरफ जा रहा है, एक्चुअली ये जो सोलेनॉइड है, दिस सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक दिस, इट विल अपोज ना, तो अपोज करना मतलब यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, राइट? फॉर सोलेनॉइड नंबर 1 आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस शुड बिहेव लाइक दिस, बिकॉज़ इसको अपोज करना चाहिए, मतलब आपको खींचना चाहिए, राइट? नाउ दैट मींस इफ यू नो दैट, if you know that any loop is equivalent to a bar magnet, right? Now this is north, this is south, that means what is happening? Current is flowing like this. Current is flowing like this. तो देखो बेटा, जब बोल रहे फ्लोइंग लाइक दिस, तब यहाँ पे करंट अंदर जाएगी और यहाँ पे करंट बाहर आएगी, मतलब इनडायरेक्टली देखो क्या जाएगी, ये ऐसा जाएगा, ये अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्रॉस है, मतलब ए टू बी आएगा, राइट? तो ए टू बी मतलब इसके लिए जा रहा है ए टू बी, ठीक है, आर सोलेनॉइड 2। यहाँ पे व्हाट हैपन, ये जब अंदर जाने की कोशिश करेंगे, इसको अपोज करेंगे, दैट मींस दिस, for this case this particular solenoid will be like a bar magnet with south pole here, north pole here, right? now जब भी आप ऐसे बोल रहे हो तो नॉर्थ पोल आपके यहाँ पे है, तो इट लुक लाइक दिस, राइट? तब यहाँ पे आपकी डॉट होना चाहिए और यहाँ पे आपकी क्रॉस होना चाहिए। सो डॉट एंड क्रॉस मतलब क्या देखो, यहाँ से तो गए ऐसा जाएगा, दिख रहा है क्या? तभी यहाँ पे D2 C. So for solenoid 1 A to B,
for solenoid to D to C. कुछ है options? Yes, option 3 is correct. It's clear with everybody? Next question. तो ये आपके अगेन थोड़ा सा आपके मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी बुक पढ़ लो. ये आपकी ग्राफ होता है सोलर सेल वाली, तो उससे आपको दिख जाएगी, राइट? बोला फॉर ए सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. आपको फोर्थ क्वाड्रेंट रहती है, ये ऑलरेडी पता है. एंड ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द करंट मेजर्ड ड्यू टू मेजॉरिटी. नहीं, ये मेजॉरिटी थोड़ी होती है, गलत हो गई. दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. क्या आता है देखो देखो. Yes, A is correct but B is incorrect. Option 3 is correct. This is normal conceptual question. Just read the theory. This question. Now in this question, देखो ये यहाँ पे ऐसे हो गई. That means this angle will be how much? This angle will be, because this angle will be theta c, right? So this will be 90 minus theta c. So that means this will be theta c. So again this will be 90 minus theta c. That means I can say that 1 into sine 30, I'm talking about here, is equal to mu times sine 90 minus theta c, right? So it's going to be mu into cos theta c is equal to half, right? Now, if you again use the Planck's law here, we already know that sine theta c is equal to 1 by mu, right? So draw a diagram like this. This is theta c. This is 1. This is mu. This has to be mu square minus 1, right? So put कर दो यहाँ पे. That is mu into cos theta c. That is mu square minus 1 root divided by mu. Cancel out. That means आ जाएगी mu square minus 1 is equal to 1 by 4. Implies mu is coming to me, देखो 1 is 5 by 4 root of this. That is root 5 divided by 2. Root 5 divided by 2. Yes, option 4 is correct. Option 4 is correct. Check it better. Next question. Given below are two statement, one is level at जो भी है. First statement क्या बोल रहा है? The potential V at any axial point, that means I have a dipole like this, and either this particular point, this particular point is A or this particular point is B. Both are axial point, right? But for point A, theta is 0 degree. For point B, theta is 180 degree or pi. क्या पूछ रहे हो उसमें? Dipole moment is this. तो यहाँ पे यहाँ potential V will be how much? If you remember that P cos theta divided by 4 pi epsilon naught r square, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला होता है, राइट? ना यहाँ पे थीटा इज 0 और 180, मतलब दिस विल बी प्लस माइनस. So plus minus P. P is how much? P is given to me 4 into 10 raised to power minus 6. Okay? 1 by 4 पर is nothing but 9 into 10 raised to power 9. Right? Divided by R. R कितना के में distance कितना के 2 meter. That is 4. फिर A cancel out हो जाएगी, right? So it's coming to be 9 into 10 raised to power 3. Yes, that is this statement is correct. So and assertion is correct. अच्छा इधर में V is equal to this. No, ये फॉर्मूला होता ही नहीं है. So this is wrong. Right? That means आप आ जाओ, क्या बोल रहा है? A is true but B is false. Yes, option 1 is correct. Clear? Next question. The moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint. Okay, कोई rod है ऐसे, आपने इसको यहां से घुमा रहे हो, right? And perpendicular to the rod is this. The length of the this gun rod. Okay, तभी I मुझे given है. And I के लिए फॉर्मूला क्या देते हैं? M L square divided by 12, right? Now I मुझे given है.
कितना गिवन है उसमें 2400, बी केयरफुल, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। मास मुझे गिवन है, कितने गिवन है, लेकिन देखो 400 ग्राम। तो ऑप्शन देख लो बेटा, देखो सेंटीमीटर में देखा है, मतलब यहाँ पे आप चेंज मत करो, इसको एसआई में लेकर मत जाओ। सिंस ग्राम सेंटीमीटर में देखा रखा है, यहाँ पे भी ग्राम पे देखा रखा है, डायरेक्ट ऐसा कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो एंड गेट द वैल्यू ऑफ एल, राइट। इफ यू सॉल्व दिस आपको आ जाएगी 8.5 सेंटीमीटर। ये आप आराम से कर लो बेटा, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज द फॉर्मूला रिक्वायर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the terminal voltage of the battery was EMF is 4 volt, 10 volt, and internal resistance is 1 ohm. When connected to the external resistance 4 ohm, okay. So what is the current I? This I is how much? I will be 10 divided by 5. That is 2 ampere, right? That means across these two terminal, whatever voltage I have, that is how much? That 2 into 4. So this voltage will be how much? V will be how much? 2 into 4, that is 8 volt. That is the terminal voltage also. So that is 8 volt is the answer, correct? Across the जो voltage है वही आपकी यहाँ पे भी है, right? So आपको कितना आंसर आ जाएगी 8 volt. Clear? It's clear बेटा? Next question. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन थी। क्यों ट्रिकी बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको देख कर बाप रे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा क्या मुझे, इतने सारे ऑप्शन देखा रखा है। ऑब्जर्व इट, तो सब में आपकी 2 पे वापस आ रहा है, राइट। जो फाइनली जहां पे आ रहा है वो 2 पे है, और देखो एक में 6 से 5 से 4 से और 3 से। तो फिर रिमेंबर दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाय लैम्डा, राइट। तो लैम्डा हैज टू बी आ जाएगी एच सी डिवाइड बाय डेल्टा ई। दैट मीन जहां पे डेल्टा ई मैक्सिमम है लैम्डा आपका मिनिमम हो जाएगी। तो आप बोलोगे लैम्डा मिनिमम इज इक्वल आ जाएगी एच सी डिवाइडेड बाय डेल्टा ई मैक्सिमम, राइट। वेरी सिंपल। Similar, lambda maximum will be how much? So it's going to be HC divided by delta E minimum. So now observe करो बेटा, डेल्टा ई मिनिमम कब होएगी? मिनिमम होएगी अब 3 से 2 पे जा रहा है, वहां पे डेल्टा ई मिनिमम है। तो डेल्टा ई मिनिमम है, मैक्सिमम आना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है? दिस। तो एक्चुअली ए और ए के साथ मैच होना चाहिए किसका? 3, राइट। नेक्स्ट आ जाओ 4 to 2, मतलब उससे थोड़ा बड़ा। तो देखो ये जो है डेल्टा थोड़ा सा बढ़ गई, डेल्टा ही बढ़ गई तो क्या है, ये थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। नेक्स्ट छोटा कौन सा ये वाली है। तो बी के साथ मैच होना चाहिए 4, राइट ना। ऑटोमेटिक समझ में आ गया आपको, मतलब बेसिकली हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट जाना है। तो नेक्स्ट कौन सा जाएगी, दोनों बड़ा कौन है? ए आ जाएगी। दैट मीन सी के लिए आ जाएगी 2 और डी के लिए आ जाएगी 1। लेट्स सी, A is 3, A is 3, B is 4, C is 2, D is 1. Yes, 4 is the correct option. इसे सॉल्व करो ही मत, कॉमन सेंस आ जाएगी बेटा। यूज योर कॉमन सेंस, इसको आने से फॉर्मूला आके चेक मत करो, आपने ऑटोमेटिकली आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन देखो इसमें एक बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, बट बी केयरफुल। यहाँ पे जो लिखे है ये आपकी ये म्यू है, वी नहीं है, म्यू है, ओके। So obviously for photon E is equal to h mu, correct है? ये करेक्ट है, h mu not h b, be careful, h mu। velocity of photon is c, correct है? momentum of the photon is also, because we already know E is equal to होता है p times c, right, for a photon, right? So that means p will be how much? p आप कहेगी E divided by c। मैं E को लिख दो h into mu divided by c। Again, it is h mu by c. Be careful again, as it is h mu by c, not h v by c. Then, in a photon electron collision, both total energy and momentum, ये भी सही है, एनर्जी कंजर्व करते हो आपका और मोमेंटम भी कंजर्व करते हो, राइट। ऑप्शन ई, फोटोन पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, नो, ये गलत हो गए, राइट।
दैट मीन्स आपके ए बी सी डी करेक्ट है, ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली हमें बोला गया था इस बार दैट रेडियो एक्टिविटी नॉट इज नॉट इन योर सिलेबस, राइट? बट देखो रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आ गया, तो आई डोंट नो उधर वो लोग आपको बोनस देगा कि नहीं देगा। आइडियल को बोनस देना चाहिए बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट इन सिलेबस। बिकॉज यहाँ पे आपको पूछा जाता है अल्फा डीके, या दे आर टॉकिंग अबाउट बीटा माइनस डीके, दे आर टॉकिंग अबाउट बीटा प्लस डीके, जो पहले सिलेबस में थी बट इस साल वो लोग हटा दिए थे, बट क्वेश्चन वहां से आया है। ठीक है, एनीवे जो लोग शायद इस साल नहीं किए थे उनके लिए मैंने थोड़ा पहले फॉर्मूला दे दिए। तो बीटा माइनस डीके में होता क्या है, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? देख ले एक बार, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाती है, और बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखो नेचुरली जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है मतलब आपकी Z जो है बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। पर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी मतलब आपका Z कम हो जाएगी, बिकॉज प्रोटॉन घट रहा है न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। तो दैट्स व्हाई आप देखो यहाँ पे ये क्या है, बीटा माइनस में Z+1 हो गया, राइट? बट ये जो डीके है जिसमें बीटा प्लस बोलते हो, जहां पे प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, वहां पे देखो ये एक आपके घट गई। ओनली इतना आपको पता है तो क्वेश्चन बन जाएगी। देखो बेटा आ जाओ यहाँ पे एक बार, आपके x गिवन है 82 290, राइट? यहां से ये लोग बोल रहा है अल्फा डीके हो रहा है, राइट ना? अल्फा डीके मतलब अल्फा होता क्या, अल्फा इज नथिंग बट हीलियम पार्टिकल, राइट? 2 टाइम्स He4, राइट? तो देख ले यार, बैलेंस कर दो तो ये आ जाएगी 80, ये आपकी y, और ये आएगी 2 टाइम्स 286, राइट? नाउ फ्रॉम दैट ये E प्लस, E प्लस मतलब बीटा प्लस। बीटा प्लस में क्या होती है, बीटा प्लस में क्या देख ले, घटती है। तो यहां से बीटा प्लस डीके हो रहा है, E प्लस मतलब बीटा प्लस डीके हो रही है, मतलब ये 80 जो है आपकी घट के क्या जाएगी 79, राइट? और ये क्या मिल रहा है Z, और वो तो सेम रहेगी बिकॉज देखो बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्जन होती है, मतलब टोटल में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो आज भी 286 रह जाएगी, राइट? ना वहां से क्या हो रहा है, बीटा माइनस, बीटा माइनस में क्या आ जाता है, बढ़ता है, राइट? तो अगेन देखो ये 80 आ जाएगी, ये Z रह जाएगी, और ये 286 हो जाएगी, राइट? फिर यहां से फिर से ये लोग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब इंडायरेक्टली बीटा माइनस, राइट? मतलब इंडायरेक्टली क्या जाएगी, फिर से एक बढ़ना चाहिए, राइट? एक बढ़ेगा तो ये दे देगा 81, और वो क्वांटिटी क्या है Q, और ये सेम रह जाएगी, दैट इज 286। So 81 and 286, right? 81 286, yes, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चेक करो बेटा, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन इन द सेंस आपके सिलेबस में नहीं है राइट नाउ, इसलिए शायद आपको थोड़ा टफ लगा होगा, बिकॉज आप बहुत लोग शायद क्वेश्चन को पढ़े नहीं हो, बिकॉज सिलेबस में इस साल बोला गया था रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी की क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At any instant of time, displacement of any particle given S is given as 2t minus 1. Under the influence of force of 5 Newton, this is very simple question. V will be how much? V will be ds upon dt. That's going to be 2 only, right? Now there's a power instantaneous. क्या होता है? F dot V. F मुझे given है 5, V मुझे given है 2, that will be 10 watt. 10. Option 3 is correct. Okay, very simple question. Next question. ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन को आप थोड़ा ऑब्जर्व करना बेटा। ये क्वेश्चन देख के तो लंबा लग रहा है, लेकिन ऐसी क्वेश्चन है ही नहीं कुछ ज्यादा। देखो पहले ये जो है ये गेट कौन सी गेट है, ये गेट कौन सी गेट है, कुछ आइडिया है? ये गेट कुछ नहीं है, ये इसको ये बार बना देगा, ये कि नॉट गेट है, राइट? चलिए ये जो है ये भी आपकी आपकी नॉट गेट है बी। ये जो ऐड कर रहे हो इनमें, ये क्या है एक्चुअली
ये क्या देगा, देखो ये एक्चुअली दे रहा है ऐसे, तो ये आपको क्या देगा बताओ, ये दे देगा आपके एंड गेट, राइट, बिकॉज ए बार प्लस बी बार नॉट ऑफ दैट, ये एक्चुअली ये आपकी एक्चुअली वाई आना चाहिए, राइट ना, ये क्या होती है, ये खुद ही हो जाती है ए डॉट बी, राइट, ए डॉट एंड गेट हो जाएगी, तो ऑब्वियस बात है ये आपकी एंड गेट है। मान लीजिए मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं ये सब समझता नहीं हूं, तो दे देते, लेट से आपकी बोलो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, लेट से आपने इसको बोल दिया सी, ये सी है, इसको आपने बोल दिया डी, ये सी है ये डी है, और फाइनली आपको आएगा वाई ना, देखते एक बार, लेट से ये वन है, देखो ऑब्वियस बात है यहाँ पे वन वन ही आ सकता है, राइट, तो ये आपका वन है, तो यहाँ पे सी जो आएगा, सी आपका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, राइट, इफ ए इज वन, सी आई मीन इसको बोलते सी, लेट्स से इट्स अ सी एंड इज डी, तो इफ ए इज वन, सी विल बी जीरो, if a is 0, c will be 1, right, similarly यहां पे आ जाओ b, b is 1, तो यहां पे देखो ये क्या जाएगी, तो रिमेंबर दैट और में क्या था 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 1 1, 0 0 0, तो यहां पे क्या जाता है, यहां पे क्या करोगे बोलो एक बार, देख लो प्लीज एक बार, इसमें क्या जाएगी, ये 1 है तो यहां पे क्या मिलेगी, देखो बेटा ये d पे क्या लेना चाहिए, 1 है यहाँ पे, अभी सॉरी ए नहीं, नॉट ए, रुको रुको एक सेकंड, ये थोड़ा लंबा लग सकते हैं आपके लिए, आपने यहाँ पे ए वन कर दिए, जीरो कर दिए, बी के लिए बोल रहा हूं मैं, जस्ट बी, लेकिन बी का वैल्यू जो है आप डाल दो, आप यहाँ पे डाल दो लेट्स से 1, तो ये 1 डालोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डी जो है आपके जीरो आ जाएगी, चेक करोगे प्लीज, है ना, फिर देखिए बी है, यहाँ पे बी है, मतलब बी हो गया, तो ये क्या आएगी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 नॉर्मली 1 होते हैं, उसके नॉट, तो जीरो हो जाएगी, तो 1 जीरो हो गया, राइट, तो यहाँ पे जीरो डाल दो बी के, तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होती है, बट नॉट कर देता 1 हो जाएगी, राइट, तो इनडायरेक्टली आप क्या ले रहे हो, आप बोल रहे हो यहाँ पे आपने ऑप्शन ले लिए जिसमें देखो ये जो है ये जीरो है, ये जीरो है, और ये भी जीरो है, लेट्स से ये जीरो जीरो हो जाएगी, राइट, देखो जीरो प्लस जीरो, यहाँ पे जीरो प्लस 1 हो जाएगी, सिमिलरली ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 1 जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये ले रहे हैं आप और कोई ऑप्शन ले सकते हैं क्या, और कुछ मिल सकता है क्या, देखो यहाँ पे तो आपको 1 1 पे ये मिलेगा और 0 0 पे 1 मिल जाएगा, राइट, तो देखो आपने आप दिख रहा है क्या, क्या कैसे फॉर्म में आ रही है, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, कुछ मिस्टेक थोड़ा सा है, नहीं नहीं बराबर है, देखो 1 के लिए 1 आ गया, राइट, ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी, और यहाँ पे देखो 1 के लिए 1 आ गई, और यहाँ पे 0 के लिए 0 आ गया, मतलब ए और बी को डालोगे तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, इफ यू रिमेंबर दैट 1 into 1 1, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 0, राइट, मतलब वहां पे सिर्फ 1 1 पे 1 आता है, देखो 1 1 पे 1 आ गया, अब बाकी ऑप्शन पॉसिबल है क्या, चेक करते हुए देखते हैं, ऐसे ही आप डायरेक्ट इससे कर लेना, लेट्स से आपने यहाँ पे लिख दिए 1, यहाँ पे 1 है 1 है, ये देखो ये यहाँ पे मान लेते हैं 0 हो गई, आप इसको फिर से बोलते हैं 1, ये 0 बोलते हैं, पॉसिबल है क्या, हो सकता है ऐसा हो जाएगा, ये 1 है तो सी मेरे को क्या देगा 0, और ये 0 है तो ये मुझे क्या देगा 1, सिमिलरली ये ले लो 0 और ये ले लो 1, तो 0 है तो ये मुझे क्या देगा 1, और ये 1 है तो ये मुझे क्या देगी 0, राइट, अब आ जाओ, देखो 0 और 1 को ऐड करोगे तो आपको 1 होना चाहिए था, उल्टा 1 मतलब ये 0 हो जाएगी, और 1 0 यहाँ पे होना चाहिए था 1 का नॉट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या दे रहा है, सिर्फ 1 1 1 आ रही है, 0 0 0 1 0 0 0 1 0, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या है, एंड गेट है, राइट, ये तभी करोगे जब आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, अदरवाइज इससे करो फटाक हो जाएगी, क्लियर बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ अ प्लैनेट इज दिस, द एक्सेल, देखो जी के लिए फॉर्मूला क्या होती थी, जी आपको होता था gm डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, राइट, देन इंडियन लेके से दैट g जो है
प्रोपोर्शनल टू, और इन्हें क्या कहते हैं, GM डिवाइडेड बाय R को D/2, तो D/2 का होल स्क्वायर, so G proportional to M divided by D square, right? That means I can say that G2 divided by G1 is nothing but how much? G2 मतलब M2 divided by D2 का square into यहाँ पे आएगी D1 का square divided by M1, right? Now I read the question. ये mass of planet is 1/10 of that Earth. तो M2 upon M1 कितना हो जाएगी? 1/10, right? और क्या बोल रहा था? डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, डायमीटर D2 जो है ये आधा है, तो D1 अपॉन D2 हाउ मच, ये 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगी, 2/5। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऑलरेडी पता है ये 2 बाई एक्चुअली G2 भी हाउ मच, 2/5 इंटू G1, G1 मतलब 9.8 ले लो, तो कितना आ जाएगा चेक कर ले एक बार, 18 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, यस। देखो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन अगेन थोड़ा कंट्रोवर्सी है, तो मैं आपको बैकग्राउंड बोल देता हूं। ये क्वेश्चन के ये स्टेटमेंट है ना, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये तो सही है, प्रॉब्लम है नहीं उसमें। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मतलब एवरी एलिमेंट। अभी प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम जो पुराना जो एनसीईआरटी है ना, उसमें ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ओल्ड एनसीईआरटी बुक में बोल रहा हूं, न्यू एनसीईआरटी में जो थोड़ा करेक्शन करके भेजा है, लिखा है मोस्ट ऑफ द एटम्स, नॉट ईच एटम्स, मोस्ट ऑफ द एटम्स। दैट मींस अभी का जो एनसीईआरटी है, करंट एनसीईआरटी जो है, उसको जो फॉलो करोगे तो इट शुड बी मोस्ट नॉट ऑल। तो जब नॉट ऑल है मतलब स्टेटमेंट टू रॉन्ग हो जाएगी आपकी। तो यहां पे एक कंट्रोवर्सी है, आई डोंट नो लोग क्या करने वाले हैं। अभी का जो एनसीईआरटी है वो हिसाब से स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो राइट नाउ वी आर गोइंग विद दैट ओनली एज पर दिस न्यू एनसीईआरटी। वहां पे जो लिखा हुआ है उसमें से हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो दैट मीन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो कौन सा आ जाएगी? ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे ये ऑप्शन 3 जो बोल रहे हो ना, ऑप्शन 3 बोलेंगे प्रोवाइडेड आपकी ओल्ड एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हो। बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये शायद आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपके लिए आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग मतलब क्या होते हैं, कौन से ऑप्शन है, देखो बेटा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। हाँ, ऑप्शन 1 मेरे लिए सबसे ये करेक्ट है। मोस्ट प्रोबेबली इस बार आपको ऑप्शन 1 क्लिक करने से नंबर मिलेगी, ऑप्शन 3 से नंबर नहीं मिलेगी, ठीक है। बड़े कंट्रोवर्सी है, बिकॉज ये सेम एनसीईआरटी ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन की प्रॉब्लम है। वहां पे एग्जैक्ट एक क्वेश्चन की वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात चेक कर लेना, ठीक है। और मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 दैट मींस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, वो ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, because this is a very simple question, very simple question। प्योर रोलिंग मोशन में होता क्या, रिमेंबर दैट। और एनी रोलिंग मोशन, नॉट प्योर रोलिंग मोशन, लेट्स से ये आपकी इस तरह मूव कर रहा है v से, और ये आपकी आएगी ओमेगा ऐसे, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज v प्लस r ओमेगा, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज मूविंग विद v माइनस r ओमेगा, राइट। दैट मींस ये जो पॉइंट p जो है और पॉइंट जो q है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट q, राइट। चेक करते, पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट, ये गलत है, यहाँ पे ये बड़ा बड़ा नहीं लिखा है, पॉइंट इन क्यू होना चाहिए,
ठीक है, point P moves faster than point Q. That is the correct question. ठीक है, so that's why option 4 correct है. but ये थोड़ा देखिए, point P moves faster than point Q. Okay, next question. A particle moving with uniform speed in a circular path, again it's a theoretical question, देख लेते, maintains constant velocity but varying acceleration. नहीं, velocity constant है क्या? नहीं होता है, because distance keep on changing. So this is wrong statement. Varying velocity and varying acceleration, yes, ये correct है, because जब भी आप घूमते हो सर्कल में स्पीड सेम है but distance keep on changing, right? That means velocity is changing. एंड आपको एक्सेलेरेशन के लिए आपका डिस्टेंस कीप ऑन चेंजिंग, सो ये करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A thin flat circular disc of radius this. Okay, again it's a very simple question of from surface tension, right? तो सर्फेस टेंशन के लिए फॉर्मूला जो है, ये आपके सर्कुलर डिस्क जो है आपकी यहाँ पे आ जाती है, राइट? ऐसा लग रहा है, राइट? तो जो फॉर्मूला जाएगी, फॉर्मूला फोर्स के लिए क्या लिखोगे? s into 2 pi r, right? where r is the radius of the disc. now ये सब डेटा गिवन है, s मुझे गिवन है, हाउ मच? 0.07 into 2 pi into r. radius is how much? 4.5 centimeter. Be careful. 4.5 into 10 to the power minus 2. If you calculate that, you will get the answer as 19.8 millinewton. 19.8 into 10 to the minus 3. Okay? Again, simple formula based question. Next question. In a uniform magnetic field of this Tesla, a magnetic needle performs this. So the time period will be how much? Time period will take 20 complete oscillation is 5. So 5 divided by 20, right? That is 1 by 4 second, right? Also you know that time period की जो formula होता है 2 pi root of I upon m times b. ये formula होती है, right? That means यहाँ पे I can say that implies I can say that I upon m into b will be how much? I get t square divided by 4 pi square. हमें चाहिए क्या था? The magnitude of magnetic moment m चाहिए था. So m will be how much? देखो यहाँ पे, तो 4 pi square into t square. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा हम एक बार करेक्शन कर लेते. अरे कुछ नहीं है, इसे फॉर्मूला डालना है, दैट्स इट. तो यहाँ पे i मुझे गिवन है, i कितना गिवन है? I मुझे गिवन है 9.8 into 10 to the power minus 6. m मेरे लिए अननोन है. मैग्नेटिक फील्ड b कितना गिवन है? 0.09 0.049 इज इक्वल टू टाइम पीरियड कितना था? हाँ 1 by 4, तो 1 by 16 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, तो रहेगी 1 by 64 पाई स्क्वायर, राइट? ये कैलकुलेट कर लो, फिर तो आपने आंसर आ जाएगी. आपके आंसर जो आती है 2 आ जाती है, राइट? तो ये दिखे कट जाएगा ये, राइट? तो ये कैलकुलेट करके देख लो, आपका ऑप्शन 2 आ जाएगा. आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला चाहिए था, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one-dimensional collisions. ये बहुत easy questions है. If you remember that m into v1 plus 0, you will get 2m into v2. We are talking about like this only. So v2 will be how much? v2 has to be like v1 divided by 2. So they are saying that v1 upon v2. So v1 upon v2 will be how much? So basically that is 2 divided by 1, that is 2 is to 1. That is option 4 correct. Very simple question. Next. This is given, if you remember that x is equal to a sine
ओमेगा टी प्लस 5, ये मेरा जनरल फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना मुझे गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है मुझे दिस 5, बट 5 जो है मीटर में है, ओके 5 मीटर, एंड ओमेगा मुझे कितने गिवन है, पाई, with time period how much, 2 pi upon omega, that is 2 pi divided by pi, that is 2 seconds. So 5 centimeter, 5 meter and 2 seconds. Option 4 is correct. Option 4 is correct, right? Next question. The quantities which have the same dimensions as those of solid angle. Solid angle, if you remember that, ये फॉर्मूला क्या था, d omega is equal to dA upon r square. क्यों पे cos alpha भी रहता है, तो लिख लेते cos alpha upon r square. Cos alpha dimensionless quantity. So देखो area upon, देखो area मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर मतलब ये डायमेंशनलेस, राइट, m0 l0 t0, राइट, this is a dimensionless quantity, right? Now since this is a dimensionless quantity, देखो यहाँ पे strain dimensionless quantity, right? Strain मतलब delta L upon L, dimensionless quantity, but arc में dimension है, that option 1 correct नहीं है. Angular speed and stress, देखो stress क्या होता है, stress भी dimensionless नहीं है, तो ये भी गलत है. Strain and angle, ये correct है, strain dimensionless है, angle theta क्या होता है, you remember that s divided by r, तो length upon length, तो ये भी dimensionless है, तो option 3 correct है. Clear? Next question. It's a very simple question for electrostatics. देखो I have a hollow thin spherical shell. Potential difference between the 2 points C and P. C center पे है, P surface में. If you remember that V inside is same as the surface, right? because अंदर में इलेक्ट्रिक जीरो होती है, तो अंदर के एवरीवेयर पोटेंशियल सेम होती है, कितना ज्यादा सरफेस होती है, that means VC minus VP is equal to 0. 0 is the answer. Yes, option 2 is the correct one. Clear? Next question. ये Bob is wheeled in a, ये देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ये एंगल थीटा मान लो, ये घुमा रहा है ऐसे, राइट, ठीक है, ये बॉब यहाँ पे ऐसे है, और ये रेडियस जो है आपके मान लो स्मॉल आर है, तो यहाँ पे टेंशन के लिए फॉर्मूला आती है m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, राइट. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, Bob is wheeled with this by means string with initial speed of omega, the tension in the string is t, the speed देखो ऑब्वियस बात है, t जो है कीपिंग t प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी ओमेगा का स्क्वायर, राइट, बिकॉज आपकी रेडियस पूरा सेम रखा है, दैट मींस ऑब्वियस बात है आपकी क्या आ जाएगा बताओ, ये आपका 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गई, तो ये आएगी 4 टाइम्स, तो टेंशन जो आएगी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट, बिकॉज टेंशन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा का स्क्वायर, पहले ओमेगा थी अभी 2 ओमेगा हो चुका है, तो आपकी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस दिस ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो 10 जो स्मॉल पार्ट है, रेजिस्टेंस कितना जाएगी, तो 100 upon 10, that is 10 ohm, right? Now they're saying the first 5 parts are connected in series, so that means R1 जो आ जाएगी, that will be 50 ohm, right? Because 5 10 ohms resistance in series, so 50 ohm, and rest 5 in parallel, so R2 will be how much, R2 will be 10 divided by 5, that is 2 ohm, right? Now they are saying this, the two combinations are again connected in series, तो यह combine कर रहे हो, so R1 plus R2 is the answer, that give me actually 52 ohm, so option 4 is the correct one. Clear? Next. देखो ये T versus V graph given है, T versus V graph, that means if you remember that PV is equal to nRT for ideal gas equations, so that T is equal to जाएगी T versus V, तो N, I mean next second रुको, T is going to be P
T is going to be PV divided by NR, right? Or I can say that it implies P upon NR into V. तो ये जो पार्ट दे रहा है, ये जो पार्ट देता है, ये पार्ट देता क्या है? ये स्लोप. तो स्लोप जो है, स्लोप ऑफ व्हिच ग्राफ? टी ग्राफ विल गिव मी P divided by NR, राइट? दैट मींस स्लोप जिसका बड़ा है उसका P ज्यादा है. स्लोप सबसे बड़ा किसका है? P1 की. सबसे कम किसकी है? P3 की. तो सबसे बड़ा कौन होएगी? P1. छोटा कौन होएगी? P3. तो P1 greater than P2 greater than P3 is the correct one, right? Very simple question. ट्रिक्स लगा लो. Next, a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor. Okay, let's say resistance R है, capacitance C है और ये आपकी V है. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates, displacement current of magnitude equal to I flows in the direction opposite. यहां पे भी करंट फ्लो करती है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है. डिस्प्लेसमेंट करंट विल फ्लो, बिकॉज़ यहां पे कंटिन्यूटी मेंटेन करना जरूरी होती है. तो सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा. तो आपको देख लो एक बार, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लोज इन द सेम. ये ऑप्शन 4 करेक्ट है. ऑप्शन 4 आपके लिए करेक्ट है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. The property which is not an electromagnetic wave traveling in phases. Okay, ये travel is the speed. ये करेक्ट है, because ये एक्चुअली क्या है? एक्चुअली वेलोसिटी c है. तो करेक्ट है. They originate from charges moving with. No, ये गलत है. जब तक आपके पास चार्ज के चार्ज में एक्सेलरेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट नहीं होती है. तो ये ऑप्शन गलत है. दे आर ट्रांसवर्स, ये भी सही है. द एनर्जी डेंसिटी, ये भी सही है. दैट मींस ऑप्शन 2, यस, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग. तो आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, बराबर नहीं है मेरे हिसाब से, बट फिर भी आपको ऑप्शन देके आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन देख लो बेटा क्या बोल रहा है. देखो ऑब्वियस बात है, चारों यहाँ पे सर्किट देकर रखा है. इसमें यहाँ पे क्या जाएगा? देखो यहाँ पे एक डायोड है, राइट? बीच में दिख रहा है कि हर जगह में एक डायोड है. यहाँ भी डायोड है, यहाँ भी डायोड है, यहाँ भी एक डायोड है ना. नेचुरली एक बार डायोड जब यहाँ पे मतलब मान लीजिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, होएगा ये पॉजिटिव है तो ये करंट फ्लो करेगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा वर्चुअली, बिकॉज़ आइडियल डायोड मतलब रेजिस्टेंस 0 हो जाती है, राइट? दैट मींस इनडायरेक्टली ये बैलेंस बूस्टर ब्रिज नहीं बन सकता, ये शॉर्ट हो चुका है. यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे भी आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, देखते एक बार. ये क्वेश्चन में ना थोड़ा मिस्टेक्स है. ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ना आपका डायग्राम सेम आ चुका है. थोड़ा मिस्टेक्स है एक्चुअली ना. यहाँ पे पोलैरिटी उल्टा होना चाहिए था, ऐसा पोलैरिटी होना चाहिए, राइट? ऐसा पोलैरिटी है. तो ऐसा पोलैरिटी है, देखो ये क्या जाएगी? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये रिवर्स में आ जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा. नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी. ये करेक्ट है. और देखिए इसमें सेम प्रॉब्लम आ जाएगी. इसमें उल्टा है, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, राइट? तो नेचुरली यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाएगी. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट. चेक कर लेना, यहाँ पे पोलैरिटी उल्टा होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other. Let's see, आपके पास एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है. ये सब कैपेसिटर सी है. नेचुरली ये गैप है, गैप पे डी है. क्लोज कर रहे हो तो सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. व्हेन डी इज आपकी डिक्रीजिंग, सी इज इंक्रीजिंग, राइट? देखते क्या बोल रहे हैं. नाउ ऑलरेडी वी नो दैट Q is equal to C into V, right? ना ये बैटरी कनेक्टेड है
तो V is constant, Q जो है proportional to C. Now C is increasing, तो Q is also increasing, right? तो charge stored in the capacitor increases. Perfect है. Energy stored in the capacitor. Okay, तो capacitor क्या होता है? एनर्जी बोलोगे यहाँ पे बोलोगे हाफ CV स्क्वायर. V कांस्टेंट है, ताकि ये भी बढ़ेगा बिकॉज C बढ़ रहा है. ये बोल रहा है डिक्रीजेस, तो रॉन्ग हो जाएगा. It capacitance increases. Yes, capacitance increases. Correct है. The ratio of charge to its potential. Ratio of charge to its potential. तो Q जो है, Q क्या होता है? C into V upon V. रहेगी C. ना क्या बोल रहे हैं? Remain the same. Same नहीं, because ये बढ़ जाएगी, because capacitance बढ़ रहा है. That means ये जो है, ये भी गलत है. The product of charge and voltage. Product of charge Q into V. That is C into V square. Right? ये C into V square मतलब U into U हो गई, तो ये क्या जाएगी? यहाँ पे V constant C बढ़ रहे थे, बढ़ जाएगी. ये क्या बोल रहा है? The product of charge and voltage increases. ये सही है. That means A, C और E सही है. A, C and E सही है. Option 4. Yes, option 4 correct है. Clear? Very simple conceptual question है. देख लो एक बार. Next question. A force is defined like this. The factor which is dimensionless. तो यहाँ पे आप देखोगे तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर जो है, इसकी डायमेंशन क्या जाएगी? डायमेंशन और बीटा इंटू टी का डायमेंशन सेम है. They all have same dimension of force, right? From principle of homogeneity, right? From principle of homogeneity same है. That means इनका ये देखो, ये दोनों दिख जाते हैं. अल्फा इंटू टी का डायमेंशन जो है, has the same है डायमेंशन ऑफ बी बीटा. That implies, of course, alpha t dimension divided by beta will be m0, l0, t0 because they are dimensionless. So option 4 is the correct one. आने से मत करो, एक बार देख लो, फटाफट हो जाएगी. ठीक है. next question. The metallic board of young modulus this and coefficient of linear thermal expansion that. Okay. इसमें क्या होती है? रिमेंबर दैट आपको यार बोलते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल होता है एफ डिवाइड बाय ए वाई, राइट? सेम एज अल्फा डेल्टा टी, राइट? दैट इंप्लाइज यू कैन से दैट एफ इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ई. हाँ देखिए क्या देखा है. y मुझे गिवन है, राइट? यस, y मुझे गिवन है. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब अल्फा मुझे गिवन है. यस, गिवन है अल्फा. लेंथ मुझे गिवन है. लेंथ मेरे को चाहिए नहीं थी. एरिया गिवन है. यस, गिवन है. डेल्टा टी मुझे गिवन है 100. तो दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स चाहिए था. पुट कर दो वैल्यू. पुट करोगे तो आपकी ये आंसर आ जाती है. डाल के चेक कर लेना. ये ऑब्वियस बात है. y गिवन है, अल्फा गिवन है, डेल्टा टी 100 गिवन है, एरिया गिवन है. तो पुट कर दो, you'll get the option 4. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो आपके ऑप्शन 4 आ जाएगा. चेक कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. A small telescope has an objective of focal length 140 centimeter and eyepiece मतलब FO मुझे गिवन है 140 सेंटीमीटर और FE मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर. The magnifying power of the telescope for viewing a distant object. ये आपकी बहुत ही इजी चीज है. ये फॉर्मूला क्या आता है? FO डिवाइड बाय FE, राइट? 140 डिवाइड बाय 5. तो आ जाओ 28 है क्या किधर पे भी? हाँ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. An iron bar of length L has magnetic moment this. It is bent in the middle of its length such that the two arms make an angle of 60. Okay, आपने इसको ऐसा बेंड कर दिए, ये एंगल बोल रहे हैं 60 डिग्री हो जाएगी.
तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ आपकी L/2 है, ये भी लेंथ आपकी L/2 है, और ये 60 है, तो एक्चुअली ये भी लेंथ आपका जाएगी, ये भी 60 हो जाएगा, राइट। तो ये लेंथ भी आपकी L हो जाएगा, राइट, आई मीन L/2 हो जाएगी। क्लियर? दैट मीन न्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा म्यू प्राइम, हाउ मच, पोल स्ट्रेंथ m इनटू लेंथ, लेंथ इज हाउ मच, L/2। अर्लियर जो मैग्नेटिक मोमेंट थी m, वो क्या थी, m टाइम्स l, तो दैट इंप्लाइज m प्राइम जो आ जाएगी m डिवाइड बाय 2, फॉर द आंसर m/2, m/2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, 10 microfarad capacitor is connected to a 210 volt। अच्छा, ये जो याद आता है, ये जो वैल्यू गिवन रहता है बाय डिफॉल्ट ये होता है आरएमएस वैल्यू, मेंशन नहीं किया मतलब आरएमएस वैल्यू है, दैट पॉइंट टू बी नोटेड। द पीक करंट, तो पहले क्या करोगे, पहले बोलोगे लेट द गेट द वैल्यू ऑफ आरएमएस, आरएमएस इज हाउ मच, वी आरएमएस डिवाइड बाय एक्ससी, राइट ना। एक्ससी क्या होता है, वी आरएमएस मुझे गिवन है कितनी है, 210, एंड एक्ससी मुझे पता है, एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी, राइट, तभी इनटू ओमेगा सी आ जाएगी, दैट इज 210 इनटू ओमेगा, ओमेगा कितना गिवन है, बताओ, ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इनटू कैपेसिटी जो भी गिवन है सी, ये पुट करो ऑल वैल्यू, यू विल गेट आईआरएमएस। नाउ दे आर सेइंग गेट द वैल्यू ऑफ पीक करंट, तो पीक करंट I0 अपॉन √2 होता है आईआरएमएस, राइट। I0 जो आ जाएगी इट्स गोइंग टू बी √2 टाइम्स आईआरएमएस, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द आंसर, तो अल्टीमेटली विल गेट दिस आंसर। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two heater A and B have power rating of this and that. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. Okay, जब सीरीज में होती है, remember that पावर के लिए फॉर्मूला क्या रहती है, P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2, सीरीज के लिए, राइट। और वही पावर की फॉर्मूला जो आती है ये होती है P1 प्लस P2 जब ये है कि पैरेलल में आती है, राइट। तो सीरीज के लिए, इसके लिए जो आंसर आएगा डाल देते, 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, 2/3 किलोवाट। इसके लिए जो आपके आंसर आ जाएगी इज कमिंग टू बी 3 किलोवाट। The ratio of power output for these two cases, तो रेशियो मतलब आएगा how much, रेशियो इज कमिंग टू बी 2/3 divided by 3, that is 2/9, that is 2:9, 2:9, 2:9, okay, option 4 is correct. Clear? Easy. Next question. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में यहां पे आपकी स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पहले आया एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ओके, फिर आया एक्सेलरेशन 0, फिर आया नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। तो ऐसे केस देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, एक्सेलरेशन में ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर एक्सेलरेशन हमेशा इधर कांस्टेंट है तो 0 है, तो ये तो होएगा ही नहीं, ये भी होने का चांस नहीं है, ये भी होने का चांस नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो फर्स्ट पे पॉजिटिव कांस्टेंट 0 देन ये करेक्ट है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mass of the bob in a simple pendulum is increased, तो फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल होता है 2 पाई रूट ऑफ L डिवाइड बाय G। देखो मास के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये आपके लिए कोई जरूरत ही नहीं है, ये जो है ये आपके लिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। लेंथ इज मेड हाफ, तो लेट्स से T1 बोल दिया आपने, L1 बोल दिए, T2 इज हाउ मच, 2 पाई रूट ऑफ L2 अपॉन G, तो T2 डिवाइड बाय T1 is coming to be how much, L2 divided by L1 root of this, तो L2 upon L1, L2 कितना था, हाफ हो गया था, राइट, so it's coming to be half 1/√2, that implies T2 is coming to be
T1/√2। ठीक है, और आंसर क्या चाहिए था इसमें, ये चाहिए था आपकी x/2 इंटू T1 फॉर्म है, राइट। देखो ना, x/2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये ओरिजिनल टाइम पीरियड है, दैट मींस x हैज टू बी हाउ मच, क्योंकि यहाँ पे 1/2 चाहिए, तो ये आएगी आपका आ जाएगी √2 ओनली, राइट। If x is √2, then x/√2 ये आएगा, तो x is √2, √2 is the answer, answer is 4. Clear? Next question. The minimum energy required to launch a satellite, let's say आपके पास ये सरफेस है, रेडियस आपके लिए r है, आप यहां से लॉन्च कर रहे हो, राइट, और आप यहां पे लेकर कहां पे गए हैं इसको, यहां पे लेकर गए, राइट। ये रेडियस कितनी है, इस रेडियस देखो यहां पे बोला ये जो गैप है, ये गैप कितनी है, गैप इज 2r, राइट। तो इनडायरेक्टली यहां से डिस्टेंस जो है, ये जो है ये आपकी 3r है, राइट। तो जब यहां पे है इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी जो है ई, लेट से ई आई, तो हाउ मच, तो यहां पे जब लॉन्च कर रहे हो क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे रहेगी ओनली इसकी प्रोसेस एनर्जी, राइट, बिकॉज अभी तक घूम नहीं है ना, तो लेकर जब ऐसे तो आएगी माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। बट यहां पे जब लेकर गए हो फाइनली हाउ मच, ये फाइनल यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्बिट घूम रही है, तो माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2 टाइम्स 3r, राइट। That is coming to be minus gmm divided by 6r. नेचुरली ये जो बीच का गैप है, वो गैप कौन देगा, कारण ये जो पार्ट चाहिए था, कोई बोला है वहां, देखो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट, दोनों का डिफरेंस ले लो, द डिफरेंस इज नथिंग बट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो वो आपका आ जाती है ये वाले आंसर, ठीक है, ये दोनों माइनस कर दो, तो यू विल गेट दैट ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। A sheet is placed on a horizontal surface in front of strong magnetic pole. A force is needed. Hold the sheet. Actually, it will be there, not free, there. It is magnetic. Yes. देखो बेटा, आपने जब भी आप रिमेंबर दैट कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, मतलब एक पोल है और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, वो खींचेगा उसको, है ना। एक बार मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं उसको, तो आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना है, होल्ड इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक फोर्स देना पड़ेगा, राइट, फोर्स रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन आ जाओ ऑप्शन, देखो मूव द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कंडक्टिंग, व्हाई, बिकॉज़ लेट्स से आपके पास एक बार मैग्नेट ऐसे, कोई मैं बोल रही है बार मैग्नेट ऐसे रख दिए, और आप इसको लेकर देखो, इसके मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख जाएगा ऐसे, आप एक कंडक्टिंग प्लेट के जितना दूर लेकर जाओगे तो वो क्या रहेगा, हमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट। जब ये फ्लक्स चेंज हो जाएगी, ईएमएफ क्या बोला, इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ विल कम, और इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, इसको जाने नहीं देगा, राइट। ये जो इसको आप इस तरह लेके जाने की कोशिश करोगे, तो ये खींचेगा ऑपोजिट, इस तरह लेके आने की कोशिश करेगा, लेंज लॉ, तो उसको लेके जाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए ऑफ कोर्स 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपने पूरा पेपर देख लिए, पूरा पेपर में एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है मेरे हिसाब से, ठीक है, शायद वो क्वेश्चन आपको पूछना नहीं चाहिए था, देखो एनटीए वाले आपको उससे बोनस देता है कि नहीं देता है, और एक क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी और कुछ बोल रहा है और नाउ रिसेंट एनसीईआरटी और कुछ बोल रहा है, बट मेरी तरफ से उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो लोग न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से मार्क्स देगा, करेक्ट बोलेगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा गया होगा,
आप एक बार चेक कर लेना। थैंक यू बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कैसा रहा नीट एग्जाम इस बार? आई होप सबने बहुत अच्छा किया, मचा दिया तुमने इस बार। देखते हैं कैसा है पेपर और सॉल्यूशंस देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक कंसेप्ट है क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड कितना है। अब हमको एक मालूम होता है कंसेप्ट की 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि पास होते हैं तो मुझे 1 फैराडे कंज्यूम होता है। ठीक है, तो चार्ज ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट टू 1 फैराडे। ओके, अभी यहाँ पे तुम देखोगे ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ वाटर कन्वर्टेड हुआ है O2 में। तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन जो है यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, वो 0 में कन्वर्टेड हुआ। क्या कन्वर्टेड हुआ? 0 में कन्वर्ट हुआ। तो चेंज द ऑक्सीडेशन नंबर तुम देखोगे दैट मीन इन दिस केस चेंज द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2। 2 का चेंज आ रहा है, इसका मतलब 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम होंगे। 2 मोल कंज्यूम होंगे, इन दैट केस वी कैन कॉल एज वी रिक्वायर अ 2 फैराडे एलपी देयर। सो ए का मैचिंग हो जाएगा मेरे पास 2 फैराडे एलपी इन दिस केस। ठीक है, तो दो ऑप्शन है यहाँ पे 2 फैराडेज है। ओके, फिर तुम्हारे पास है 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस कन्वर्टेड हुआ Mn+2 में कन्वर्ट हुआ। Mn यहाँ पे +7 स्टेट में है, वो कन्वर्टेड हुआ +2 में। तो चेंज आ रहा है तुम्हारे पास इन दिस केस इज इक्विवेलेंट टू 5 का चेंजेस आ रहा है। 5 का चेंजेस आ रहा है तो इसका मतलब इन दैट केस मेरे को 5 फैराडेज का रिक्वायरमेंट आएगा। सो बी मैचेस इन दिस केस विल बी इक्विवेलेंट टू ऑप्शन 4 यानी कि 5F। तो मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली। नाउ आई कैन से एग्जाम पॉइंट में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट बोल देते कि मेरे पास ए का 2 हो गया, बी का 4। आगे नहीं भी करोगे तो तुम्हारा पास काम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी करना है तो बाकी का तुम वही चेंज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन 51 का मेरा पास आंसर आएगा 3 इन दिस केस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स स्टेशन? रिडॉक्स स्टेशन हमारे पास क्या होता है, जहां पे मेरे पास गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो देखोगे तुम्हारे पास ऑप्शन बी है, रिडॉक्स स्टेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल ऑफ माय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हुआ सोडियम सल्फेट के साथ, तो बना बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसफेट बना प्लस NaCl। एक आयन दूसरे आयन से डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी चेंज नहीं हुआ। बेरियम का +2 था, अभी भी +2 है। सोडियम +1 है, तो अभी भी +1 है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज नॉट अ redox reaction. It is example of a double displacement reaction भी। 53 देखो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन पूछा है कि कहां पे मेरे पास इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हमको सबको मालूम होता है कि इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो ऑर्थो कंपाउंड में है। तो सिंपली चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड ऑर्थो है। पहला ऑप्शन देखोगे तो ये मेटा हो जाएगा। HF में तुम्हारे पास एक HF दूसरे HF के साथ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और ये जो है कंपाउंड ऑर्थो, हमको मालूम है कि ऑर्थो में क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, वेयर यू हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा कंपाउंड्स में तुम्हारे पास होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑप्शन इज करेक्ट इज 3 से। ओके, फाइलिंग सॉल्यूशन के बारे में पूछा है, बेसिक क्वेश्चन है कि फाइलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फाइलिंग ए एंड व्हाट इज कैन बी अ फाइलिंग बी सॉल्यूशन। फाइलिंग ए है, होता है मेरे पास भी एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या होता है? फाइलिंग इज नथिंग इज एक्वस कॉपर सल्फेट इज देयर, एंड यू कैन हैव फाइलिंग बी जो होता है दैट विल नथिंग इज अल्काइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं रोचेली सॉल्ट पे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि फाइलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। फाइलिंग सॉल्यूशन नथिंग इज एक्वस कॉपर सल्फेट, और ये तुम्हारे पास टेस्ट ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड के क्या आधार आता है। कीटोन जो कंपाउंड होते हैं वो नेगेटिव टेस्ट देता है फाइलिंग सॉल्यूशन का। ओके, you have 1 gram of sodium hydroxide is treated with the 25 ml of 0.75 molar HCl solution, यानी कि बेस और एसिड के साथ में रिएक्शन किया है। the mass of sodium hydroxide left unreacted is equivalent to, कितना मेरे पास बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अनरिएक्टेड है। अब हमको मालूम होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो तुम्हारे पास बेस होता है, वो रिएक्ट करता है तुम्हारे पास HCl से रिएक्ट करता है, तो एसिड बेस रिएक्शंस होगी यहाँ पे।
और सॉल्यूशन में बनेगा सॉल्ट बनेगा प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन द रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब तुम देखोगे तुम्हारे पास मेंशन किया है कि मोलरिटी ऑफ एक्सेल मेंशन किया है, वॉल्यूम एक्सेल किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितने मोल्स एक्सेल के कंज्यूम हो गए। सो नंबर ऑफ मोल्स एक्सेल के जो प्रेजेंट है दैट इज नथिंग इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम विल बी, सो आई कैन से 25 इनटू 0.75। ये ml में है तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट कैन कॉल्ड इन फैक्टर ऑफ 10 की पावर -3। इतने मोल्स मेरे पास एक्सेल के प्रेजेंट है। जितने मोल एक्सेल के हैं उतने मोल्स तुम्हारे पास आई कैन से एनएच कंज्यूम हो गए। सो आई कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनएच कंज्यूम जो होगा, number of moles of NH consumed in the reaction is same as the number of moles of HCl present। Perfect। अब बोलेंगे weight of NH कितना कंज्यूम हुआ। So weight of NH consumed is nothing is my number of moles of NaOH जितने हैं into molecular weight of NaOH that is nothing is 40। So I can correct is now is 25 into 0.75 into 10 की power -3 into molecular weight of NaOH। So that becomes in that case 750 मिलीग्राम, राइट। तो मेरे को 750 मिलीग्राम मेरे पास NaOH था वो कंज्यूम हो गया, वेट ऑफ NaOH। इनिशियली में क्या दिया है, आई कैन कोरेट इज 1 ग्राम, इसका मतलब दैट मींस आई हैव इनिशियली इज 10 की पावर 3 मिलीग्राम। कितना है इनिशियली, 10 की पावर 3 मिलीग्राम इज दैट। ओके, सो व्हाट यू कैन से amount of NaOH left or can say weight of NaOH जो left हुआ है, weight of NaOH left in the solution कितना बचेगा। हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियल वेव मेरे पास था 10 की पावर 3 था और उसमें से मेरा कंज्यूम हो गया 750 कंज्यूम हो गया। सो आई कैन से नाउ इज डिफरेंस इज 250 मिलीग्राम जो है मेरे पास वो लेफ्ट होगा। कितना बचेगा NaOH इन द रिएक्शन इज 250 मिलीग्राम। सो दैट मींस ऑप्शन ऑफ 4 इज द करेक्ट वन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में टेंशन नहीं होता है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कि कितने तुम्हारे पास प्रेजेंट है, उसके हिसाब से दूसरे के इक्वल कोएफिशिएंट में कंज्यूम हो जाएंगे। बेस्ड ऑन दैट आई कैन से हाउ मच अमाउंट ऑफ वेट ऑफ NaOH कंज्यूम, देन अमाउंट ऑफ NaOH लेफ्ट इन द रिएक्शन इज नथिंग इज इनिशियल माइनस कंज्यूम दैट इज द वेट ऑफ NaOH लेफ्ट। तो कितना बच रहेगा 250। ओके, ना क्वेश्चन है मेरे पास केमिकल बॉन्डिंग का, सिंपल क्वेश्चन है जहां पे मुझे ज्योमेट्री पूछा है कंपाउंड्स का रेस्पेक्टिव। तो पहला है अमोनिया बोला है। अमोनिया के पास हमको मालूम है 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो कंपाउंड भी नथिंग इज ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। सो ए मैचेस विद द वन विद द BrF3 के बारे में बोला है। BrF3 में मेरे पास अपन देखेंगे तो मेरे पास ब्रोमीन के केस में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 क्लोरीन के साथ कंबाइन है, यानी 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के केस में जो कंपाउंड बनता है स्ट्रक्चर दैट इज नथिंग इज स्क्वायर पिरामिडल कंपाउंड है। तो क्या आएगा, स्क्वायर पिरामिडल है। जियोन के केस में हम लोग देखेंगे 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो दैट मींस इट बिकम अ स्क्वायर टेनर स्ट्रक्चर इन दैट केस। SF6 स्टैंडर्ड एग्जांपल है केमिकल बॉन्डिंग में, ऑक्टेल होता है। SF6 इज द ऑक्टाहेड्रल ring। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग बोल देंगे मेरा ऑप्शन नंबर इज 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल केमिकल बॉन्डिंग है। ओके, ये एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल इंटेस्ट से क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे कि डी ब्लॉक के बारे में पूछा है कि तुम्हारे पास जो इनॉट की वैल्यू होती है वो Mn+3 का रिलेटिवली मोर पॉजिटिव होती है as compared to compound is chromium+3 and you have compound is a Fe+3 के कंपैरिजन। अब बोला कि ऐसा क्यों होता है। Now what you can do, you can explain in terms of electronic configuration के टर्म में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। Mn का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होएगा, Mn होता है that you can have atomic number is 25 is there, right? So that means you can have compound is argon 18 होता है तुम्हारे पास, 4s2 होता है and you can have is 3d5 is there. Now if you want to say कि compound is in form of Mn+2, Mn+2 means you have to remove 2 electrons from the outermost shell. Outermost means इसका highest value of principal quantum number. Now highest value of principal quantum number nothing is we have is 4s2 is there.
दैट मीन्स Mn+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा दैट इज बिकम इज अ 3d5 cell. Now you can have a Mn+3 बोला है, Mn+3 in this case is equal to 3d4 cell. क्या आएगा 3d4 cell. Now when you say अब Mn+2 का आ गया तुम्हारे पास 3d5 हो गया और ये हो जाएगा मेरे पास 3d4 है. So वो क्या बोल रहा है, नॉट वैल्यू फ्रॉम +3 to +2 फॉर्म जो कन्वर्शन है, राइट, +3 से +2 में हो रहा है, यानी कि D4 से कहां पे कन्वर्ट हो रहा है, कहां पे हो रहा है, D4 से D5 में कन्वर्ट हो रहा है. सो D4 से D5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज देयर, राइट. डी ब्लॉक का तुमको चैप्टर में तुमको एनसीईआरटी के इंटरेस्ट में ये मेरे को सॉलिड एग्जांपल मिल जाएगा. सिंपलेस्ट डेफिनेशन बेस पे मेरे पास की आइसोथर्मल क्या होता है. आइसोथर्मल का मतलब होता है जो प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट इज, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट. सो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. आइसोकोरिक बोला है, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास जहाँ पे मेरे आइसोकोरिक का मतलब जहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है. और आइसोबैरिक स्टैंड फॉर व्हाट इज बी बोला है, व्हाट इज बैरिक का मतलब तुम्हारे पास प्रेशर इज अ कांस्टेंट. एडियाबैटिक का प्रोसेस इन विच नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब नाइदर हीट इज लिबरेटेड, यानी कि हीट एक्सचेंज पार्ट इज 0. सो डी मैचेस इन दिस केस इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सिंपली आई से ऑप्शन 2. ओके. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड विद, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है कि कैसे कैलकुलेट करना है हमको. एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग कोरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्नियस इक्वेशन से कोरेट कर सकते हैं. जहां पे मेरे को मालूम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन नथिंग इज रेट कांस्टेंट जो होता है a into आर्नियस कांस्टेंट into e की पावर माइनस ea जो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी होता है by RT, right. This is the Arrhenius equation is. Now if I know the rate constant at two different temperature, I can find out in this case what should be the एक्टिवेशन एनर्जी. कैसे मालूम है, तुम्हारे पास जो टर्म आएगा तुम्हें याद हो तो स्टैंडर्ड आर्नियस इक्वेशन होता है 2.03 into log of K2 by K1, राइट. यहाँ पे टर्म आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म EA by R and here you have term is T2 minus T1 divided by T1 into T2. So if I know the rate constant at two different temperature, I can find out my activation energy there. ठीक है, तो ये आर्नियस इक्वेशन हमको मालूम होना चाहिए. रेट कांस्टेंट इज नथिंग इज इक्वल टू आर्नियस कांस्टेंट इनटू e की पावर EA which is activation energy by universal gas constant into per temperature. So option in this case it should be a 2 is correct one. Rate constant at two different temperature if I know, I can find out the activation energy of a reaction. Okay. A compound with the molecular formula C6H14 is there, and this says we have a two tertiary carbon. Tertiary carbon क्या होता है? A carbon atom when is connected with three other carbon. Tertiary कब होगा? Carbon atom three other carbon से connected होगा तब जाके हम लोग tertiary है. तो इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. फर्स्ट कंपाउंड है मेरे पास 2,3 dimethyl butane. So you can have 2,3 dimethyl butane. तो ये कंपाउंड हो गया 2,3 dimethyl butane. Now if I observe this carbon is connected with three other carbon, this carbon is connected with three carbon, तो ये 3 डिग्री का कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है. तो पहला ही स्ट्रक्चर मिल रहा है जहाँ पे मुझे 3 डिग्री का कार्बन प्रेजेंट है. और कितने हैं, 1 and 2. और क्वेश्चन में पूछा कितना है, I should have 2 tertiary carbon atom. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास ऑप्शन 1 है जहां पे मेरे पास 2 टर्शियरी कार्बन एटम है. 2,3 dimethyl butane is there. Okay. Now next is spin only magnetic moment is there. Spin and magnetic moment का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बिहाफ पे हमको इसको अप्रोच करना है. और बोला है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, यानी कि तुमको हर एक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोरेट करने पड़ेंगे. ओके. तो स्कैंडियम मेरे पास से स्टार्ट करें तो स्कैंडियम तुम्हारे पास होता है, स्कैंडियम तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 21 होता है. दैट मीन्स तुम्हारे पास 4s2 3d1 है. और बोला स्कैंडियम +3 यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होंगे, 0 है, स्कैंडियम के हो जाएंगे. स्कैंडियम के बाद आता है
स्कैंडियम फिर कैन हैव टिटेनियम इज देयर। टिटेनियम तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 22 है और बोला है कि टिटेनियम +3, इसका मतलब तुम्हारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्रोमियम तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 होता है, 4s1 होता है और होता है 3d5। ठीक है, अब बोला क्या है, क्रोमियम +2 बोला है। क्रोमियम +2 इन दिस केस यू हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक S से रिमूव करोगे एक D से रिमूव करोगे तो बनेगा ये वर्ड इज 3d4 बनेगा। यानी कि इसके पास कितने हैं, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रोमियम के पास कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मालूम होता है कि Fe+2 भी होता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों बोल रहे हैं Fe+2? Fe का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारे पास 26 होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस केस अगेन आर्गन 18 है, it is a 4s2 is there and it will be nothing is it is a 3d6 का concept है। So when I say what is Fe+2 means you have removed the 2 electrons, S से again remove किया तो बचा कितना 3d6 है। 3d6 है तो तुम्हारे पास देखोगे ऑर्बिटल डायग्राम में 6 सेकंड है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देना है तुमको, तो 5 बॉक्स बना लो तुम्हारे पास, एक एक इलेक्ट्रॉन तुमने सबको दिया, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सबको दिया, राइट। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में सबको एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, फिर पैरिंग स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पे पैरिंग कर दिया। पैरिंग करने के बाद देखो तुम्हारे पास यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 4 इज देयर, तो Fe+2 में तुम्हारे पास कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम के पास भी 4 है, Fe+2, तो ये दो कंपाउंड है जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो ऑप्शन इज नथिंग इज B and D have same number of unpaired electrons। दो भी किसी भी कंपाउंड के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होता है। व्हाई वी से, बिकॉज़ मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग इज गिवन बाय इज स्क्वायर रूट ऑफ n n2 n plus 2 bm बोर्स मैग्नेटॉन। तो कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि n निकालो फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, सिंपली कैन से कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो यानी कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम ही होगा। तो ये ट्रिक होता है एग्जाम में कि जहाँ पे तुम टाइम सेव कर सकते हो, पूरा कैलकुलेशन मत करो, सिंपली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो तुम्हारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जनरल टर्म मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे पास जो होता है वो तुम्हारे पास इंक्रीज करता है, एंड डाउन द ग्रुप तुम देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो तुम्हारे पास डिक्रीज होगा। अब एलिमेंट जो दिए हुए हैं मेरे पास, ओके, तो एलिमेंट में तुम इन दिस केस अरेंज करना स्टार्ट करोगे, so you can have normally element can be is boron, carbon, right, nitrogen, you have oxygen, and then you have fluorine is there, and down the group में carbon है, you can have silicon is there। तो along the period increase होगा, यानी कि फ्लोरीन का हायर होगा तुम्हारे पास, फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोर देन कार्बन, कार्बन सिलिकॉन में देखेंगे तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, यानी कि सिलिकॉन का तुम्हारे पास कार्बन से भी कम होगा। अब सिलिकॉन का यदि कार्बन से भी कम है तो आई कैन से कि लीस्ट हो जाएगा सिलिकॉन एंड हाईएस्ट हो जाएगा फ्लोरीन। ओके, एंड देन कैन से सिलिकॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यस, ऑप्शन 3 is a correct answer। Along the period, electronegativity increases and down the group, electronegativity decreases। Which of the following reagents can following reactant when you react with alcohols instantly reacts with the Lucas reagent? Lucas reagent होता है मेरे पास anhydrous ZnCl2 with the concentrated HCl। एक तरह से ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल के लिए काम आता है। 3 degree alcohols immediately gives white turbidity देता है, 2 degree gives turbidity into 5 to 10 minutes, or primary alcohol it does not gives turbidity at room temperature। When I say react instantly, that means we are talking about it should be a 3 degree alcohol। So we need to just identify which is a 3 degree alcohol। 3 degree means carbon is connected with 3 more carbon, so that is option number 2 is a 3 degree alcohol। So straightforward you can say 3 degree alcohols react immediately। Okay,
Now in terms of 64, what we can have is you have compounds of cobalt with amine is there, cobalt fluoride is there. That thing is octadal, differ in the magnetic behavior. Yes. Although both are cobalt plus 3, but what will happen is fluorine जो है तुम्हारे पास, there is nothing is example of weak field ligand है. And in terms of a cobalt with the amine will be example of a strong field ligand. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है, डेफिनेटली उनका मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तुम्हारे पास क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अब वो बोला है कि कोबाल्ट प्लस 3 डायमैग्नेटिक है और कोबाल्ट फ्लोराइड कंपाउंड जो है पैरामैग्नेटिक. यस, अब उसको चेक करना ही पड़ेगा हमको. तो तुम्हारे पास कोबाल्ट है, तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 27 होता है. So you can have argon 18 is there in this case. You have argon 18 is there. You have 4s2 is there, and you can have 3d7 is there. Now when I say cobalt plus 3 means दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किए, एक यहाँ से रिमूव किए, तो बच गया तुम्हारे पास कोबाल्ट प्लस 3 इज D6. तो ये याद रखना पड़ेगा कि कोबाल्ट प्लस 3 क्या होता है, D6 होता है. अब D6 के पास दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पॉसिबल है. एक तो इन टर्म्स ऑफ ये है लोअर एनर्जी T2G होता है, एंड देन यू कैन हैव इज इट विल हैव Eg ऑर्बिटल्स है. एक T2G होगा और दूसरा तुम्हारे पास Eg ऑर्बिटल. परफेक्ट. अब तुम्हारे पास D6 है, तो एक केस में जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा, तीसरा यहाँ पे जाएगा, फोर्थ इधर आएगा, फिफ्थ इधर आएगा और सिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का सबका पेयरिंग हो गया. सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कंपाउंड इज यस. अमाइन का केस में ये क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, तो ये तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक कंपाउंड है. तो ये स्टेटमेंट पार्ट करेक्ट है. Now when you have weak field ligand है, फ्लोरीन weak field ligand है, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी गैप बिटवीन T2G और Eg स्मॉल होता है. ये गैप स्मॉल होगा तो आई कैन से कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा. अब गैप स्मॉल है, सो यू कैन हैव एज फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे और फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आएगा. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तुम्हारे पास आएंगे 4 आएंगे. यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा. सो कोबाल्ट विद फ्लोराइड कंपाउंड जो होगा वो एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, और अमोनिया के साथ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 0 है, उसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, डायमैग्नेटिक. तो ये ऑप्शन ये भी करेक्ट है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. इस बार तुम पेपर में देखोगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चंस आए हैं. सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू विल बी राइट. अगेन तुम देखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 आया. अभी मैंने बोला था कि दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, ट्रू है. इसका भी तुम देखो आंसर है स्टेटमेंट नंबर 2 इज बोथ आर ट्रू. अब देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट. यदि पूछा है कि मेरे पास इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली के लिए H2 है, H2T है, H2Se है और H2S है. ऑक्सीजन फैमिली में व्हाट वी नो है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का होता है, एंड दैट लॉज इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है. एंड रेस्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ वी हैव इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट का फैक्टर डिटरमाइन करता है, राइट. तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज एक्सपेक्टेड टू बी इन दैट केस बी लोअर है, बट फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, बिकॉज इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज वाटर का जो होता है दैट इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज है. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली से. So boiling point of a compound of H2 is highest, and rest you can say is based on the increasing molecular weight. So both the statements are correct. So answer is 3, I can say. यहाँ पे हमको क्वांटम नंबर्स दिए हैं, उसका कोरिलेशन हमको पूछा है. ओके, पहला है ml इज देयर. ml है तुम्हारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका वैल्यू होता है वो वेरीज करता है -L से +Lb. तो ml बता रहा है तुम्हारे पास ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल इज है. ms तुम्हारे पास बताता है कि तुम्हारे पास स्पिन क्या है, स्पिन +½ है या फिर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -½ सो ms विल बी कोरिलेटिंग टू दिस. सो पहला 3 है, फिर 4 है. ओके, दो ऑप्शन आ रहे हैं, चलेगा. L in that case will indicate angular मोमेंट ऑर्बिटल मोमेंटम इन दैट केस, और एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं जो मुझे शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, राइट. L = 0 बताता है स्फेरिकल है, L = 1 बोलता है p सबशेल होता है, L = 2 बोलता है d सबशेल, यानी कि L इंडिकेट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. सो आई कैन से L मैचेस, ऑप्शन C मैचेस विद द 1,
Option C matches with the 1 and this will mean the option is correct, fourth one. Okay, and बचा फिर मेरे पास n, I can say belongs to size of the orbital. Okay. Now in terms of question number 67, we have in this case यहाँ पे बैचलर कॉलम लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट में है, उसको हमको कोरिलेट करना है कि इसके लिए कौन से कन्वर्शन के लिए मेरे पास रीजेंट्स और कंडीशंस क्या रिक्वायरमेंट है। कंपाउंड ए मेरे पास अल्कीन है, अल्कीन को हमको ब्रेक डाउन करना है, कार्बोक्सिल को वन बनाना है। नाउ अल्कीन कैन बी ब्रेक डाउन इन टर्म्स ऑफ कार्बोक्सिल, दैट मींस व्हाट वी कैन से वी कैन कैरी आउट द ओजोलिसिस देयर। क्या करना पड़ेगा, ओजोलिसिस कैन बी डूअल बी, सो यू कैन हैव कैरी आउट द ओजोलिसिस बी। बेंजीन है और यहाँ पे तुम्हारे पास एक बेंजल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, दैट मींस यू कैन कैरी आउट द फिल्ट्राफ असलेशन रिएक्शन। तो असलेशन में मेरे पास होता है बेंजल क्लोराइड विद द अनहाइड्रस AlCl3 है। ऑप्शन सी में है कि अल्कोहल है, कंपाउंड को हमको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कीटो ग्रुप कन्वर्ट करना है, दैट मींस यू नीड टू बी ऑक्सीडाइज, सो आई नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज गिवन टू इन दिस केस इज CrO3 है, ठीक है। सो टोटली अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज्ड इन टर्म्स ऑफ कीटोन है। यदि प्राइमरी अल्कोहल होता तो ऑक्सीडाइज हो जाता एसिड में। इथाइल बेंजीन कंपाउंड है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम सॉल्ट इज देयर। इथाइल बेंजीन कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम सॉल्ट इज देयर, दैट मींस alkyl group get oxidized. Alkyl group get oxidized when you carry out the reaction with the alkaline KMnO4 and heat. So alkaline KMnO4 के साथ heat का एक option यहाँ पे आएगा, so D matches with the 3 is there. अब देख लेते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन हो रहा है। तुम देखोगे A का जो ऑप्शन है, A जो है तुम्हारे पास वो मैच कर रहा है तुम्हारे पास 4 के साथ, A मैच कर रहा है तुम्हारे पास 4 के साथ मैच कर रहा है, ओके। एंड B जो तुम्हारे पास है वो मैच कर रहा है 1 के साथ, A मैच कर रहा है 4 के साथ, B मैच कर रहा है तुम्हारे पास 1 के साथ मैच कर रहा है, C मैचेस विद द 2 इज देयर एंड D मैचेस विद द 3 इज देयर। तो यानी कि ऑप्शन इज 1 इज द करेक्ट वन विद देयर, ओके। नाउ क्वेश्चन 68 वी कैन हाउ इज कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे जिससे ये कंपाउंड जो है अल्कीन कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड एज अ अल्कोहल है। So what I need to do is first I need to carry out the HBO, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से करने से क्या होता है कि यहाँ पे एक एंटी मार्करनेफ एडिशन ऑफ अल्कोहल होगा, सो यू कैन हैव एंटी मार्करनेफ एडिशन ऑफ अल्कोहल इज देयर। तो कंपाउंड तुम्हारे पास बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH2 CH2 और ये यहाँ पे आएगा व्हाट इज अल्कोहल ग्रुप इज देयर, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। नाउ दिस 1 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड कैन ऑक्सीडाइज इन टर्म्स ऑफ एल्डिहाइड with the help of a mild oxygen agent. Mild oxygen agent commonly we can have PCC होता है, PDC होता है, all this is example of mild oxygen agent which can oxidize the primary alcohols compound in terms of a aldehyde. So option is 4 is the correct one. Okay, the reagent which does not the reagent with which glucose does not react with this, glucose react नहीं कर रहा है, तो नाम ही हमको मालूम है कि जो ग्लूकोज जो कंपाउंड होता है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू साइक्लिक फॉर्म द ग्लूकोज जो एल्डिहाइड नाउ बिकम लेस रिएक्टिव एंड लेस अवेलेबल फॉर वीक रिएजेंट्स। तो कोई भी रिएक्शन में वीक रिएजेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उससे मेरा जो एल्डिहाइड है वो भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज इट्स गेट नाउ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ हेमी एसिड पार्ट। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वीक रिएजेंट्स है, जो भी वीक रिएजेंट्स है उसके साथ मेरा ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। तो कॉमनली मेरे पास स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आते हैं कि जहाँ पे वीक रिएजेंट्स है, वीक रिएजेंट्स आर नथिंग इज शिफ्ट रिएजेंट्स, वीक होता है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड है वो भी एक वीक रिएजेंट होता है तो भी रिएक्ट नहीं करेगा। सो बी और ई है दोनों ही वीक रिएजेंट्स है इसलिए ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा। ग्लूकोज टॉलेंस के साथ यस पॉजिटिव टेस्ट देता है तो तुमको कंपाउंड ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोज व्हेन यू रिएक्ट विद द HCN इट फॉर्म अ कंपाउंड साइनोहाइड्रिन फॉर्म। Glucose when you react with the hydroxyl amine in this case it forming compound is a oxide। तो A C D के साथ रिएक्ट कर रहा है, B और E के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, so B और E के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है यानी कि ऑप्शन इज 1। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन के बीच में जो है मेरे पास कौन कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड एटम्स है। इथेन होता है C2H6, इथेन में मेरा स्टैंडर्ड मालूम होता है कि इथेन में मेरे पास दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सो वी कैन हैव वन सिग्मा बॉन्ड इज देयर।
इथीन होता है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, दैट मींस यू कैन हैव इन दिस केस वी हैव वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। ओके, फिर ये कंपाउंड C2 है, एमओ थ्योरी से तुम निकालोगे तो तुमको मिलेगा कि C2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, राइट, बॉन्ड ऑर्डर C2 मॉलिक्यूल इज 2। इन दिस केस स्पेशल एग्जांपल होता है कि दोनों जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ C2। ये एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा कि C2 का एमो थ्योरी से यू विल हैव बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड बोथ द बॉन्ड्स विल बी नथिंग इज टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इथाइन है, you have कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, you have वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स। इथाइन में होगा तुम्हारे पास वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड, तो मेरा ऑप्शन मैच करेगा इन दिस केस इज वन। ओके, among the group 16 element which does not show -2, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करेगा, ये पूछा है। मेरे पास जो मेटल्स होते हैं जनरली दे शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मुझे निकालना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। ओके, डाउन द ग्रुप तुम्हारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव नीचे बढ़ेगा तुम्हारे पास, तो लास्ट एलिमेंट ऑफ योर ऑक्सीजन फैमिली इन दिस केस विल नॉट शो द -2 ऑक्सीजन स्टेट, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज इन दिस केस विल बी अ पोलोनियम। ठीक है, metals will not show the negative oxygen state, so polonium will not show the -2 oxygen state. Okay, केमिकल इक्विलिब्रियम के भी यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे केसी दिया हुआ है तुम्हारे पास रिएक्शन में, और कंसेंट्रेशन कंपोजिशन दिया हुआ है of A, B, C at any time is there, where concentration of A, B, C are all are equal. So what you need to do, you can find out the reaction coefficient. क्या करेंगे, reaction coefficient निकालेंगे। So reaction coefficient is nothing is concentration of B in the reaction into concentration of C divided by concentration of A whole square, right? This will be here. All the concentration are equal, that means my reaction coefficient is equivalent to 1. Now to compare this reaction coefficient with my Kc, value of a reaction coefficient is more than the Kc. If Q is more than Kc, that will indicate reaction have tendency to move in a backward direction. In order to attain the equilibrium, reaction move in a backward direction. So straightforward with this one. Okay. If both are equal, then you can say it's already a equilibrium state is achieved will be there. Or if we have other way, then I can say reaction move in a forward direction. So in this case, what do we have? Q जो है मेरे पास वो 1, Q का जो वैल्यू है रिएक्शन कोएफिशिएंट इज मोर देन द Kc, दैट मींस रिएक्शन हैव टेंडेंसी टू मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन विद देयर, सो ऑप्शन इज 1 इज द करेक्ट वन। ओके, अगेन आरडीएस इक्वेशन पर अगेन उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। आरडीएस इक्वेशन ही हमको यूज करना है, बोला ln वर्सेस 1/t का वर्ग। हमको मालूम है कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट जो होता है k इज दैट विल बी नथिंग इज RDS constant into e की power minus EA activation energy by RT is there. Now if I take ln both the side, then it becomes nothing is ln of k is equivalent to ln of A, and here is nothing is minus EA term is R, and you have 1/t का factor is there. So slope will be in this case equivalent to minus EA bar, यानी कि slope negative है। कौन सा कर्व है जहाँ पे slope negative है? I can say option 2 का slope negative है, and value of that slope is nothing is equivalent to minus EA by R. Minus EA by R भी my slope is there. Standard का ये simple. Okay, which of the following case will be KP and KC are not equal? KP and KC बोला है कि नहीं इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? डेल्टा एनजी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यदि KP डेल्टा एनजी यदि 0 होता है तो इसका मतलब KP इज इक्वल टू KC, तो हमको वो वाला केस निकालना है जहां पे डेल्टा एनजी नॉन जीरो है। ऑप्शन 3 में लिख रहा है यहाँ पे तुम्हारे पास 1 मोल इधर है, 1 मोल इधर है, और रिएक्टेंट साइड में केवल एक ही मोल है, तो डेल्टा एनजी का टर्म यहाँ पे क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू +1. So if your delta Ng is not equal to 0, your Kp and Kc are not equal, और इस केस में हम लोग बोलेंगे फिर Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर 1, तो दोनों इक्वल नहीं है, ऑप्शन इज 3 is there. ओके, जैसे मैंने बोला है कि जहां पे भी इस बार क्वेश्चन जो आए हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के भी यहाँ पे सबका आंसर क्या आ रहा है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट विल बी हिज। रेट कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक अल्केन्स आर गिवन, एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, और एक है नियोपेंटेन।
बॉइलिंग पॉइंट n पेंटेन में ग्रेटर होता है SO पेंटेन, यस ये स्टेटमेंट मेरे पास होगा ट्रू होगा। व्हेन द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ब्रांचिंग इंक्रीज करने से तुम्हारे पास सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, सो इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक विल बी देयर, परफेक्ट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो व्हाट आई कैन डू विल बी, आई कैन से बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट भी इन दिस केस। कंपाउंड which can undergo the reaction is faster, SN reaction जब faster होता है that means we are aware about reactivity in terms of SN1 reaction। SN1 तुम्हारे पास 3 डिग्री more than 2 डिग्री, 2 डिग्री is more than the 1 डिग्री, तो तुमको क्या आइडेंटिफाई करना है, फास्टर बोला है तो 3 डिग्री कौन सा है, ठीक है। 3 डिग्री निकालना है, 3 डिग्री नहीं दिख रहा है बट ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक 2 डिग्री का ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, यानी कि that means this is a 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, यानी कि इसका जो कार्बोनेट बनेगा दैट वी कैन कॉल एज 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोडाइन व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन as compared to any this compound। ये कंपाउंड तो SN1 पॉसिबल ही नहीं है, हेलोबेंजीन डज नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन इन दिस केस, और इन दोनों में यदि कंपेयर करेंगे तो आई कैन से ये 2 डिग्री कंपाउंड बनेगा, ये केवल तुम्हारा 1 डिग्री बनेगा। सेकेंड ऑप्शन है जो 2 डिग्री बन रहा है और साथ में बेंजालिक बन रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 डिग्री के साथ बेंजालिक का ऑप्शन है, तो डेफिनेटली 2 इज मोस्ट। और तुमको रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए तो आई कैन से सबसे ज्यादा 2 रिएक्टिव है, फिर तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 है, फिर ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन 1 इज द लीस्ट रिएक्टिव। क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव, आई कैन से ऑप्शन नंबर 2 इज द मोस्ट रिएक्टिव। ओके, energy of electron in the ground state of hydrogen for n equal to 1 is for helium plus gases minus xb। okay, Bohr's model पे क्वेश्चन है, so energy in the NHL is nothing is equal to minus 13.6 z square by n square in terms of electron volt per atom। ये एनर्जी होता है in terms of in NHL minus 13.6 z square by n square में। अब बोला है कि मेरे पास हीलियम के लिए बात कर रहे हैं, हीलियम के लिए भी कौन से बात कर रहे हैं, n इक्वल टू 1। सो एनर्जी हीलियम के लिए बात करेंगे तो n इक्वल टू 1, E1 फॉर हीलियम प्लस 1, सो माइनस 13.6 जेड होता है हीलियम के, कैन से 2 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, सो दैट मींस दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस x। यू हैव वन रिलेशन, यू हैव। बेरिलियम की बात कर रहे हैं, बेरिलियम प्लस 3 बट n इक्वल टू 2 इज देयर, सो आई कैन से एनर्जी ऑफ चाहिए यहाँ पे सेकेंड लेवल में, बट किसके लिए, बेरिलियम के लिए चाहिए। बेरिलियम कितना बोला है, +3, तो इसका एनर्जी हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर, जेड यहाँ पे होता है 4, सो ये 4 स्क्वायर होगा बाय n स्क्वायर, n यहाँ पे दिया है 2 तो ये 2 स्क्वायर होगा, तो ये टर्म आएगा तुम्हारे पास -13.6 जेड स्क्वायर, जेड इज इन दिस केस अभी एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो तुमको 4 का फैक्टर आएगा, यस दिस इज सेम, सो ये भी क्या हो जाएगा -x, तो इसका एनर्जी भी तुम्हारे पास -x होगा, so both will have same energies in this case, option 3 is a correct one। तो सिंपल बोर्स मॉडल पे क्वेश्चन था, यहाँ पे तुमको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NHL इज इक्विवेलेंट टू -13.6 z square by n square in terms of electron volt। In which of the following case भी एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, यदि रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी तुम्हारा इंक्रीज होगा। लिक्विड इवापोरेट टू वेपर, लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीज, 0 पे तुम्हारे पास एंट्रोपी ऑलमोस्ट 0 होगा तो एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बाइकार्बोनेट कंपाउंड, कार्बोनेट प्लस दिस, यहाँ पे सॉलिड सॉलिड और गैसेस कंपाउंड्स बन रहे हैं, रिएक्शन में भी सॉलिड फेज से गैसेस फॉर्म कन्वर्ट होते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूल यदि ब्रेकडाउन होता है, एटम्स बनता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा, तो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे तुमको ए सी एंड डी आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन इज 1 इन दिस केस। और हीटिंग का सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, बोला है कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा। ओके, प्यूरिफिकेशन टेक्निकली बोला तो सिंपल डेफिनेशन पे इस पे है, सब्लिमेशन एक डेफिनेशन होता है जहां पे डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फॉर्म हो गए। Okay, the process in which a solid compounds are directly converted into vapor phase is called a sublimation. The answer is 4th is the correct one.
ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिंपल एक क्वेश्चन दिया है जहां पे डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेंशन है और पूछा है कि कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है। ओके, कंपाउंड है फर्स्ट इज कोबाल्ट अमाइन विद द NO2। NO2 is an example of bidentate ligand is there, right? Bidentate का कहने का मतलब either its donor atoms can be nitrogen or it can be oxygen. If it is nitrogen or oxygen, that means you can have linkage isomers. जहाँ पे भी तुम्हारे पास multiple donation possible है, okay? एक से ज्यादा डोनेशन सेम कंपाउंड में लिगैंड में, तो उसको हम बोलते हैं लिंकेज। तो लिंकेज आइसोमर कब होते हैं? जब मेरे पास कॉमनली जो नाइट्राइड्स कंपाउंड है या फिर मेरे पास कंपाउंड जहाँ पे साइनाइड जैसे डोनर ग्रुप है या फिर एस्टीन ग्रुप है, तो ये कॉमन एग्जांपल है जहाँ पे मुझे लिंकेज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में लिंकेज पूछा है तो सिंपली तुमको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे नाइट्राइड्स है, साइनाइड्स है या फिर थायोसाइनाइड्स कंपाउंड है। ओके, सो ए मैचेस विद द 2 इज देयर, ए मैचेस विद द 2, दो ऑप्शन है। ओके, फिर आएगा मेरे पास कंपाउंड इज इन दिस केस इट कैन हैव कोबाल्ट अमाइन विद सल्फेट ऑफ ब्रोमीन इज देयर। ओके, अब ब्रोमीन दिया हुआ है मेरे पास, so now you can have bromine can be present outside the coordinate sphere or sulfate can be out. And n particle that exchange their position inside and outside the coordination sphere, we can have what is the ionization isomers, यानी कि तुम्हारे पास B मैचेस करेगा 3 से, B मैचेस से, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास जहाँ पे B मैचेस विद 3, स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन से आंसर इज नाउ ऑप्शन 3। आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो ऑप्शन मैच करके फटाफट आगे बढ़ जाओ, so that way you save your time and energy से। ओके, अगेन तुम्हारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है, मैंने जैसे बोला था तुमको कि यहाँ पे इस बार सारे क्वेश्चन जो भी है स्टेटमेंट वाइज सबके आंसर क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इज देयर। फिर भी रीड कर लो, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिल्ट्राफ रिएक्शन, यस, फिल्ट्राफ रिएक्शन अल्काइलेशन भी नहीं होता है, एसिलेशन भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एनिलीन जो होता है कंपाउंड एक लुईस बेस होता है, नाउ फिर गेट रिएक्टेड विद लुईस एसिड के साथ, जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो खुद एक एनिलीन के साथ रिएक्ट कर जाता है लुईस बेस के साथ, तो तुम्हारा सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। सो ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन वी कैन से aniline does not undergo filtrate alkylation. So this statement is a true statement. Aniline cannot be prepared through Gabler synthesis. Gabler synthesis is commonly used for preparation of amine, but amine में तुम्हारे पास क्या होता है कि Gabler में तुम्हारे पास SN2 रिएक्शन वहां पे होना चाहिए। SN2 तभी पॉसिबल होगा तुम्हारे पास कि जो वहां पे ये जो कंपाउंड एनायन होता है Gabler के लिए, और तुम्हारे पास RX होना चाहिए। सो RX शुड भी होना चाहिए, प्रेफरेबली शुड बी मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, या फिर 1 डिग्री का ग्रुप या फिर 2 डिग्री का ग्रुप। अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री का नहीं होना चाहिए, और इट कैन नॉट बी फिनाइल नहीं होना चाहिए। और एनिलीन में तुम्हारे पास क्या आ रहा है? फिनाइल ग्रुप इस है, क्योंकि यदि तुमने फिनाइल ग्रुप रख लिया और बोला कि चलो उसको मेरे को एनिलीन बनाना है, तो तुमने यहाँ पे हेलोबेंजीन रख लिया। हेलोबेंजीन रखते ही तुम्हारे पास ये बोलोगे कि इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, नहीं, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, नो SN2 due to strong carbon halogen bond. So in terms of halobenzene, what we get observed, due to strong carbon halogen bond, it cannot undergo a substitution reaction. If it cannot undergo substitution reaction, you don't get a formation of N-phenyl. यदि N-phenyl बनेगा ही नहीं कंपाउंड, तो उसका हाइड्रोलाइसिस से मुझे कभी भी एनिलीन भी नहीं बनता है। तो गैब्रियल सिंथेसिस में I cannot able to prepare a compound as aniline. तो ये स्टेटमेंट भी तुम्हारे पास करेक्ट है। So both the statements are correct. So option is 3 is the correct one. Find the following compound in terms of first ionization energy will be there. Ionization energy के लिए बात कर रहे हैं, तो हमको मालूम है कॉमन ट्रेंड इज अलोंग द पीरियड जो होता है वो E जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी आर अवेयर अबाउट। ठीक है, अलोंग द पीरियड मेरे पास इंक्रीज करता है, तो आई कैन हैव एलिमेंट्स कैन बी इज लिथियम, नॉर्मल वर्ड में लिख लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स मैंने सारे लिख लिए यहाँ पे। सपोज ऑक्सीजन एंड ऑल चाहिए तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली बोलते हैं कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज होना चाहिए, होता है, बट दो जगह पे डिफरेंस आता है, इन टर्म्स ऑफ बेरिलियम के टर्म में आता है, और एक टर्म आता है मेरे पास नाइट्रोजन के टर्म में आता है। नाइट्रोजन तुम्हारे पास होता है वो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड के कारण इसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज्यादा रहता है। बेरिलियम के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन तुम देखोगे इट बी NS2 होता है, यानी कि S सब शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। बोरॉन केस में तुम्हारे पास होता है 2s2 होता है,
और 2p1 होता है, यानी कि टू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2p सबशेल. नाउ इफ यू कंपेयर द आयनेशन एनर्जी s सबशेल का ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू p, और ये कंप्लीटली फील्ड सबशेल भी है, तो इसलिए तुम्हारे पास बेरिलियम का जो है आयनेशन एनर्जी वो बोरॉन से भी ग्रेटर होता है. तो तुम्हारे पास ऑर्डर क्या लिखोगे, लिथियम लीस्ट है, फिर तुम्हारे पास बोरॉन होगा, फिर तुम्हारे पास होगा बेरिलियम होगा, फिर तुम्हारे पास होगा कार्बन होगा, और फिर तुम्हारे पास है एलिमेंट है नाइट्रो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन. यहाँ पे तो ऑक्सीजन दिया ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन इज फोर्थ इज मैचिंग. तो ये चीज याद रख लो, अलोंग द पीरियड आयनेशन एनर्जी बढ़ता है तुम्हारे पास, हाफ फील्ड का ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू एडजेसेंट पार्शियल से, और बेरिलियम का कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स होते हैं, तो तुम्हारे पास ये इसके एडजेसेंट एलिमेंट से ग्रेटर होता है. सो ग्रुप 2 का आयनेशन एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 13. हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स विल गेट प्रेजेंट भी है. ओके, एटम्स पूछ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है. तो यूनिट्स के बारे में टेक कर लिया है कि कोरिलेटली, तो हर एक को चाहिए तो तुम्हारे पास. ओके, सो 4 ग्राम बोल दिया है. 4 ग्राम का मतलब है कि तुम्हारे पास एक तरह से ये 1 मोल हो गया. 2.27 है यहाँ पे, और एसटीपी में बोल दिया कि नेट केस 22.7 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, ये 0.1 मोल्स हो जाएंगे. तो इसका 0.1 मोल्स है, इसका ऑलरेडी 4 मोल्स है यहाँ पे, और 4a भी दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे एक तरह से एक एटम प्रेजेंट है, एक ही एटम प्रेजेंट है. Mole is a bigger quantity as compared to atoms because 1 mole will consist of a average number of atoms. तो सबसे बड़ा यूनिटी मोल है as compared to atom, और among the mole यहाँ पे 4 moles है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.1. तो आंसर इज ऑप्शन इज 3. That is 4 moles will have greater number of atoms. मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, हमको मालूम है स्टडी ऑफ कार्बोटाइन क्या ऑर्डर रहता है. 3 डिग्री कार्बोटाइन is more than the 2 degree कार्बोटाइन. 2 degree is more as compared to 1 degree. 1 is more as compared to a methyl कार्बोटाइन. ठीक है, तो मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, मोस्ट स्टेबल यानी 3 डिग्री. दिस इज ऑप्शन इज 3 डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन. बाकी देखोगे तो ये 1 डिग्री कार्बोटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है, और ये भी 2 डिग्री कार्बन है. ठीक है ना, कौन सा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री, यानी कि ऑप्शन इज. हेनरी कांस्टेंट वैल्यूज दिया हुआ है, कंपाउंड एबीसी का वैल्यू दिया है, और पूछा है सॉल्वेटी. तो एक काम करो, सबसे पहले तो हेनरी कांस्टेंट के वैल्यूज के टर्म में अरेंज कर लो. किसका हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा है यहाँ पे, 145, यानी कि बोला है कि ए का हेनरी कांस्टेंट ग्रेटर है, फिर सी का है, और फिर है बी. हमको मालूम है कि हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता है, सॉल्वेटी से टर्म से कोरिलेट होता है. हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेटी, यानी कि एस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो सॉलिडिटी का ट्रेंड क्या आएगा, बी मोर देन द सी, सी इज मोर देन द ए इज देयर. ठीक है, सो बी सी ए इज देयर, यानी कि ऑप्शन इज फोर्थ आर देयर. ओके, अ कंपाउंड इज कंसिस्ट ऑफ मोल कंसेप्ट इक्वेशन बेस्ड है, जहाँ पे परसेंटेज ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, और सी का परसेंटेज नहीं दिया. ठीक है, कोई बात नहीं. वी आर अवेयर अबाउट दैट सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए बी एंड सी कितना होता है, 100% होता है. तो तुम्हारे पास सी का परसेंटेज कितना आ जाएगा, सी का परसेंटेज आ जाएगा तुम्हारे पास, का मतलब ये 48% है, कि सम ऑफ द परसेंटेज शुड बी इक्वल टू 100. कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपल ट्रिक क्या है मेरे पास, ट्रिक होना चाहिए कि इन दैट केस आई कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स. So number of moles of A is to number of moles of B is to is equal to number of moles of C. That is nothing is weight of A. A हम 100 ग्राम मान लेते हैं, तो वेट ऑफ A का 32 होगा, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट यहाँ पे 64 है. B के नंबर ऑफ मोल्स होंगे 20, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ B वो है 40. C का एटॉमिक नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, दैट विल बी वेट ऑफ C 48 इज देयर, एंड एटॉमिक वेट ऑफ C इज इक्वल टू 30 इज देयर. तो ये टर्म आ गया, 32 से किया तो 1 हाफ आ गया, ये अभी हाफ आ गया, और ये 16 से डिवाइड किया तो ये नंबर 3/2 आ गया. तो 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 1:1:3 से. सो 1:1:3 is there, option is fourth is the correct one.
ठीक है। empirical formula is nothing is simplest ratio of the moles of A, B, C. So a compound in that case A, B and C3 get formed the reaction. ओके, अल्कोहल का रिएक्शन केमिस्ट्री बोल दिया है कि PCl3 के साथ और PCl5 के साथ प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। 3 moles of alcohol when get reacted with the compound as PCl3, it forming a 3 moles of RCl plus it forming 1 mole of a compound as H3PO3 बनेगा। अल्कोहल when reacted with the PCl5, ये again example similar टाइप की रिएक्शन है, दोनों ही SN2 की टाइप की रिएक्शंस होती हैं। RCl plus HCl और बनेगा कंपाउंड है POCl3। क्या बनेगा? POCl3 बनेगा, वहां पे POCl3 बनेगा मेरे पास ये कंपाउंड इन दिस केस। ठीक है, सो आई कैन राइट एज POCl3 इज देयर। तो A is H3PO3 और B is a POCl3, the option is 2 is the correct one. Okay. A plot of osmotic pressure versus तुमको बोला है in terms of concentration का plot किया हुआ है और straight line का slope mention किया हुआ है and what they asking find out the temperature. Okay, temperature पूछ लिया। अब हमको मालूम है कि osmotic pressure जो होता है that relation is nothing is concentration in terms of moles per liter into R into T is there. So if I try to plot these osmotic pressures versus concentration का ग्राफ बनाते हैं तो ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन होता है और इसका जो स्लोप होगा इन दिस केस शुड बी इक्विवेलेंट टू RT होता है। अब वो बोला है कि स्लोप जो है मेरे पास वो कितना है, वो है तुम्हारे पास 25.73 है। नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ R इज इक्विवेलेंट टू 0.083। टेम्परेचर तुमको मेंशन निकालना ही है तो T आएगा, तो T निकालोगे दैट विल इक्विवेलेंट टू 25.73 डिवाइड बाय 0.083, इसको डिवाइड करेंगे दैट केस 310। कैलकुलेशन जब भी करते हैं तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में आएगा। आंसर केल्विन में नहीं दिया है तो मुझे डिग्री सेल्सियस में निकालना पड़ेगा। तो -273 करेंगे तो आई कैन से कि टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस, दिस ऑप्शन इज 3 ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस सी करोगे तो स्लोप आता है RT, वेयर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड अल्कीन है और उसको KMnO4 के साथ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है, ये ब्रेक डाउन होगा और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब भी अल्कीन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो फाइनल कंपाउंड क्या बनता है, इट ऑलवेज फॉर्म अ एसिड स्टेप, तो एसिड बनेंगे, तो यानी कि ऑप्शन इज 4th इज फॉर्म। ठीक है। ये कब बनता है, एल्डिहाइड कब बनता है, जब तुम उसको रिएक्टिव एनालिसिस करते हो, यानी कि तुमने ओजोन से रिएक्ट कर इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन रिएक्ट किया, फिर जिंक एंड वाटर रिएक्ट। ठीक है, तो 3 तो नहीं बनेगा। एसिडिक KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट इट फॉर्म कंपाउंड एज एसिड इन द रिएक्शन। अगेन वैसे बोला है कि स्टेटमेंट और 1 and 2 के फॉर्मेट बोला है। इस बार क्वेश्चन आई डोंट एग्जामिनर ने क्या किया, उसको चाहिए था कि सारे स्टेटमेंट ही ट्रू रखा है। ओके, स्टेटमेंट 1 क्या बोला है कि कंपाउंड इज होमोलिटिकल कॉम्प्लेक्स। होमोलिटिकल का मतलब तुम्हारे पास सारे लिगेंड सेम है। यस, सारे लिगेंड सेम है। हेटेरोलिटिकल कॉम्प्लेक्स वेयर यू हैव मोर देन वन लिगेंड्स आर प्रेजेंट, एक अमोनिया है एक क्लोरीन है, मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होगा। Complex use has only one kind of ligand is there and here this compound has more than one kind of ligand. Yes, उसी को justify किया है। Heteroleptic means you have more than one kind of a ligand, that is a heteroleptic complex. तो ये भी true हो गया, both the statements are true, so option is 3. During the preparation of more salt base you can have ferrous sulfate है plus okay ferrous ammonium sulfate बोला FAS, which of the following compound is added to the prevent hydrolysis। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया कि जहाँ पे मोर सॉल्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मोर सॉल्ट फॉर्मेशन करने के लिए मुझे एसिड चाहिए होगा और एक एसिड इसलिए ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस प्रिवेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड एसिड हम लोग यूज करते हैं, दैट शुड बी अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो तुम्हारे पास मोर सॉल्ट में जो है FeSO4 होगा, रिएक्ट कराओगे तुम्हारे पास अमोनियम सल्फेट के साथ
and we can have water is there and we allowed to get standing के लिए तुम इसको छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए और ये तुम्हारे पास मोर सॉल्ट बनेगा that we can call as, ठीक है, formation of a more salt. Now more salt is nothing is one of the example of also it's a category of a double salt. More salt क्या है, एक category of a double salt है. तो इसके प्रिपरेशन में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं हो, इसके लिए मुझे क्या चाहिए वहां पे रिएक्शन में इट शुड बी अ कंसेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन इज इन दिस केस इट शुड बी अ 2. बाकी कोई आयंस रखेंगे तो वो रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा, तो वो अवॉइड करते हैं हम लोग. Identify the correct statement here. In this case, you have dipolement of this thing is करेक्ट स्टेटमेंट बोल दिया कि अमोनिया NF3 का कोरिलेशन किया है डायपोलमेंट के साथ यहाँ पे, और कैनोनिकल फॉर्म्स बोला है कार्बोनेट्स एंड ऑल दैट पार्टिकल्स. ओके, कैनोनिकल फॉर्म यदि कार्बोनेट बोलेंगे तो यस मेरा स्टेटमेंट बोला करेक्ट ही होता है. आई कैन से कि ये करेक्ट है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स भी आता है. और चाहिए तो वन बाय वन हम चाहिए तो पहले NF3 से कोरिलेट करें. NF3 में मेरे पास एनसीईआरटी में सॉल्ट एग्जांपल की कैटेगरी में है ये एग्जांपल, जहाँ पे नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन से कनेक्टेड है और उसका लोन पेयर है. तो लोन पेयर के कारण डायपोलमेंट अपवर्ड होता है, फ्लोरीन के कारण डाउनवर्ड नीचे होगा. तो ये डायपोल आपस में कैंसल आउट होते हैं. यदि डायपोल कैंसल आउट होंगे यानी कि NF3 का जो डायपोलमेंट होता है वो तुम्हारा अमोनिया से कम आएगा, क्योंकि अमोनिया के इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, तो इनके कारण डायपोल अपवर्ड है और इनके कारण भी डायपोल क्या है, अपवर्ड है. दोनों एडअप हो जाएंगे तो डायपोलेट ऑफ NF3 इज ग्रेटर, नहीं ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ग्रेटर नहीं होता है, वो लेस होता है. 3 केमिकल फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, यस कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो तुम्हारे पास CO डबल बॉन्ड है, तुम्हारे पास यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे तुम्हारे पास O माइनस है. इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तुमने तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास O माइनस बन गया, यहाँ पे तुम्हारे पास O माइनस ये बन गया. फर्दर तुम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, इसके साथ रेजोनेंस करा लो तो ये तुम्हारे पास बन गया यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे तुम्हारे पास O माइनस बन गया और ये तुम्हारे पास डबल बॉन्ड आ गया. तो यस इसके पास 3 कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो नीट में वही होता है कि टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे पास, तो फटाफट जो ऑप्शन पर टिक किया कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये करेक्ट है और यू आर कॉन्फिडेंट, आगे ऑप्शन सोचना नहीं है, फटाफट आगे निकलना है. तो तुमने देखा A फॉल्स है और 2 ट्रू है, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट. आगे सोचो मत, फटाफट आगे बढ़ जाओ. ओके, given the compound in the ionic compounds here have increasing the group number 1 से 6 के बीच में 0 ग्रुप से तुमको कोरिलेट करना है और इनका ग्रुप नंबर क्या आता है. ठीक है, अब एल्यूमिनियम जो होता है तुम्हारे पास वो आता है ग्रुप 3 में आता है, कॉपर आता है वो तुम्हारे पास ग्रुप 2 में आता है. ठीक है, बेरियम और ये तुम्हारे पास बेरियम स्ट्रोंशियम और कैल्शियम ये तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 4 तुम्हारे पास आएंगे, ग्रुप नंबर 5 में आते हैं ये तुम्हारे पास. कोबाल्ट वाले तुम्हारे पास ग्रुप नंबर आएंगे तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 4 में आते हैं, और उसके बीच वाला आता है मेरे पास मैग्नीशियम आएगा. ठीक है, अब बोला है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म में अरेंज करना है, तो सबसे कम नंबर कौन सा है, 2, यानी कि बी सबसे कम है, बी सबसे कम है, और सबसे ज्यादा कौन सा है, 6 है, ई हाईएस्ट है. ओके, बाकी भी देख लेते हैं. फिर है 2 के बाद नंबर 3, यानी कि बी के बाद है नंबर A, बी के नंबर बाद है नंबर A, फिर है मेरे पास D, फिर C और E से. तो ये सॉल्ट एनालिसिस हम लोग ग्रुप वाइज असाइन करते हैं, जिससे हमारे पास एनालिसिस पार्ट इज इजी हो जाए. तो ग्रुप 3 में आता है एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है, क्रोमियम आता है मेरे पास. ग्रुप 2 में कॉमनली एज कॉपर आता है मेरे पास. ग्रुप C में आते हैं यहाँ पे ग्रुप 5 में तुम्हारे पास बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम के एलिमेंट्स आते हैं. ग्रुप 4 में तुम्हारे पास है कोबाल्ट है, जिंक है, निकल है और Mn के कंपाउंड है. एंड मैग्नीशियम तुम्हारे पास आता है ग्रुप नंबर 6 में. ओके, आयरन का मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन. ओके, रिएक्शन भी आप पे बोला है कि थोड़ा रिएक्शन केमिस्ट्री आना चाहिए. अल्कलाइड है, सोडियम साइनाइड से रिएक्ट कराया तो SN2 रिएक्शन हुआ मेरे पास. तो ये आयोडीन गेट रिप्लेस बाय CN, तो तुम्हारे पास 1 2 3 कार्बन है और आयोडीन रिप्लेस हो गया तुम्हारे पास CN ग्रुप से. फिर तुमने उसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया,
साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से तुमको कंपाउंड बनता है अमाइड, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंपाउंड जो बना अमाइड बना। अब अमाइड कंपाउंड जो बना उसको बोला है कि रिएक्ट विद द ब्रोमीन एनएच के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ब्रोमीन एनएच के साथ रिएक्शन करा है, इसका मतलब है हॉफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बनेगा। तो यू कैन हैव अमाइड कन्वर्टेड इनटू अमाइड ग्रुप, तो ये अमाइड ग्रुप बन गया। परफेक्ट, तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3 प्रोपाइल अमाइड इन द रिएक्शन। क्या आ गया? प्रोपाइल अमाइड इन द रिएक्शन। अगेन तुम देखो इस बार काइनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, सिंपल अगेन क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्वार्टर्स, यानी कि 4 टाइम्स बोल दिया, एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 टू हियर इज 57। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर तुम्हारे पास T1 था, वो तुमने बोल दिया कि 27 था, यानी कि दैट मींस इक्विवेलेंट टू 300 केल्विन है। T2 टेम्परेचर है, दैट मींस इक्विवेलेंट टू 57, 57 को तुम ऐड कर दो 273। परफेक्ट, तो ये नंबर आ जाएगा तुम्हारे पास 5, दिस विल बी 0, ये नंबर ऐड हो गया 1, सो वी कैन कॉल इज 8 + 3 13 एंड वाज दिस 3300। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया टेम्परेचर T1 हो गया, और ये टेम्परेचर इज T2 इज देयर, तो टेम्परेचर दे दिया। और रेट रिएक्शन में इट कम्स टू बी क्वाड्रेटिक, यानी कि दैट मींस K2/K1 जो टर्म है वो बोल रहे हैं कि दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स। नाउ हमको मालूम है कि आरडीएस इक्वेशन 2.33 log of here is K2/K1, and here you have factor of activation energy that can called as EA by, you can call to by R, and here is T2 minus T1 divided by T1 into T2. Now simply अभी T1 T2 की वैल्यू पुट अप कर दो K2 and K1 की, now get the idea about what is activation energy. Okay, अब ये देखो यूनिट्स जूल्स के टर्म में दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू हमको लेना है, दिया भी है आर शुड बी 8.314, तो आर को 8.314 करोगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, आई गेट आंसर इज एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 38.04, दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोल आएगा। ठीक है, इसका मतलब दैट इज ऑप्शन इज 3 इन दिस केस। Okay, consider the following reaction in a sealed vessel at equilibrium here is, equilibrium पे तुम्हारे पास N2 दे दिया, O2 दे दिया, और तुम्हारे पास NO फॉर्म दे दिया। ठीक है, ये कंपाउंड मेरे को मेंशन कर दिए हैं और पूछा है कि रिएक्शन में अल्फा क्या है। ठीक है, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई फर्स्ट फाइंड आउट द हियर इज, इक्विलिब्रियम पे दिया तो मुझे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। So equilibrium constant for this reaction I can say it's nothing is equivalent to concentration of N2 into concentration of O2 divided by concentration of NO का square आएगा। Now put the concentration of N2 that we can call as 3 into 10 की power minus 3, O2 concentration is 4.2 into 10 की power minus 3 divided by concentration of NO का square, that is 2.8 into 10 की power minus 3, और स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो ये बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो आता है दैट विल बिकम इज 1.6। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन अभी 0.1 दे दिया है, तो हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल ये 0.1 है, ये 0.0 होगा, और ये 0.1 से कुछ कंज्यूम होगा तो अल्फा के टर्म में लेंगे तो 0.1 into 1 माइनस अल्फा होगा, तो ये बनेगा 0.1 अल्फा बाय 2 बनेगा, और ये बनेगा 0.1 अल्फा बाय 2 बनेगा। Right? Now put the concentration of N2 O2 now in this term of the alpha and 0.1 के टर्म में, तो ये टर्म आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 4, here is 1 माइनस अल्फा का। now ये सिंपल इक्वेशन बन गई अल्फा के टर्म में, दोनों साइड रूट ले लो। now if you do the root big, you'll find alpha is coming out to be nothing is 0.712, तो आंसर in this case is equivalent to 2। ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना कोरिलेट करो कि विद द हेल्प ऑफ न्यू कंसंट्रेशन 0.1 उस पे अल्फा का एक्सप्रेशन आएगा। नाउ टेक द रूट बोथ द साइड, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा आता है 0.717, आंसर इज 2।
वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन बोल दिया, रिवर्सिबल भी है और आइसोथर्मल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। Now for reversal isothermal expansion is हमको मालूम होता है work done का formula, work done in terms of reversible isothermal in this case is equal to minus 2.03 n RT log of V2 by V1 और in terms of the pressure के टर्म में बोलेंगे तो P1 by P2। Now put कर लो तुम्हारे पास टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स को, तुम्हारे पास 1 मोल है, कैलोरी के टर्म में कोरेक्ट करना है तो R तुमको 2 दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए हमेशा, तो दैट इज 298 केल्विन है मेरे पास, एंड यू कैन हैव इज लॉग ऑफ P1 by P2, so that means 20 by 10 is there। कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टर्म नेगेटिव ही है तो आंसर शुड बी नेगेटिव, एक ही ऑप्शन है जो नेगेटिव है, फोर्थ करने के आंसर इज शुड बी माइनस 413.14 कैलोरीज। The mass in gram of copper get deposited by passing is 9.648 B। ओके, कितना करंट पास करने से, टाइम दिया हुआ है, कितना कॉपर डिपॉजिट। तो फैराडेज लॉ पे क्वेश्चन है मेरे पास जहाँ पे हमको मालूम है कि वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग इज इक्विवेलेंट टू Q by F और that can called as IT by F। तो वेट पूछा है, that is unknown to us अभी, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज नथिंग इज एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, तो इक्विवेलेंट वेट इज 63/2। करंट दिया हुआ है तुमको 9.6487, टाइम दिया हुआ है 100 इज और F इज 9650। यहाँ पे F दिया हुआ है तुम्हारे पास, दैट शुड बी इज इक्विवेलेंट टू, F का 9 से तो नहीं, यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दिया है तो समथिंग डिफरेंट दिया है, वही जो दिया है वो यूज करना है, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए दिया है। सो दैट इज 96487 दिया हुआ है, तो उससे वेट आ जाएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.315 ग्राम, यानी कि ऑप्शन इज 4। ओके, अल्कोहल कंपाउंड है, PbR3 से रिएक्ट कराया है, SN2 रिएक्शन होगा तो OH रिप्लेस हो जाएगा Br से, और फिर अल्कोहलिक वेट से रिएक्ट किया है तो तुम्हारे पास एलिमिनेशन होगा। तो पहले देख लेते हैं, PbR से रिएक्ट करा तो ये कंपाउंड इन दिस केस बनेगा, ओके, तो OH की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, फिर ब्रोमीन को तुमने अल्कोहलिक वेट के साथ रिएक्शन कराया तो E2 रिएक्शन हो गया, E2 रिएक्शन होने के बाद मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा, E2 रिएक्शन के कारण मेरे पास कंपाउंड बनेगा अल्कीन गेट फॉर्म रिएक्शन। तो पहले बना कंपाउंड A, फिर बन रहा है कंपाउंड बी, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पहले SN2 हुआ और फिर उसका E2 एलिमिनेशन करके मेरे पास बन गया सेटजेफ अल्कीन, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज 3 से। ओके, नाउ व्हाट इज इट, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे पास, अ पेयर ऑफ लैंथराइड आयंस व्हिच आर डायमैग्नेटिक, कौन कौन से आयंस है वो मेरे पास हमने बोला है डायमैग्नेटिक का आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो दे आर आस्किंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होते हैं। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक है, एफ ब्लॉक का सीरियम जो होता है तुम्हारे पास आउटर मोस्ट में मेरे पास एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एफ के अंदर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, डी के अंदर एक होते हैं और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इफ आई वांट टू से सीरियम +4 यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो बनता है F0 बनेगा, 4F0 बनता है, 5D0 बनता है और ये बनता है 6S0 बनता है, यानी कि दिस कंपाउंड बिकम अ डायमैग्नेटिक केस, ठीक है। यूट्रियम के केस में तुम देखोगे तो यूट्रियम के केस में मेरे पास देखोगे तो ऑटोमोस्ट में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन तुमने रिमूव किया, F13 और आता है, और डी के अंदर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड लास्ट एलिमेंट होता है ये ग्रुप का, तो तुम्हारे पास एलिमेंट बनता है F13 होता है, ये नॉर्मली कैन हैव इज 4F नॉर्मली देखोगे तो, प्लस यू कैन हैव कि 5D1 का है
और तुम्हारे पास ये आएगा 6s2 का आता है। तुमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो गए, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, तो ये बन जाता है 4f14, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैर अप है। सारे इलेक्ट्रॉन पैर अप है तो तुम्हारे पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कहलाता है डायमैग्नेटिक। तो यानी कि Cm+1 और Yttrium+2 इज अ एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक। थैंक यू। Hello all. Now I'll be starting with the biology section. Okay. So here I have divided the biology section into two parts, that is botany as well as zoology. So first we are going to do with the botany part. So we are starting with the question number 101, that is identify the set of correct statement. So here हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी प्रॉपर्ली रीड करना है कि कौन सा करेक्ट मेंशन किया है या इनकरेक्ट मेंशन किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। The flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. Is this statement correct? No, this statement is not correct. The flower of Vallisneria are colorful and produce nectar. They are aquatic plant. कहाँ से वो colorful रहेंगे? No. The flower of water lily are not pollinated by water mention किया है. Yes, it is true statement. In most of the water pollinated species, the pollen grain are protected from wetting. Yes, aquatic plant में क्या होता है, जब ये pollination किसके थ्रू होता है, water के कंडीशन में होता है। तो जैसे pollen grain रिलीज होगा, pollen grain जब ये रिलीज हो रहा है तो pollen grain को protective covering दिया जाता है। तो this is also the correct statement. Pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon like बोला गया है। Yes, it is a true statement. NCERT का डायरेक्ट लाइन है कि हाइड्रोफाइट में कैसे रहते हैं, लॉन्ग और रिबन लाइक रहते हैं। So this is also a true statement. In some hydrophyte, the pollen grains are carried passively inside the water. Yes, some hydrophytes में क्या होगा, मेंशन किया है कि pollen grain are carried passively inside the water. तो water current carry करके ले जाता है pollen grains को। तो this is also the true statement. So out of here 5 स्टेटमेंट दिया गया है, 5 स्टेटमेंट में से 1 2 3 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा है, बी सी डी एंड ई करेक्ट है, बी सी डी एज वेल एज ई करेक्ट है। तो ऐसे ऑप्शन हमें इधर कहां दिख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, बी सी डी एज वेल एज ई ओनली। तो द आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे 102। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेटिंग। तो ये तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या पूछा है इधर, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर हैबिटेट में बहुत सारे स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उसको उठा के दूसरी जगह पे रखा जाएगा। ये तो एक्सी2 हो गया है ना, एक्सी2 हम मतलब, और इनसी2 हमें पता है, इनसी2 मतलब क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट। एक्सी2 मतलब क्या है, हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो हैबिटेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सी2 हैबिटेट, एक्सी2 कंजर्वेशन। तो इधर ऑप्शन में तो एक्सी2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, इन सिटू है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑब्वियसली इन सिटू तो नहीं हो सकता है, तो आंसर रहेगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो सेकंड का ऑप्शन आंसर विल बी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of. तो this question is from biomolecules. जिसने प्रॉपरली रीड किया है, वो डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का। तो इनहिबिशन ऑफ एक ही दिया है, एक ही इनहिबिशन दिया है, उन्होंने मेंशन किया है, जिसका एग्जांपल देके दिया है, that is competitive inhibition. Inhibition of succinate dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of what, competitive inhibition. तो आंसर क्या रहेगा, आंसर 1 competitive inhibition होगा। चले, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है, ये डायरेक्टली तुम्हें पता ही है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है ये। तो इधर क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर which is destined to form the root when the seed germinates. तो हमें मालूम है रूट कहां से ओरिजिनेट होगा और शूट सिस्टम कहां से ओरिजिनेट होगा। रूट कहां से ओरिजिनेट होगा, रेडिकल रीजन से ओरिजिनेट होगा, रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल रीजन। शूट सिस्टम कहां से ओरिजिनेट होगा, प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होगा। तो इधर क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, which is destined to form the root when the seed germinates. सीड जर्मिनेशन के बाद कहां से रूट अराइज होगा, तो रेडिकल। तो रेडिकल कहां दिख रहा है, C is the radical, C is the radical। और D क्या है, अगर उन्होंने बोला है रूट रेडिकल के प्रोटेक्टिव कवरिंग बोला है, तो क्या मेंशन करेंगे हम लोग, D मेंशन करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि रूट कहां से अराइज हो रहा है, रूट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल रीजन, सो द आंसर विल बी C। C मतलब ऑप्शन कहां है वो देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 में C मेंशन किया है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 C विल बी द आंसर। चले,
तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। ये कौन सा चैप्टर का है? बुलिफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये कौन से चैप्टर में पढ़े हम लोग? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट वाला सेक्शन में जब डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का प्रॉपर डाइसेक्शन देके उन्होंने मेंशन किया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तो उधर से लिया गया है बुलिफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। ये कहाँ दिखते हैं बुलिफॉर्म सेल्स? मोस्टली मोनोकॉट प्लांट में दिखता है। तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन द मोनोकॉट विल बी द आंसर। बाकी कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट, कुछ रिलेशन नहीं है बुलिफॉर्म सेल का फोटोसिंथेसिस से। Providing large space for storage of sugar, not at all responsible for storage of sugar. Protecting the plant from stall stress, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? Inward curling of leaves in the monocot plant. तो आंसर will be 3 for this question. Next question. Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? तो ये photosynthesis का actual question, photosynthesis in higher plant का question है। तो उन्होंने बोला है कि डार्क रिएक्शन के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। हमें पता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन दो टाइप में डिवाइड हुआ है, एक का नाम है लाइट रिएक्शन और एक का नाम है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? लोकेशन क्या है डार्क रिएक्शन का? स्ट्रोमा है, राइट। तो स्ट्रोमा में क्या क्या रिक्वायर्ड है? लाइट की रिक्वायर्ड है? नो, तो लाइट की दो रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रोमा में फिक्स किया जाता है इधर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट। और एटीपी एंड NADPH जो एसिमिलेटरी पार्ट्स है उसकी तो रिक्वायरमेंट है ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADPH, वैसे ऑप्शन C, D and E कहां दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर विल बी द फर्स्ट वन, C, D and E। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम from a fully developed parenchyma cell is an example for। तो इधर क्वेश्चन में क्या, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन। उधर मेंशन किया था 3 सब टॉपिक में, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो हमें पता है फॉर एग्जांपल मैं क्या दूं, प्राइमरी में कोई भी मेरिस्टम हो जाए, प्राइमरी मेरिस्टम कंसीडर करेंगे। प्राइमरी मेरिस्टम will differentiate to form what? A permanent tissue, primary permanent tissue, primary permanent टिश्यू बनाएगा, राइट। तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कैन डी डिफरेंशिएट व्हिच कैन रीगेन इट्स एबिलिटी फर्दर टू डिवाइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो इधर से क्या बनेगा? डी डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन? they have asked that formation of interfascicular cambium. Interfascicular cambium is a secondary meristem, is an example of secondary meristem। तो बन क्या रहा है? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बन रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इधर मेंशन क्या किया है? पैरेन्काइमा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। तो ऑप्शन में डी डिफरेंशिएशन कहां दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ही डी डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्टली इसमें मार देंगे लाइन, तो आंसर विल बी 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। हिंट 2 कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का क्वेश्चन है। उधर बहुत सारे एंजाइम्स दिया गया है, हर एक का रेस्ट्रिक्शन साइट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है तो उसका एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट रहेगा, वहां जाके वो उसकी एक्टिविटी दिखाएगा। तो उस रेस्ट्रिक्शन साइट कितने बेस पेयर लॉन्ग है, ऐसा पूछा है। हिंट 2 ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन साइट बोल सकते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बेस पेयर? 4, 10, 8 और 6। इट इज एनसीईआरटी में मेंशन किया है 4 to 6 और 6 to 8, लेकिन हिंट 2 का स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है इट इज ऑफ 6 बेस पेयर। तो आंसर विल बी 4, यस 4 करेक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रॉपिकल, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? ट्रॉपिकल रीजन शोज ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। Yes, it is from that chapter only. So tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification. Yes, it is a true statement. Yes or no? ये एकदम properly true है, क्योंकि tropical latitude, tropical region क्या होता है? It less seasonal है या more seasonal है? It is a less seasonal one. मतलब उधर क्या रहता है? Undisturbed condition maintain किया जाता है। Next स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल। नो, मैंने अभी जस्ट बताया था इट इज लेस सीजनल, तो ये सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। सेकंड स्टेटमेंट इज गलत स्टेटमेंट है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक, यस, क्योंकि वो लैटिट्यूड उसी लैटिट्यूड में प्रेजेंट है, तो मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक रीजन। Constant environment promote niche specialization. Yes, it is also a true statement. Direct NCERT का लाइन है, इधर कोई कुछ ट्विस्ट एंड टर्न भी नहीं किया गया है, स्ट्रेट NCERT का लाइन ही उठा के डाला है इधर। Tropical environment are constant and predictable.
It is constant. Yes, it is constant and it is predictable. So एक ही wrong हुआ है, कौन सा है स्टेटमेंट बी गलत हुआ है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए सी डी ई, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट कहाँ दिख रहा है हमें, ए सी डी एन, यहाँ थर्ड, तो आंसर विल बी थर्ड। यस, परफेक्ट। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is not a criteria for classification of fungi? Fungi was from which chapter? Biological classification. तो हमें पता है फंगस को अगर क्लासिफाई करना है तो फंगस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यस, स्पोर फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। फ्रूटिंग बॉडी, यस, इट इज मेजर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग फंगस। Morphology of mycelium, yes, it is also required. Which is not required? Mode of nutrition. I think all the fungus are saprophytic organism mostly, mostly. So mode of nutrition is not required. So answer, which one of the following is not a criteria? Not a criteria mention किया है, तो mode of nutrition, तो answer क्या रहेगा? 4. Okay, अभी next question में move on हो जाएंगे हम लोग। How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Calvin cycle? ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। हमें पता है कैल्विन साइकिल इज नथिंग बट द C3 साइकिल, ठीक है। तो 1 टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल मतलब 1 टर्न में कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा? 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा। कितने टर्न चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए? ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ATP are required for every molecule of CO2 fixed. सिंगल साइकिल के बारे में पूछा गया है। सिंगल साइकिल में ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितने ATP और NADPH? टोटली हम लोग यूज करेंगे इधर एक ATP कहाँ, मतलब 3 स्टेप में डिवाइड हुआ है ना केल्विन साइकिल। फर्स्ट स्टेप को कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, सेकंड वाले को रिडक्शन बोलेंगे, थर्ड वाले को क्या बोला जाता है? रीजनरेशन बोला जाता है। तो टोटली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिक्वायर्ड है। ओवरऑल ये तीनों स्टेप मिला के देखा जाएगा तो 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट है। तो 3 ATP कहां दिख रहा है? ये तो करेक्ट है 3 ATP, लेकिन 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH बोला, ये रॉन्ग है। 3 ATP करेक्ट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH ये करेक्ट है। देखते 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP 2 मॉलिक्यूल, हाँ देखते हैं आंसर क्या रहेगा। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 112, these are regarded as a major cause of biodiversity loss. तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? 4 लॉस एनसीईआरटी मेंशन करता है। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, सेकंड वाला है फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड वाला है व्हाट इज द थर्ड वन? ओवर एक्सप्लॉयटेशन मेंशन किया है। को एक्सटिंक्शन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज, एंड देन हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन भी है। और एक कौन सा है? एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये 4 है, लेकिन एलियन स्पीशीज इन्वेजन तो इधर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में। तो क्या रहेगा आंसर? ए, बी और डी आएगा, आना चाहिए। ए, बी, डी कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में, ए, बी, डी ओनली। म्यूटेशन नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा, तो आंसर क्या रहेगा? सेकंड वाला। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 113, कैपेसिटी ऑफ to generate a whole plant from any cell of the plant is called। हाँ, ये कहाँ मेंशन किया है? ये एक्चुअली स्ट्रैटेजीज का क्वेश्चन था, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज का पार्ट उठा के कहाँ डाला है? बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट में डाला गया है। तो उधर क्लियरली मेंशन किया है टिश्यू कल्चर के पार्ट का क्वेश्चन है। तो इधर क्या है? द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट बॉडी, होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज। प्लांट की एबिलिटी रहता है, एक सिंगल पर्टिकुलर सेल कैन गिव राइज टू एंटायर प्लांट बॉडी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन तो नहीं है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, माइक्रोपोटेंशियल, टोटीपोटेंसी। थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो। द इक्वेशन ऑफ वॉलर्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज, द इक्वेशन दिया है, क्या पूछा गया है? फ्रॉम दिस इक्वेशन के इंडिकेट्स, के क्या इंडिकेट करता है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, वो ग्राफ है ना, तो उसी का क्वेश्चन है। तो इधर किसके बारे में पूछा गया है? के क्या इंडिकेट करता है करके बोला है लोगों ने। के इज नथिंग बट कैरिंग कैपेसिटी। अगर एन पूछा गया है तो एन क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी तो नहीं है, लेकिन हमें क्या, वी आर interested in k is nothing but carrying capacity, तो आंसर will be 1, डायरेक्ट आंसर 1 है आंसर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 115 कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा गया है 2024 के नीट में। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर रीजन ऑफ व्हिच फेज ऑफ द क्रोमोसोम करके पूछा है।
we know that all the chromosome get aligned at equatorial plane at which phase मेटाफेज में अलाइन होता है. तो काइनेटोकोर से मतलब इधर से स्पिंडल फाइबर अराइज होगा, ये स्पिंडल फाइबर will be attached to the at which phase मेटाफेज. ये तो डायरेक्ट आंसर है, कोई भी मार्क कर लेगा. 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी इजीली मार्क कर सकते हैं क्योंकि 10th स्टैंडर्ड से ही सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाया जा रहा है. तो आंसर विल बी 4 मेटाफेज डायरेक्टली विदाउट सेइंग एनीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, मॉर्फोलॉजी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. तो इधर उन्होंने मेंशन किया है, दो डायग्राम दिया है, दो फ्लावर का डायग्राम दिया गया है. तो इधर पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोचियम विद रेस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर ए एंड बी. तो ए एज वेल एज बी है. तो ये कौन सा फ्लावर है करके पूछा गया है. सी द शेप ऑफ द दिस वन. ओवरी कहाँ लोकेटेड है, ओवरी एकदम अंदर चला गया है, ओवरी अंदर है, सारे फ्लोरल्स बाहर हैं. तो इस टाइप ऑफ फ्लावर को क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस फ्लावर. मतलब अंदर इन द सेंस ऑल आर नॉट एट द सेम लाइन. ये देख के स्टूडेंट हाइपोगाइनस फ्लावर है करके मार्क करके आ जाएंगे क्योंकि हाइपोगाइनस फ्लावर भी बोलते क्योंकि सेम लाइन. नो, इट इज सॉसर शेप दिख रहा है इधर. तो दोनों एक्चुअली पेरिगाइनस का ही एग्जांपल है. दोनों किसका है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में है. तो दोनों किसका है, पेरिगाइनस. तो ऑप्शन में से पेरिगाइनस, हाँ सेकंड ऑप्शन है, पेरिगाइनस एज वेल एज पेरिगाइनस. तो आंसर क्या है इसका, सेकंड ऑप्शन. चलो अभी हम लोग हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. 117 ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फंगस के बारे में. फंगस का एग्जांपल पूछा गया है, उसका नाम पूछा गया है. तो दिस इज फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फंगस का पार्ट है. तो राइजोपस इज नथिंग बट वी नो राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड. यस, राइजोपस ब्रेड मोल्ड है. ए का 3 है. एंड देन यूस्टिलागो इज नथिंग बट स्मर्ट फंगस. तो बी का 2 है, बी का क्या है 2 है. तो 3 और 2 ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, पहला देख लो. ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2, 1 और 3 है, 1 और 3 है, इसमें तो नहीं है. तो 1 और 3 में से कोई एक रहेगा. तो 1 और 3 में से अभी सी का भी देख लेते हैं. क्वेश्चनिया इज नथिंग बट द रस्ट फंगस. तो सी का क्या रहेगा, 4 रहेगा. यस और नो, सी का क्या रहेगा 4. तो सी का 4. तो आंसर क्या रहेगा, डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन रहेगा. और एक बार देखना है तो देख लो. राइजोपस का क्या है, ब्रेड मोल्ड रहेगा. यूस्टिलागो स्मर्ट फंगस है. क्विसिनिया रस्ट फंगस है. यानी कि सी का क्या रहेगा, सी का 4 रहेगा. एगेरिकस इज नथिंग बट द मशरूम. तो डी का इज 1. तो 3 2 4 1, 3 2 4 1. तो आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. चलो अभी हम लोग मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. In a plant, black color seed is dominant over the white seed color. In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype you will cross it पूछा गया है. तो एक्चुअली इधर क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, ब्लैक सीड है. ब्लैक सीड either it is a homozygous dominant और heterozygous कंडीशन में मेंशन किया है. Over the white seed is dominant over the white seed. In order to find out the genotype of the black seed plant, इसका find out करना है genotype black seed plant. With which of the following genotype will you cross it? तो here it is nothing but the test cross के बारे में mention किया है. तो genotype will be homozygous recessive चूज करना है हमें. homozygous recessive कहाँ दिख रहा है, नो ये तो नहीं है. ये तो homozygous dominant है. homozygous recessive will be the fourth option. तो आंसर डायरेक्टली it will be the fourth option. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. 119 में उन्होंने क्या मेंशन किया है, सेम ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन है. तो हियर अ पिंक flower snapdragon plant was crossed with a red flower. You should know the genotype of the plant also. genotype क्या है पिंक कलर का, पिंक is nothing but R, capital R small r is crossed with a red snapdragon. Red is nothing but capital R is red flower. What type of the phenotype are expected in the progeny? progeny में कौन कौन से phenotype expect कर सकते हैं हम लोग. अगर हम लोग इसमें ही क्रॉस करके देख लेंगे इसको, कैपिटल R will give you कैपिटल R. ये इसके साथ क्रॉस होगा तो ये भी कैपिटल R देगा. अभी मैं इसको इसके साथ क्रॉस करा रहा हूँ, R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r. तो इधर देखा जाएगा तो 50% इज रेड फ्लावर एंड 50% इज पिंक फ्लावर. तो इसका मतलब क्या है, दोनों फ्लावर प्रोड्यूस होता है. वैसे ऑप्शन क्या है, ओनली पिंक फ्लावर, नो. ओनली रेड फ्लावर, नो. रेड कमा पिंक एज वेल एज व्हाइट भी मेंशन किया है, बिल्कुल नहीं. रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर. तो आंसर क्या रहेगा, फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट. तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग. मैच करना है कौन सा चैप्टर का, सेम प्रिंसिपल का ही देखो, कंटिन्यूअस क्वेश्चन आया है बॉटनी सेशन से. तो 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, व्हाट इज, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है. व्हाट इज 2 और allele known as, allele is nothing but an alternative form of the gene. तो इसको मैं क्रॉस करूंगा, allele को एक को किसके साथ, 3 के साथ क्रॉस करूंगा, राइट. अगर A3 का कहीं ऑप्शन है, देखो तुम लोग, मैं एक सिंपल ट्रिक से तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ. A3 कहीं है,
A3 एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्टली आंख बंद करके मार्क कर सकते हैं। अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है तो भी आगे कर लेंगे हम लोग। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन है करके बोल रहा हूँ, आगे चेक कर लेंगे। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। अभी जस्ट देखे थे टेस्ट क्रॉस, तो आंसर क्या रहेगा इसका, इसका तो टेस्ट क्रॉस आना चाहिए। तो बी का 4 है, ए का क्या है 3 है, बी का क्या है 4 है। एनी ऑफ द पेरेंट क्रॉस ऑफ द F1 प्रोजेनी विद एनी फर्स्ट जनरेशन पेरेंट ऑफस्प्रिंग जो मिला है, उसको किसी के साथ कोई भी पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, उसको हम लोग कौन सा क्रॉस बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे। तो हियर सी करेगा 1 एंड डी का नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट पूछा गया है। प्लॉइडी लेवल इंक्रीज हो सकता है, हेक्साप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड हो सकता है, तो इसको हम लोग इन जनरली प्लॉइडी भी बोल सकते हैं। तो लास्ट वाला डी का क्या है 2 है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, फर्स्ट आंसर इज अ परफेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Lecithin is a small molecular weight organic compound found in the living tissue is an example of, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, डायग्राम में मेंशन किया है lecithin is dash, lecithin is a phospholipid। तो phospholipid इधर कहां दिख रहा है, यस फोर्थ ऑप्शन इज अ phospholipid, तो आंसर विल बी 4। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम। ये तो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है, MHW माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। ओके, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिटिकम कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, वी नो ब्यूटालिटिकम इज नथिंग बट ब्यूटरिक एसिड। तो ए का 3 है, ए का 3, आई सी हियर हाउ मेनी मैथ्स द कॉलम दे हैव आस्क्ड मोर देन 5 to 6 मैथ्स द फॉलोइंग इन द बॉटनी सेक्शन इटसेल्फ। ऐसा पूरा एंटायर जूलॉजी का सेक्शन भी देखेंगे तो मैथ्स द कॉलम ज्यादा पूछा गया है इस बार। एसेशन रीजन 1-2 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2-3 है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फाइंड आउट करने के लिए। एक ऑप्शन पता रहेगा तो नेक्स्ट ऑप्शन आराम से आ सकता है। तो अभी देखेंगे पी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इज ऑल नो, वी ऑल नो ईस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल। तो बी का विल बी 1, राइट। तो A3B1, A3 नहीं है, ये दोनों नहीं है, मैं इसको क्रॉस कर लेता हूं अभी के लिए फिलहाल। अभी देखेंगे फर्स्ट वाला A3 B1 ओके, दोनों ऑप्शन एक ही जैसे हैं। अभी सी देखेंगे, सी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम विल प्रोड्यूस व्हाट, साइक्लोस्पोरिन ए। और स्ट्रेप्टोकोकस क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो आएगा सी का 4, तो ऑप्शन 1 ही है ऐसा। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में टिक करेंगे, फर्स्ट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट विल मूव द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम लोगों को। ये क्या है, इधर सबको दिख रहा है राइट। तो इन द गिवन फिगर व्हिच कंपोनेंट हैज अ थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल मेंशन किया गया है। दिस इज एनाटॉमी में ये डायग्राम दिया है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डायग्राम दिया है तुम लोगों को। तो ये किसके बारे में एक्सप्लेन, स्टोमेटल apparatus का डायग्राम दिया है। तो उनका कहना क्या है, थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल। हमें पता है गार्ड सेल के पास क्या रहेगा, गार्ड सेल के पास ये होता है थिक इनर वॉल रहता है और थिन आउटर वॉल रहता है ना। ये एकदम थिक है इनर वॉल और आउटर वॉल थिन है। तो गार्ड सेल के बारे में मेंशन किया है। तो गार्ड सेल इधर कहां दिख रहा है तुम, ए तो इधर देखो, मैं वापस इधर डायग्राम में एरो मार्क कर रहा हूं। ए इज नथिंग बट द बाहर का सेल, सब्सिडियरी सेल या एपिडर्मल सेल। बी कहां है, बी भी एपिडर्मल इस सेल के ऊपर है। सी की एरो डायरेक्टली स्टोमेटा के ऊपर है, मतलब इस वॉल के ऊपर है। और डी एकदम सेंटर में है, डी इज नथिंग बट द पोर, स्टोमेटल पोर बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। तो आंसर विल बी सी। सी देखो, सी मतलब सी मार्क कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो 3 विल बी द आंसर। चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिनोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है ये। अगर डायग्राम फॉर एग्जांपल अच्छे से याद करके गए रहेंगे तो आराम से आंसर कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में 3 था, मस्टर्ड, दतुरा, चिल्ली। मस्टर्ड, दतुरा, चिल्ली। अभी ये इसमें से क्या है, मस्टर्ड तो नहीं है, दतुरा दिख रहा है, दतुरा विल बी द आंसर, थर्ड ऑप्शन। तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट मूव आ जाते हैं 125 में। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए। ये तो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन द डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 रीजन इन द डीएनए एंड दीस आर विद रेस्पेक्ट टू द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। एनसीईआरटी में एक डायग्राम में ड्रॉ किया है उन्होंने ऐसा 5' to 3' 3' to 5' तो उधर क्या मेंशन किया है, दिस वन टुवर्ड द प्रोमोटर साइड इज अपस्ट्रीम एंड टुवर्ड द टर्मिनेटर साइड इज द डाउनस्ट्रीम रीजन, हां विद रेस्पेक्ट। तो उन्होंने इधर प्रॉपर्ली मेंशन किया है, दिस वन इज अ प्रोमोटर साइड, this one will be the structural gene, this one will be the terminator region. तो promoter, structural as well as terminator.
ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें क्या है? इंड्यूसर, रिप्रेसर, स्ट्रक्चरल जीन है। रिप्रेसर, हाँ नो। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, हाँ मिला मुझे। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। हाँ तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 126। व्हाट इज द फेट ऑफ, कौन से चैप्टर का है? व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म? बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है इधर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या मेंशन किया है? व्हाट विल बी द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म? ओके, देखते हैं आगे, देखते हैं स्टेटमेंट तो पढ़ के देख लेते हैं। The piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism. अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली, तो ये गलत है, सरासर गलत है। द पीस ऑफ डीएनए would be able to multiply itself in the progeny cell of the organism। नहीं, क्योंकि उसको क्या चाहिए? होस्ट की मशीनरी चाहिए, साथ साथ होस्ट के अंदर, होस्ट क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गलत। सेकंड देखेंगे, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ, हाँ ये तो इंटीग्रेट कर सकता है। जो भी मैं एलियन पीस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इट कैन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द होस्ट क्रोमोसोम। ओके, उसके बाद देखेंगे, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद इट मे मल्टीप्लाई एंड मे बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। यस, व्हेनेवर द क्रोमोसोमल डीएनए, व्हेनेवर द होस्ट डीएनए इज रेप्लिकेटिंग, कोई भी इंट्रोड्यूस किया गया है एलियन डीएनए, तो उसके साथ भी वो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है। The alien piece of DNA is not an integral part of chromosome। ये तो इंटीग्रल पार्ट हो गया ना, अगर एक बार अंदर चला गया तो वो होस्ट क्रोमोसोम के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, तो इट इज अ गलत वन। इट शोज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, नो विदाउट इंडिपेंडेंट फॉर्म में, तो इट शो डायरेक्टली बोला है, मैं भी नहीं दिया है उधर। इट शो द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, नहीं, गलत। तो कितना स्टेटमेंट करेक्ट था अपना? बी और सी करेक्ट है। बी और सी कहाँ ऑप्शन है? ये वाला, फर्स्ट वाला, बी, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Auxin is used by gardeners, plant growth and development का क्वेश्चन है। I'm writing the chapter name also along with that, so it will be easy tagging के लिए तुम्हारे लिए। ये चैप्टर से तो वेटेज भी पता कर सकते हैं। 25 के बच्चे हो, आराम से तुम लोग को भी पता कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर से ज्यादा वेटेज पूछा गया है इस बार। ओके, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है इधर। Auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawn, but no damage is caused to the grass as auxin। ग्रास को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीन 2,4-D हम लोग वीडी साइड पढ़े थे ना, 2,4-D डाइकोटिलेडोन्स वीड को किल करता है, तो डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा उसका, डाइकोट वीड के ऊपर ही मतलब रहेगा। कैन हेल्प इन द सेल डिवीजन इन ग्रासेस, नो। प्रमोट अपेक्टल डोमिनेंस, कुछ रोल नहीं है इसका। प्रमोट एक्सिशन ऑफ द मैच्योर लीफ मिली। तो यस, तो फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अभी मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडाइज, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, उधर मेंशन किया गया है व्हिच ऑफ द एंजाइम रिक्वायर व्हाट कोफैक्टर, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जिंक। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, जिंक देखिए टिक, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज, हाँ ये तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया is transported to the cell by the action of, तीन है ना, तीन जीन जो रेस्पॉन्सिबल, लैक जेड, लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? परमीएज प्रोड्यूस करेगा। तो परमीएज के कारण ही क्या होगा? परमीएज के कारण ही सेल के अंदर क्या एंटर हो सकता है? लैक्टोज एंटर हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ परमीएज, परमीएज 1, तो आंसर विल बी द 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन है। सी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अब तक एक मैथ्स कॉलम देख लिया हम लोग, इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन देखे, तो वेटेज देख लो उसको। Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? मेंडल्स का कितना लॉ है? 3 लॉ मेंडल ने प्रपोज किया था, तो फर्स्ट लॉ के बारे में ही पूछा है। Law of dominance can be explained on the basis of, first statement, out of one pair of the factor, one is dominant and the other is recessive. Yes, true. दो है ना factors, one is dominant and the example, one is the other one is recessive. Allele do not show any expression and both the character appear as such in the F2 generation. Allele do not show any expression, कोई expression नहीं दिखा सकते। No, it is the, it shows expression, does not, do not show लिखा है, तो ये तो statement गलत है, right?
सेकंड वाला स्टेटमेंट तो गलत है डायरेक्टली। थर्ड स्टेटमेंट क्या मेंशन कर रहे हैं इधर, फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लान, यस दे ऑलवेज अकर इन पेयर with respect to Mendel क्या बताया था, always the factors occur in pair, so the third one is the correct statement. The discrete unit controlling a particular character is called as factor, ये भी correct है. Expression of only one of the parental character is found in a monohybrid cross. Expression of only one of the parent character is found, yes, when we cross two organism tall as well as dwarf, तो कोई क्या दिखता है, दोनों नहीं दिखेगा ना, एक ही एक्सप्रेशन दिखेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग बात कर रहे हैं. तो हियर अकॉर्डिंग टू मी विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी आल्सो A is correct, C is correct, D is correct and E is correct. So A, C, D, E. So fourth option will be the correct option. Shall we move on to the next question? Given below are two statement, दो statement mention किया है, statement 1 as well as statement 2. तो BT toxin ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का क्वेश्चन है. BT toxin are insect group specific and coded by gene CRY1AC. Yes, they are, but हमें पता नहीं कि वो CRY बहुत सारे CRY दो तीन जीन मेंशन किया है ना, CRY1AC, CRY1AB, CRY2AC ऐसा. तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या मेंशन किया है, BT toxin exists as inactive prototoxin in Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis में inactive फॉर्म में रहता है. However, after ingestion by the insect, yes, the inactive prototoxin get converted into active form. Correct. Due to the acidic pH, ना उनके गट, इंसेक्ट के गट कैसे रहते हैं, अल्कलाइन पीएच रहता है. तो अल्कलाइन पीएच के कारण क्या होगा, अल्कलाइन पीएच के कारण वो एक्टिविटी बढ़ेगा. तो ये तो स्टेटमेंट गलत है. तो इधर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फर्स्ट वन, राइट. अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरेन्काइमा बोला है, तो कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है. तो इधर मेंशन क्या किया है स्टेटमेंट 1 में, पैरेन्काइमा इज अ लिविंग, यस ट्रू, बट collenchyma is dead tissue. No, collenchyma is also a living tissue. So the statement itself is the wrong statement. Gymnosperm lack xylem vessel, yes they lack xylem vessel, instead they have tracheids. But the presence of xylem vessel is a characteristic feature of angiosperm. हाँ, angiosperm is a well developed plant है ना, flowering plant है, उनके पास क्या रहता है, xylem vessel रहता है, उसके थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट होता है इजीली, ट्रैकिड्स भी होता है, लेकिन उनके कारण वो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनका. तो हम लोग ये तो बोल सकते हैं करेक्ट, बट फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत बोल रहा हूँ इधर. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट हाँ सेकंड ऑप्शन देगा. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. देखो कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. अभी ये क्रोमोसोम बिकेम ग्रेजुअली विजिबल, ये कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है, सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. Chromosome became gradually visible under the light microscope during leptotene stage बोला है. Okay, visible under the light microscope during leptotene stage. हाँ, thin legs मतलब thread leg structure तो दिखता ही है. तो मैं बोल सकता हूँ statement 1 true है. अभी second statement क्या mention किया है, beginning of the diplotene stage is recognized by the dissolution of synaptonymal complex. तो stages क्या है, पहला leptotene प्रोफेज 1 का, zygote, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. तो इधर क्या मेंशन, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन आते ही एक डिसोल्यूशन होगा. यस, इट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट ओनली. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. थर्ड ऑप्शन यस करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी 134 क्वेश्चन. इधर कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है. Nucleolus cell the unit of life. Nucleolus is responsible for rRNA, ribosomal RNA synthesis करता है. तो इधर nucleosomal कहाँ है, ribosomal RNA का कुछ है, हाँ site for active ribosomal RNA synthesis है. उसके बाद मुझे हम लोग A और D देखेंगे. A का 3 कितने ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है. तो कौन सा है हम लोग देखेंगे. अभी Golgi apparatus is a site of formation of glycolipids है ना. तो D का है 1, D का है, अरे इसमें भी A का 3 है, D का 1 है, दोनों ऑप्शन है ऐसा. Let's once again check.
ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज बॉडी है, न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट। सी का है 4, सी का 4 तो सी का 4, हाँ सॉरी, तो ऑप्शन आएगा 3 आना चाहिए ना। ए का रहेगा 3, बी का रहेगा 2। सेंट्रियोल इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल, तो आंसर विल बी डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझा ना सबको? न्यूक्लियोलस आरआरएनए सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए। सेंट्रियोल कार्टविल लाइक अपीयरेंस, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, गोल्गी ग्लाइकोलिपिड्स। चलो नाउ नेक्स्ट 135 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, हाँ रेड लिस्ट के बारे में पूछा है। तो कौन रिलीज करता है रेड लिस्ट? IUCN, एकदम सिंपल IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, अभी क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट अ सेल ऑर्गेनेल, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है। डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इज लीनियर फॉर्म बोल सकते हैं। अभी क्लोरोप्लास्ट का डीएनए पूछा गया है, तो नॉर्मली वो कैसे रहते हैं? डबल स्टैंडर्ड रहता है और सर्कुलर फॉर्म में रहता है। तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड कहाँ है? सर्कुलर, तो ये दो ही है, सिंगल डबल, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो we'll move on to the next question. Which of the following are fused in somatic hybridization? ये भी है, टिश्यू कल्चर का ही क्वेश्चन है, तो बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया है वो पार्ट। हाँ, टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन या प्रिंसिपल, उसमें तुम लोग देख लो, बायोटेक का क्वेश्चन है ये। तो अभी which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plant? दो वैरायटी ऑफ प्लांट को मुझे फ्यूज करना है, तो किसकी रिक्वायरमेंट है? सेल का क्या रिक्वायर्ड है? प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करूंगा तो ही मैं एक नया हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो आंसर विल बी प्रोटोप्लास्ट। फर्स्ट ऑप्शन ओनली, प्रोटोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये कौन से चैप्टर का है? कहां से? ये पॉलिनेशन का जैसा क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है, ये SRSP का क्वेश्चन है। तो इधर क्या मेंशन किया है? आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। ये तो क्या दिख रहा है? एक्सपोज्ड स्टेमन, मुझे तो एक्सपोज दिख रहा है सब कुछ। तो एक्सपोज यानी कि एनिमोफिली कर सकता है, एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन को हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, नो ये तो नहीं है। कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस, ओके, ये कंप्लीट ऑटोगैमी। अच्छा, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन तो बिल्कुल नहीं है। तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट, इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, तो उसके थ्रू क्या रिलीज होगा? पोलन ग्रेन रिलीज होगा। तो आंसर तो 3 है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेइंग ऑफ शुगर केन, which question, which chapter? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है, हार्मोन्स का, PGR का क्वेश्चन है ये। स्प्रेइंग ऑफ शुगर केन क्रॉप, हाँ, शुगर केन क्रॉप विथ which PGR will help to increase the length of the stem? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम यानी कि क्या होता है? इंटरनोडल इलोंगेशन के बारे में बात कर रहे इधर। इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जिबरलिक एसिड, जिबरलिन, GA रेस्पॉन्सिबल है। तो जिबरलिन, आंसर 4, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 140, बॉटनी का ऑलमोस्ट होने वाला है अभी। 140th क्वेश्चन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये तो देख के मैं बता सकता हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, राइट? तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में फ्रेडरिक ग्रिफिथ इधर साइंटिस्ट का नाम दिया है और उनकी डिस्कवरी क्या क्या है उसके बारे में पूछा है शायद। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का कौन सा एक्सपेरिमेंट था? रैट का एक्सपेरिमेंट था ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का था। तो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन है। ए का 3 है, ए का 3 कितने ऑप्शन में है? 1 और 3 और 4 में से कोई आंसर रहेगा, बाकी दो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ए का 3 किसमें है? 3 एज वेल एज 4 में है। अभी फ्रैंकोइस जैकोबिन मोनोड, ये तो लैकोपेरॉन का है, दोनों साइंटिस्ट लैकोपेरॉन, हाँ। तो बी का क्या रहेगा? 4, तो बी का 4 इन द सेंस, बी का 4 तो कहाँ दिख रहा है बी का 4 मुझे? ये दो ऑप्शन में, हाँ, तो आंसर 4 ही होना चाहिए। लेकिन और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए का 3, बी का 4, बी का क्या रहेगा? 4। और हरगोबिन खुराना इज नथिंग बट जेनेटिक कोड है, ये उन्होंने डिस्कवर किया, तो सी का 1 आएगा। मेसेल्सनस्टाल इज नथिंग बट द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज किया था, तो आंसर विल बी डी विल बी 2, तो आंसर विल बी नथिंग बट द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, GLUT4, ये टेबल दिया है बायोमोलिक्यूल में, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, देख के पता कर सकते हो तुम लोग। ग्लूकोज, GLUT4 जो ग्लूकोज को एनेबल करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल के अंदर, तो GLUT4 एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ए का 4 है। ए का 4 कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में है, तो डायरेक्टली एक पता रहेगा तो भी तुम लोग आराम से बात कर सकते हो। तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा थर्ड वन ही आंसर, लेकिन और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इंसुलिन इज नथिंग बट अ हार्मोन,
A का 4, B का 1, C trypsin. Trypsin is what? Trypsin is an enzyme. Human system में present है, लेकिन example तो दिया है बायोमोलिक्यूल में. तो now C will be 2. Collagen is nothing but intercellular ground substances. So D will be 3. D will be 3. तो 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3. सी फटाफट करना बहुत जरूरी है, साथ साथ तो तुम लोग को भी आंसर की पता हो जाएगा. तुम लोग को फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करना है हर एक क्वेश्चन के लिए. अभी चेक करने के लिए इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए, इसीलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है 142. C3 प्लांट्स आ गया. फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है ये, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन. तो क्या बोल रहे हो उधर? C3 प्लांट्स सम ऑक्सीजन बाइंड टू रुबिस्को, देन CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड. हाँ, क्या होता है रुबिस्को के पास? ये दो एक्टिविटी रहता है ना रुबिस्को के पास. रुबिस्को के पास either it can bind to CO2 or it can bind to what? ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है. कंसंट्रेशन वेरी के कारण, मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है तो रुबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा. तो ये ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो. अभी सेकंड ऑप्शन देखेंगे. इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल शोज वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल शीट सेल शो डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन. नहीं, हम लोग देखे थे C4 प्लांट में दो सेल रहता है, एक होता है बाहर का मेसोफिल सेल और एक सेल रहता है अंदर का बंडल शीट सेल. बंडल शीट सेल में एक्चुअली सारे C3 साइकिल चलता है. C3 साइकिल के लिए क्या चाहिए? C3 साइकिल के लिए क्या चाहिए? C3 साइकिल के लिए रुबिस्को चाहिए. तो रुबिस्को की एक्टिविटी तो कम कर सकता है. तो मुझे तो लग रहा है पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट सरासर गलत है. तो हम लोग स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ऐसा कोई स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. हाँ, फर्स्ट वन आई है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. 142 हो गया, 143 देखेंगे. 143 कौन से चैप्टर का है ये देख के तुम्हें पता लगना है. ये तो साइकिल के बारे में मेंशन किया है. तो कौन सा चैप्टर? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का क्वेश्चन है ये इधर. तो इधर क्रेब्स साइकिल के बारे में, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज TCA साइकिल, राइट. तो ये TCA साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किया है. आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट पूछा गया है. तो हमें पता है सबसे पहला कौन सा एसिड बनेगा? सिट्रिक एसिड बनेगा, राइट. सिट्रिक एसिड के बाद क्या बनेगा? डायरेक्टली मैं बना रहा हूं आइसोसिट्रिक. आइसोसिट्रिक के बाद क्या बनेगा? अल्फा कीटो. just don't see the spelling and all. I just wanted to tell you the pathway फटाफट. citric, isocitric, alpha कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक. उसके बाद डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ सक्सिनाइल को A बन रहा है. तो A के बाद क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऐसा बन रहा है, राइट. OAA बन रहा है. इधर उन्होंने पूछा गया है which does not involve oxidation of substrate. ऑक्सीडेशन किसका नहीं होगा? कौन से स्टेप में नहीं होगा? सक्सिनाइल टू सक्सिनिक एसिड, ओके. आइसोसिट्रिक टू अल्फा कीटो, ये वाला ऑप्शन देखो ना, सेकंड वाला देखो. आइसोसिट्रिक टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया है. तो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यस, सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, डायरेक्टली इन्होंने सक्सिनिक टू मैलिक बोला है. तो इधर भी एक FADH2 बनता है. तो इधर क्या है? दिस इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Malic to OAA, Malic to NADH2 बनता है. तो this is also oxidation. This one will be the not oxidation reaction. So answer will be the first option will be the correct option. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम लोग. 144 देखो, सेम है, सेम चैप्टर का क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन. मैं क्या बोला हूँ तुम लोगों को, एक ऑप्शन पता चल गया है तो आंसर हम लोग ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं. एक फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल का लोकेशन किधर है? location it will be in the cytoplasm, right. So citric acid is not extremely sorry, citric acid where will it be taking place? mitochondrial matrix के अंदर होगा. mitochondrial matrix यानी कि A का 2 रहेगा. A का 2 कितने ऑप्शन में है हम लोग देखेंगे अभी. A का 2 नहीं है, A का 2 नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन तो डायरेक्टली वही रहेगा. और अगर बैक चेक करना है तो हम लोग और एक बार देख लेते हैं. ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होगा. तो B का क्या रहेगा? 1, A का 2, B का 1. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहाँ होता है? ETS इट्स टेकिंग प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ETS इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये रहा C का 4, C का 4. देखो ऑप्शन देखो, A is 2, B is 1, C is 4 and D प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होता है? स्पेस में होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, उस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस. हाँ, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ विल बी द परफेक्ट ऑप्शन. चलो अभी हम लोग 45 बॉटनी ऑलमोस्ट होने आ गया है और 5 ही क्वेश्चन बचा है अपने पास, देखेंगे फटाफट. और zoology भी चालू करना है हमें. तो देखो इधर, which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? E. coli इधर डायग्राम दिया है, नॉर्मल ह्यूमन मतलब DNA रेप्लिकेशन के बारे में बोला है. DNA रेप्लिकेशन ना, हाँ, रेप्लिकेशन इन E. coli.
रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहाँ है उसको पहला हम लोग देख लेते। ये वाला है डीएनए, ये भी करेक्ट है, मतलब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट, ये फर्स्ट तीन में से कोई एक रहेगा ऑप्शन, है ना। तो इसमें अभी उसकी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कहां से कहां तक रहता है? इट्स एक इधर देखेंगे तो हम लोग ये तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, ओकाज़की फ्रैगमेंट बनेगा। तो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी विल बी फ्रॉम द 5' to 3' एंड होता है नॉर्मली। कौन से एंड में होता है? 5' to 3' एंड में डीएनए पॉलीमरेज की काम हो सकता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन द, मुझे तो सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 146 आ गया है, इंडियन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का क्वेश्चन है ये। इकोसिस्टम का क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने? इफ द एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल 100x दिया है, 100x एक वैल्यू दिया है, व्हाट विल बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का ये मेंशन क्या है? दे आर मेंशनड अबाउट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का, ट्रॉपिक लेवल का मेंशन क्या है, उन्होंने क्या पूछ रहे हैं? तो ट्रॉपिक लेवल का कितना होगा करके पूछ रहे हैं। हम लोग को 10% लॉ पता है, 10% लॉ से क्या होगा? 100 से 10x 10x से। तो थर्ड में जीपीपी के बारे में पूछा है। एक्चुअली मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस लग रहा है, फिर भी 10% लॉ के हिसाब से जब जीपीपी कैलकुलेट करेंगे इट शुड बी 10%, मतलब 10x होना चाहिए। लेट्स वेट फॉर द आंसर की ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट वन विल बी द प्रेफर्ड ऑप्शन। लेट्स सी 147 जाएंगे। हाँ, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रोज, पी, कॉटन, मैंगो दिया है। पी देखिए डायग्राम तो दिया है उधर, तो डायरेक्टली वो प्लेसेंटेशन का, तो इधर मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पी का मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अभी मुझे तो एक ही पता है, बी का क्या है? बी का 4 है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम लोग को? बी का 4, बी का 3 है, बी का 2, बी का 3, 4, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो एक पता रहेगा तो पूरा आंसर ही आराम से तुम लोग मार सकते हैं, 4 मार्क आराम से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी चेक करना है तो वापस चेक करेंगे हम लोग। डी का क्या रहेगा? मैं बोल रहा हूँ 4 है। अभी रोज का मुझे देखना है। रोज एक्चुअली रोज क्या दिखाता है? रोज, हाँ, पेरिगाइनस फ्लावर। रोज इज अ टाइप ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर, यस और नो? क्योंकि उधर एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने। रोज, प्लम, पीच, ये तीनों किसके अंदर आएंगे? पेरिगाइनस के अंदर आएंगे। तो ए का आंसर क्या रहेगा? ए का आंसर 2 रहेगा। तो ए का 2, बी का 4, यस वी आर गोइंग इन द करेक्ट वे ओनली। नाउ विल सी द कॉटन। कॉटन का भी देखेंगे। कॉटन का क्या रहता है? कॉटन कौन सा एस्टिमेशन दिखाता है? ट्विस्टेड एस्टिमेशन दिखाता है। चाइना रोज कौन सा एस्टिमेशन दिखाता है? ट्विस्टेड दिखाता है। तो कॉटन विल बी ट्विस्टेड एस्टिमेशन, सी विल बी वंस। एंड लास्ट बचा है ड्रूप। क्या है? मैंगो। मैंगो इज मैंगो एज वेल एज कोकोनट आर ड्रूप। तो मैंगो इज अ ड्रूप। तो डी का आंसर विल बी 3। So yes, the correct answer will be the third answer. Now we'll move on to the next question, question number 148. 148 में ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है ये। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। तो उन्होंने साइंटिस्ट के नाम, उनकी डिस्कवरी। इसके पहले हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस का भी एक क्वेश्चन ऐसे देखे थे, साइंटिस्ट का नाम, उनकी डिस्कवरी। तो अभी रॉबर्ट में का एस्टिमेशन किया था 7 मिलियन स्पीशीज। कितना था? किधर है रॉबर्ट में का 7? हाँ इधर है, देखो। ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन, रॉबर्ट में का। तो ए का 3 आना चाहिए, है ना? ए का 3 इसमें कितने? अरे दो ऑप्शन में है, ए का 3, ए का 3, सेकंड और फोर्थ, इसमें से एक हो सकता है ना? अभी और आगे देखेंगे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का क्या एक्सपेरिमेंट था? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का एक्सपेरिमेंट था उनका। तो वो क्या बोले थे? जितना बड़ा स्पीशीज रहेगा, कितना एरिया ज्यादा बढ़ेगा, उसके हिसाब से स्पीशीज का भी नंबर बढ़ सकता है, बट अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट ओनली। उसको बी का रहेगा 1, बी का 1। कौन से ऑप्शन है? प्रेफर्ड ऑप्शन विल बी 4। देख लेंगे आगे का भी। सी का क्या रहेगा? पॉल अर्ली राइबेट पॉपल हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था। तो सी का क्या रहेगा? 4। डी डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम आउटडोर प्लॉट यूज करके उनका एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो हियर डी का विल बी 2, द आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विल मूव ऑन टू द 49th क्वेश्चन। दैट इज कौन सा क्वेश्चन है? सेम देखो आ गया है सिट्रस। ये कौन सा चैप्टर है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्वेश्चन है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस आ गए उसमें से। ये डायग्राम बेस्ड भी उसमें से था, एक स्टेटमेंट बेस्ड में से भी था, और मैथ्स कॉलम में भी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आए उस चैप्टर में से। अभी हम लोग देखेंगे। मुझे तो याद है मोनोअडेल्फस, डायअडेल्फस, पॉलीअडेल्फस, एपीफाइलस। तो मुझे इतना पता है बी का डी होना चाहिए, राइट? तो बी इज टू
टू ऑप्शन में, 1 एज वेल एज 3 में है। अभी फिर भी देख लेंगे हम लोग। इधर नेक्स्ट क्या है, ए का मोनोएडेल्फस। मोनोएडेल्फस इज सीन इन व्हिच कंडीशन, चाइना रोज में दिखता है मोस्टली मोनोएडेल्फस। सो ए विल बी 4, तो ए इज 4, बी इज 2, ए इज 4, B is 2, A is 4, B is 2, हाँ ये है थर्ड वाला है, देखते हैं आगे भी। C पॉलीएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस सिट्रस का रहेगा एपिफाइलस, यस एपिफाइलस इज नथिंग बट लिली में रहेगा। तो आंसर विल बी C का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। D का क्या होना चाहिए, D का एपिफाइलस लिली 3 होना चाहिए। 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ बॉटनी, फटाक से करेंगे बॉटनी, उसके बाद हमें जूलॉजी का भी क्वेश्चन करना है 50 क्वेश्चन। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है बॉटनी का, तो देख लेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कितनी स्टेटमेंट दिया है, 5 स्टेटमेंट दिया है हमें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द सेट ऑफ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फ्यू ऑफ एशिया। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, प्लांट किंगडम, देख के ही पता करना है, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है ये। Asexual reproduction occurs usually by biflagellated zoospores, हाँ उनके पास रहता है, 2 फ्लैजेला रहता है, biflagellated zoospore करेक्ट है। Sexual reproduction is by oogamous method only बोला है, एनसीईआरटी ने ओनली नहीं बताया है, तो ये तो गलत है। Stored food is in the form of carbohydrate which is either mannitol or laminarin, हाँ उनका stored food क्या है, Phaeophaceae, that is nothing but the brown algae का stored food is mannitol और laminarin होता है। Next, the major pigment found in the Phaeophaceae are chlorophyll A, C, carotenoid as well as xanthophyll, हाँ ये भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट देख लेंगे हम लोग, क्या दिया है, वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोसिक वॉल, ओके, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय जेलेटिनस कोट्स ऑफ एल्जिन, हाँ एल्जिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, ब्राउन एल्गे। केराजिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, रेड एल्गे में प्रेजेंट रहता है, तो ये भी करेक्ट है। तो एक ही गलत हुआ ना, कौन सा कोई ऑप्शन गलत हुआ है, अपना बी ऑप्शन गलत हुआ है। तो आंसर ए सी डी ई, ए सी डी ई, ए सी डी ई, फर्स्ट ऑप्शन ए सी डी, हाँ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो हो गया है अपना बॉटनी प्रॉपर्ली, सबको समझ में आया रहेगा, आई होप सो। तो 150 को 50th क्वेश्चन तक हो गया, अभी 151 से लेके 200 तक जूलॉजी का क्वेश्चन है, तो फटाफट हम लोग जूलॉजी का क्वेश्चन भी एकदम देख लेंगे। मुझे तो लगता है बॉटनी भी इस बार इजी आया है कंपैरेटिवली टू द लास्ट ईयर। अभी हम लोग नेक्स्ट जूलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जूलॉजी का 151, मेसोकोलम, आते ही मेसोकोलम आ गया है। देखिए डिजीज का नाम, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो वी नो और टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया। तो ए का 4, मैं तो देख के पता कर सकता हूँ, ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन, तो मैं तो देख के पता कर सकता हूँ कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अभी हम लोग फिर भी देख लेंगे। सेकंड, leishmaniasis is nothing but it is caused by what, which is a positive agent, leishmaniasis is protozoa. Ringworm we all know fungus, filariasis is nematode। तो आंसर क्या रहेगा, ए का 4 होना चाहिए, एंड देन बी का leishmaniasis मैंने क्या बताया था, leishmaniasis द प्रोटोजोआ 3 है, रिंगवर्म इज फंगस, यानी कि सी का है 1, डी का है 2, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, परफेक्ट, आंसर इज 4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएंगे। 52, ये कौन सा क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग ओवर हियर। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ये क्या है पता रहना चाहिए, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इधर देखा जाएगा तो कौन सा ऑप्शन देगा, लिपेफ्लुड, ये तो ये है, ए का होना चाहिए 3। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज नथिंग बट मल्टी लोड है, हाँ मल्टी लोड 375, तो बी का होगा 1। सी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इज LNG20, तो सी का रहेगा 4। इम्प्लांट इज नथिंग बट प्रोजेस्टेरॉन, तो डी इज 2। 3142, 3142, 3124 है, 3142, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 153rd क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, राइट। तो अभी इसमें मुझे क्या लग रहा है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज अ not a reliable indicator of virginity, yes it is a correct statement, presence or absence of hymen, it is a NCERT statement, correct statement। hymen is torn during the first coitus only, no it is not necessary, so statement 1 is correct, 2 is false, statement 1 is true, 2 is false, statement, अरे फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो मूव ऑन हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 54th क्वेश्चन, in both the sexes of cockroach what they are mentioned, jointed filamentous एनल सर्की प्रेजेंट, एनल सर्की कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, हमें पता है एब्डोमिनल में कितना सेगमेंट प्रेजेंट रहता है, 10 सेगमेंट प्रेजेंट रहता है। सो लास्ट सेगमेंट में ये सेंसरी ऑर्गन है एनल सर्का है व्हिच इज प्रेजेंट, एनल स्टाइल विल बी प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मेल, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनल सर्का है एक्चुअली 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, तो 10th लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एकदम स्पीड इंक्रीज करना चाहिए, तो आंसर भी तुम लोग साथ साथ चेक करते रह जाओ। अभी हम लोग बात करेंगे, ये तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, जूलॉजी का पार्ट है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है पॉन्स का क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस, ओके ओके, इसका फंक्शन पूछा है। हाँ, पॉन्स का मेन फंक्शन क्या रहेगा, एक्चुअली कनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रिज, दे फॉर्म अ ब्रिज ना। तो इधर हमें, मुझे तो पता चल गया ए का ऑप्शन क्या रहेगा 3, तो इसमें से आई कैन इजीली आइडेंटिफाई, यस और नो। तो जैसे इजीली आइडेंटिफाई करेंगे, ए का 3 कितने ऑप्शन में है, ए का 3 ए इज 3, ओनली वन ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, तो एक ऑप्शन देके हम लोग आराम से पता कर सकते हैं, यस और नो। तो एक फोर्थ ऑप्शन आई एम टेलिंग, इवन तो आई चेक, क्रॉस चेक कर लूंगा मैं। सेकंड, हाइपोथैलेमस, जब हाइपोथैलेमस के केस में हम लोग बात करेंगे, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस व्हाट इट डू, बी का 4 है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल, हाँ उधर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल, तो बी विल बी 4, बी विल बी 4। मेडुला, मेडुला का काम क्या है, मेडुला इट प्रोवाइड कंट्रोल रेस्पिरेशन, हाँ। सेकंड ऑप्शन, सी विल बी व्हाट, सी विल बी 2। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या रहेगा, प्रोवाइड, लास्ट एक ही तो बचा है, सेरिबेलम विल प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, यस, सेरिबेलम इज अ हाइंड ब्रेन का पार्ट है व्हिच रेगुलेट योर पोस्चर एंड बैलेंस करता है, तो ऑप्शन विल बी द फोर्थ ऑप्शन। चलो अभी हम लोग मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 56 156 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरॉइड हार्मोन, नॉट स्टेरॉइड पूछा गया है, तो स्टेरॉइड इसमें से कौन कौन सा है, कॉर्टिसोल तो स्टेरॉइड ही है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड है, तो ग्लूकागॉन क्या है, इज अ पेप्टाइड हार्मोन है, तो नॉट अ स्टेरॉइड पूछा गया है, व्हिच इज नॉट अ स्टेरॉइड, तो ग्लूकागॉन विल बी द करेक्ट आंसर, तो आंसर विल बी 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 157, चैप्टर देख लो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। तो इधर क्या पूछा गया है उन्होंने, which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase, तो इधर एंजाइम कौन सा है, DNA dependent RNA polymerase, यानी कि RNA पॉल की बात किया जा रहा है, इधर कौन सा एंजाइम के बारे में बात किया जा रहा है, RNA polymerase के बारे में बात किया जा रहा है। तो उधर एक टेम्पलेट दिया है 3 to 5 TACATGG, wait I'll erase this once and I will show you. थ्री डैश टू 5 क्या मेंशन किया है, TACATGGCAA TATCCATT, वेट आई एम राइटिंग टिल हियर ओनली, चलो इसमें से आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअली प्रोडक्ट पूछा है ना, प्रोडक्ट में एक्चुअली प्रोडक्ट यानी कि आरएनए बन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, है ना। जैसे आरएनए बन रहा है इधर, तो इधर उसके ऑपोजिट टी तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आरएनए में टी एब्सेंट होता है, तो ये ऑप्शन मैं एलिमिनेट ही कर लूंगा, सेकंड ऑप्शन आई एम एलिमिनेटिंग दिस ऑप्शन, ओके। अभी हमें क्या पता करना है, टी के ऑपोजिट क्या आएगा, ए आएगा, ए के ऑपोजिट क्या आएगा, यू, सी के ऑपोजिट क्या आएगा, जी, ए के ऑपोजिट क्या आएगा, यू, तो टी इज ए, G is C, C, G, A is T, sorry, मैं क्या बोला, T absent होगा, so here it will be U, 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 इसमें से पता कर लेंगे, A, U, G, U, A, C, C, A, U, G, U, A, C, C, अरे ये भी करेक्ट है, G, U, 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 A, U, A, U है, ओके। T के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, U आना चाहिए, T ऑपोजिट what will be coming, T के ऑपोजिट ए आना चाहिए, सी के ऑपोजिट जी, जी, यू, ए, ए, तो ए जी, जी, यू, ए, हाँ थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 158, कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, दिस इज फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का कौन सा पार्ट है, टिश्यू का पार्ट है, तो सब लोग बोल रहे थे टिश्यू का पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन किया है एनिमल टिश्यू करके, सिलेबस एनटीए सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है, उसी लिए इधर से क्वेश्चन है। तो 25 के लिए भी यही बोलना चाह रहा हूं मैं, 25 के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिश्यू वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, देख के पता कर सकते हैं ये कौन सा मसल है, स्केलेटल मसल है, यस और नो, दिस वन इज स्केलेटल मसल, ये कौन सा मसल है, स्मूथ मसल है, एंड लास्ट वाला कौन सा मसल है, कार्डियक मसल है। तो हर एक का क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर, तो उनका काम क्या है वो पूछा गया है, तो मैं बोलूंगा स्केलेटल मसल का बाइसेप, ओके ठीक है, करेक्ट है। इनवॉलंटरी इंटेस्टाइन, ओके देयर इज कैन बी कंट्रोल, नो, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। स्मूथ मसल मेंशन, ये कार्डियक मसल, स्मूथ नहीं होगा, तो आई एम नॉट सेलेक्टिंग द फर्स्ट ऑप्शन, गलत है मेरा। अभी आ जाऊं नेक्स्ट, ये तो देख के मैं मार्क कर लूंगा, नो स्टिप में ना, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मूथ टोस, ये भी बिल्कुल नहीं।
लास्ट वाला देखेंगे, ये भी देखना है तो तुम लोग देख सकते हैं, स्मूथ अगर टोज में, मतलब वो तो वॉलंटरी फंक्शन है, स्मूथ इज नॉर्मली प्रेजेंट इन इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, तो स्केलेटल ट्राइसेप्स है, ओके, स्मूथ स्टमक में प्रेजेंट है, इनवॉलंटरी ऑर्गन है, लास्ट कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन द हार्ट ओनली, तो फोर्थ वन विल इज द प्रेफर्ड और करेक्ट ऑप्शन। तो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 159 क्वेश्चन। 159 क्वेश्चन एक्चुअली कौन सा चैप्टर का है, सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला पूछा गया है कि फॉलोइंग स्टेजेस आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, स्टेज आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला कौन सा स्टेज आएगा, पहला हमें पता है सेल साइकिल में, हमें वी ऑल नो वी द फर्स्ट फेज इज G1 फेज, उसके बाद S फेज आता है, उसके बाद G2 फेज आता है, G2 फेज के बाद न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, है ना। तो G1 S G2 कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, यही है सीक्वेंस, नॉर्मल सीक्वेंस। तो G1 पहला ले रहा हूं मैं, तो E विल बी फर्स्ट, उसके बाद G1 के बाद एसिम्प्टोटिक फेज C विल बी सेकंड, G2 A विल बी थर्ड, उसके बाद A हो गया है कैरियोकाइनेसिस, D विल बी द नेक्स्ट, एंड देन लास्ट वाला है B, ECADB 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 E, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलो मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 160। ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ह्यूमन हेल्थ में भी कंसीडर कर सकते हैं, लोकोमोशन मूवमेंट में भी मेंशन किया है, लास्ट में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में मेंशन किया गया है। तो इधर क्या क्या है, टोटली 5 स्टेटमेंट दिया है हम लोगों को, माइस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, SLE क्या है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। तो इधर सबसे पहला जब भी देखा जाएगा, ए माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यस इट इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये करेक्ट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज आल्सो एन ऑटोइम्यून, इट इज नॉट, इट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, गाउट होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं, ये तो मसल की डीजनरेशन होने के कारण होता है। सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, यस इट इज आल्सो एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो ए बी एज वेल एज ई, ए बी ई, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। चलो देखो मैथ द कॉलम आ गया है, ये कौन सा चैप्टर, ये मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी कंसीडर कर सकता हूँ, बायोमोलिक्यूल में भी कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि एंजाइम का पार्ट है, एंजाइम का मेजरली पार्ट कहाँ रहता है, बायोमोलिक्यूल में रहता है। अभी सेम भी हम लोग हमारा ट्रिक लगाएंगे, ए का क्या है, लाइपेज, लाइपेज किसको ब्रेक करता है, लाइपेज कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लाइपेज, लाइपेज पेप्टाइड को तो नहीं ब्रेक करेगा, पेप्टाइड को ब्रेक करने वाला है प्रोटीज, तो सी का है 1, लेकिन लाइपेज किसको ब्रेक करेगा, एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा ना, हाँ लाइपेज किसको ब्रेक करेगा, एस्टर बॉन्ड को, तो ए का रहेगा 2, ए का 2 सी का 1, ए का 2 सी का 1। अरे बाबा एक ही ऑप्शन है, ए का 2 सी, फर्स्ट ऑप्शन ही देख के मार्क कर सकते हैं हम लोग, ए का 1 सॉरी ए का 2 सी का 1, इवन दो यू वांट टू क्रॉस चेक। बी का क्या है, बी का विल बी 4 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना, न्यूक्लियस किसको ब्रेक करता है, फॉस्फोडाइएस्टर। बचा क्या है, डी अमाइलेज विल, टी का 3, तो आंसर विल बी 1। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 162 क्या है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में मेंशन किया है उन्होंने। अभी देखो इधर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जांपल ऑफ, क्या है करके पूछा है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, ये कौन सा है, ये एनालोगस ऑर्गन है। एनालोगस ऑर्गन कौन सा इवोल्यूशन दिखाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है ना, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहां दिखा रहा है, होमोलोगस अगर होगा तो डाइवर्जेंट, एनालोगस होगा तो कन्वर्जेंट। चलो मूव ऑन हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है चैप्टर का नाम। तो इन्होंने एक्सपीरियंटरी कैपेसिटी पूछा है, ईसी एक्सपीरियंटरी कैपेसिटी हमें पता है, एक्सपीरियंटरी कैपेसिटी का वैल्यू क्या है, ईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरबी, ईआरबी सॉरी ईआरबी सॉरी, ईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआरबी। टीवी टीवी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम मतलब ए का 2 आना चाहिए, ए का 2 ऑप्शन में है, 1:2, ए इज 2। अभी नेक्स्ट देखेंगे एफआरसी, एफआरसी क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी क्या होता है, एफआरसी इज नथिंग बट ईआरबी प्लस टीबी होगा प्लस आरबी, आई एम सॉरी प्लस आरबी होगा। तो वैसे कौन सा ऑप्शन है, ईआरबी प्लस आरबी, हाँ फोर्थ ऑप्शन है। बी का रहेगा 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, हाँ तो थर्ड ऑप्शन ए का 2 बी का 4। अभी सी देख लेंगे, फिर भी सी क्या है, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड है, टीबी इंक्लूड है प्लस आईआरबी इंक्लूड है प्लस ईआरबी इंक्लूड है, आईआरबी प्लस ईआरबी, तो क्या होगा 1 है, तो आंसर विल बी 3। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 164, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, देख के मैं बता कर लेता हूं, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। तो इवोल्यूशन में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, अगर एक पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो कर रहा है तो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, नॉट अफेक्ट पूछा, विच विल नॉट अफेक्ट, वो कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर वो कांस्टेंट मतलब जीन पूल का कुछ वेरिएशन हो रहा है, अंदर बाहर हो रहा है, इमिग्रेशन एमिग्रेशन हो रहा है, तो
अफेक्ट होगा। इधर नॉट अफेक्ट पूछा गया है, तो नॉट अफेक्ट जीन माइग्रेशन तो नहीं, रिकॉम्बिनेशन भी नहीं, कांस्टेंट जीन पूल मैंने अभी बताया था कांस्टेंट होना चाहिए, तो आंसर 2 विल बी द आंसर। चलो we'll move on to the next question 165 इवोल्यूशन सेम देखो सीक्वेंसली अरेंज हुआ है क्वेश्चन इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस आया है। इसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर द सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, तो सबसे पहला कौन सबसे बाद कौन, हमें पता है होमो सेपियंस वी ह्यूमन बीइंग्स आर द लास्ट वन, तो बी शुड बी एट द एंड। अगर बी एंड में है सबसे पहला कौन आया है, फिर सबसे पहला आया है होमो हैबिलिस, तो ए विल बी द फर्स्ट वन। अगर ए पहला है होमो इरेक्टस, उसके बाद आया है ए आएगा, डी आएगा, सी आएगा, बी। तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी, सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 166 में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है ये, हाँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है उन्होंने, कंडक्टिंग पाथवे पूछा गया है। व्हाट इज द कंडक्टिंग पाथवे, वी ऑल नो साइनोएड्रियल नोड, ऐसे नोड प्रेजेंट है, ऐसे नोड से कहां इंपल्स जाएगा, ए बी नोड में जाएगा, ए बी नोड से कहां जाएगा, बंडल ऑफ हिस में जाएगा, बंडल ऑफ हिस में से कहां जाएगा, बंडल ऑफ हिस में से जैसे ही वो पास होके लेफ्ट बंडल राइट बंडल में डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स में जाएगा। तो ये देखो ना सीक्वेंस को अरेंज कर लेते हैं हम लोग फटाक फटाक से। ई पहला आना चाहिए ऐसे नोड, ई कहीं भी है, ई एक दो जगह पे है, ई पहला, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो ई को मैंने पहला अरेंज किया हूं, ठीक है। उसके बाद ई के बाद अभी मुझे ए बी नोड में जाना है, ए बी नोड में जाना है, तो ई के बाद सी, ई के बाद सी, तो मुझे तो डायरेक्टली देखो ना ई के बाद सी आया है, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। यस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इवन दो इफ यू वांट टू चेक विल चेक नाउ। ई के बाद सी, ऐसे नोड ए बी नोड, ऐसे नोड पहला, ए बी नोड दूसरा, उसके बाद किस में जाएगा, ए बी बंडल में जाएगा तीसरा, उसके बाद ए आ रहा है, उसके बाद डायरेक्टली बंडल ब्रांचेस पुरकिंजे फाइबर्स। ओके तो आंसर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर का है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है, which are the factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin curve in the alveoli region, not in the tissue पूछा नहीं है, alveoli में alveoli present है, तो इधर ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन होना है, एसोसिएशन होना है, तो कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा इधर फैक्टर कौन कौन से फैक्टर चाहिए, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑपोजिट गैस कौन सा है, CO2 बहुत कम है, अगर CO2 कम है तो बाकी सारे के सारे फैक्टर कम हो जाएंगे, कौन कम होगा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा वाला कौन सा ऑप्शन है, इधर 3 और 4, हाई पीओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इधर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, नहीं बिल्कुल गलत है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लेसर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 168 मैथ्स कॉलम बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। मुझे इसमें ना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन देख के समझ में आ गया क्या आएगा, उसका ट्रीटमेंट के लिए एम्फिसीमा, एम्फिसीमा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो ए का है 3, अरे बाबा ए का 1 में भी है 4 में भी है, दो ऑप्शन है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, डी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किसके लिए किया जाता है, एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी आंसर है, डी का रहेगा 2, A3D2, 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 तो फर्स्ट ऑप्शन A3D2, बी वाला 4 है, बी ये तो ट्राई 1 ए बी इज कॉर्न बोरर, 1 इज नथिंग बट द कॉटन बॉल वर्म, तो आंसर विल बी द फर्स्ट आंसर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया है, कौन से चैप्टर से आया है, ये आया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है। FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल, FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा, यस इट इज ट्रू इन फीमेल एंड लेडिक सेल इन मेल बोला गया है, मेल फीमेल के केस में ओवेरियन फॉलिकल, मेल के केस में इट इज नॉट लेडिक सेल इट इज सर्टोली सेल, तो ये तो स्टेटमेंट में गलत बोलूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल सेक्रेट ईस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल IC इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेट एंड्रोजन, ये करेक्ट है, ओवेरियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा और एंड्रोजन कहां से रिलीज होगा, लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल भी बोल सकते हैं, तो A इज ट्रू, R इज रॉन्ग, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, A इज फॉल्स, R इज ट्रू, ऐसा कौन सा है, A इज फॉल्स, R इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 170 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसा फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड का डायग्राम दिया है, उसमें से x और y क्या है करके पूछा है, डायग्राम है ओके, x क्या रहेगा और y क्या रहेगा, x इज नथिंग बट द ओराई साइट है ना ये,
X is orai site. Y क्या है? Y is ROP. रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कंट्रोल करने वाला प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा वो। तो ओराइज साइट जीन एक्सिस फॉर प्रोटीन, ना गलत। जीन एक्सिस ना गलत। जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओराइज साइट क्या होता है? कॉपी नंबर को बढ़ाता है, रेप्लिकेशन को ज्यादा बढ़ाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, करेक्ट, एकदम परफेक्ट है। एंड लिंक डीएनए एंड वाई फॉर involved in the replication of plasmid, replication of plasmid row. So fourth will be the correct answer. चलो we'll move on to the next question. 171 as a column human health and disease का क्वेश्चन है। human health and disease, तो जब ये देखा जाएगा कोकेन, मुझे तो कोकेन के लिए मैं एरिथ्रोजाइलम कोका बोलूंगा। ओके, ए का आंसर है 3। एक ही ऑप्शन है, देखो तुम लोग ही को देख लो, ए का एक ही ऑप्शन है 3। तो सेकंड ऑप्शन में मार्क कर लो, आंख बंद करके मैं मार्क कर सकता हूँ सेकंड ऑप्शन। फिर भी हम लोग देखना है तो देख लेंगे। बी का आएगा हीरोइन, हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपावर सोनिफेरम, तो बी विल बी 4। See, morphine is normally used in the surgery. After surgery, it is given. So effective sedative is sedative in surgery. Sedative is nothing but it's a type of painkiller. Also, we can say sedation, calmness, coolness create करता है. The next is marijuana. Marijuana is cannabis sativa. So here A is 3, B is 4, C is 1, D is 2. So option will be the second option. It's correct. Next we'll move on to the 172. Consider the following statement. 4 statement दिया गया है. Annelids are true coelomate. Yes, perfect NCERT statement. Poriferans are pseudocoelomate. No, they are acoelomate. Ascalminthus are acoelomate. No, they are pseudocoelomate. उल्टा दिया है, देखो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया है उन्होंने. Platyhelminthes are pseudocoelomate. Platyhelminthes, I think they are acoelomate. So answer will be only A is correct. Only A is correct. Only A. चलो, fourth option. We'll move on to the next question. 173 खत्म होते आ गया है, लास्ट थोड़े ही क्वेश्चंस बचा है अभी। 173 देखेंगे। स्टेटमेंट 1 as well as स्टेटमेंट 2 मेंशन किया है। In the nephron, the descending limb of loop of Henle. We know how the nephron look like. पहला Bowman's capsule के बाद PCT region आएगा, PCT region के बाद loop of Henle आएगा, loop of Henle के बाद DCT region आएगा, है ना? तो ये है nephron का structure, collecting duct. अभी उन्होंने पूछा है nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable. No, it is permeable to water. ये गलत है। Proximal convoluted tubule is lined by PCT. PCT is lined by simple columnar. No, it is lined by simple cuboidal epithelium. Both the statement are galat. Both statement 1 and 2 are false. चलो, we'll move on to the next question. 74 locomotion movement का क्वेश्चन है इधर। तो अभी हम लोग देखेंगे joints का मेजर क्या पूछा है उन्होंने, joints and then ये क्या है, अच्छा कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस इज इमूवेबल जॉइंट, कहाँ रहेगा, स्कल में रहेगा। फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट रहता है, फाइब्रस स्कल दिखता है, बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं कर सकता है। तो ए विल बी 3, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक 3 कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं सेकंड को ही टिक कर लूंगा। फिर भी मुझे और एक बार बैक चेक करना है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट का क्या काम है, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ प्रेजेंट रहता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट रहता है, व्हिच अलाउ द लिमिटेड मूवमेंट ओवर देम। So A to B will be 1. Hinge joint. Hinge joint is nothing but we can see in the knee region, we can see in the elbow region. So knee joint. And then ball and socket joint. It is a complete rotation which helps. So I have drawn A is 3, B is 1, C is 4, and D is 2. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4. Answer B. Chalo, we'll go on to the next question. 175. बहुत कम क्वेश्चन बचा है। Which of the following is not natural traditional contraceptive method? Natural or traditional contraceptive. This is natural. Coitus is natural. Interruptus. Periodic abstinence is also natural. Which is not a natural one will be false. We'll move on to the next question. Mesocoelom chapter देखो, animal kingdom का क्वेश्चन है ये। Pleurobrachia. Pleurobrachia is example of Ctenophora. A is 2 कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, either 1 और 4. Radula mollusca है, B is 1, A is 2, B is 1. I am telling it is option 4. A is 2, B is 1. C देख लेंगे, C is nothing but stomachoteta, yes 4. Air bladder ostick tracts में रहता है, तो answer will be the fourth option. चलो we'll move on to the next question. 77 again ये आ गया है mesocoelom. इसमें क्या पूछा है, कौन से चैप्टर का है ये है सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन। सैटेलाइट इज नथिंग बट द क्रोमोसोम में दिखेगा, सैटेलाइट क्रोमोसोम, यू माइट हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर लाइक दिस, सीन द स्ट्रक्चर लाइक दिस, उसमें एक छोटा सा पार्ट रहेगा, उसके ऊपर सैटेलाइट रीजन रहेगा ना, तो इसको हम लोग सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलेंगे। तो सैटेलाइट हो गया है क्रिस्टे इज नॉर्मली फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो C is 4, A is 3, C is 4 and D is 3 मुझे सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, फिर भी एक बार देख लेंगे। A का क्या रहेगा,
ए कहाँ रहेगा, ए सीलियन फ्लैजेला, यस, तो A is 2, B is 1, आंसर will be the second option. अब मूव हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 178. Which of the following statement is incorrect पूछा है. बायोरिएक्टर के बारे में सब कुछ बायोरिएक्टर दिख रहा है मुझे. बायोरिएक्टर is used to produce small scale bacterial culture. ना large scale bacterial culture, मुझे large product बनाना है, huge product बनाना है तो बायोरिएक्टर यूज करूंगा. तो this one is the correct incorrect. Have agitator system, yes they are required, agitator system required है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर्ली होना चाहिए उधर, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट. हाँ, प्रॉपर कंडीशन देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, एवरीथिंग शुड बी पीएच देना पड़ेगा, तो दिस इज आल्सो करेक्ट. स्टरिंग टाइप यानी कंटीन्यूअसली रोटेट करता है, यस दिस आल्सो. तो 1 विल बी द इनकरेक्ट पूछा है ना, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 179. मैथ्स कॉलम आ गया, बाप रे. सेल साइकिल, सेल डिवीजन का क्वेश्चन है. डायकाइनेसिस, जाइकोटिन, लेप्टोटिन, पैकाइटिन, ये तो कौन सा फेस है, प्रोफेस का बारे में बोला है. प्रोफेस में सीक्वेंस क्या है, लेप्टोटिन, नहीं गलत, करेक्ट, लेप्टोटिन, जाइकोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, ये सारे सीक्वेंस है. तो डायकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata. A is 2 is only one option, first option. Even though B is 4, B is 6, B पैकाइटिन appearance of recombination nodule, yes. C will be synaptonumal complex formation होगा. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, है ना, दोनों पैरिंग करते हैं, पैरिंग करने के बाद क्या होगा, इधर बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, साइनैप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स. इस प्रोसेस को हम लोग साइनैप्सिस बोलते हैं. तो साइनैप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सी, यस करेक्ट. लेप्टोटीन में क्या रहेगा, हाँ मैंने हम लोग इसके पहले भी लेप्टोटीन का एक स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन में था, लेप्टोटीन क्रोमोसोम लुक लाइक अ थ्रेड. तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन. A is 2, B is 4, C is 1 and D is 3. चलो we'll move on to the next question. 180. I hope only 20 questions are remaining. Fast we'll do फटाफट. Human health and disease का क्वेश्चन है ये. Common cold is caused by rhinovirus. Directly A is 3. A is 3. Only one option. First option. Yes. So by this way you can easily can score many number of marks, even though you have to check the other options also. So A is 3. B, trypozoan is produced by Plasmodium, malarial parasite. Then next Vidal test is used for typhoid. Say A is, क्या लिखा हूँ मैं इधर, A is what? A is 3 and B is 1 and then Vidal test is for typhoid, so 2 आएगा. D allergy is nothing but dustmite. 3 1 2 4, 3 1 2 4 first option. चलो we'll move on to the next question. 181. बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, 50% वेटेज बायोलॉजी का ही है. देखो 100 क्वेश्चंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ओनली 45. सो वी हैव टू वर्क अ लॉट, वी हैव टू गिव टाइम लॉट फॉर बायोलॉजी आल्सो. व्हाइल रीडिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. असर्शन रीजन क्वेश्चन है. breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby. Yes, it is most important. Human health and disease का क्वेश्चन है ये. Assertion is very true. Colostrum contain, the first milk colostrum contain large amount of antibody, fluid antibody, that is IgA present होता है उनके केस में. तो this is also correct statement. और दोनों मैच करता है. Assertion is मतलब reason is explaining the correct, the assertion explain कर पा रहा है. तो I am telling A is correct, R is no. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So answer will be third option. चलो we'll move on to the next question. 82. मैथ्स का कॉलम है Pterophyllum. Animal kingdom. Example नाम पूछा है, सिर्फ साइंटिफिक नेम क्या है करके पूछा गया है. Pterophyllum is what? Pterophyllum is angelfish. Pterophyllum is angelfish. Mixin is nothing but hagfish. Then Pristis sawfish. तो इधर मैं बोलूंगा A का है 3, B का है 1, C is 2, D is 4. 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4. Fourth option 3 1 2 4. Next question. TI plasmid बायोटेक का क्वेश्चन है. TI बायोटेक का क्वेश्चन है ये. तो TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens stand for, TI is nothing but tumor inducing plasmid. ये तो देख के ही मार्क करना है तुम लोगों को, इसमें गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए तुम लोगों का. नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following is not a component of fallopian tube? fallopian tube में कितने कंपोनेंट रहते हैं? fallopian tube एक्चुअली कहाँ से चालू होता है, ये ओवरी करके समझ लो. this is the fallopian tube which connects nothing but the uterus, connect होता है इधर, राइट. this is the uterus part, this is the fallopian tube, इधर से कनेक्ट हो रहा है, इधर से 3 पार्ट रहता है. एक को बोलते हैं हम लोग फिम्ब्रिए, इन्फेंटिबुलम, नेस्टमस. तो फिम्ब्रिए, इन्फेंटिबुलम ये तो है, एम्पुला भी है, जंक्शन बोलते हैं फिम्ब्रिए
तो यूटेराइन फंडस दिस इधर से फेलोपियन ट्यूब चालू होता है, ये वाला पार्ट तो नहीं है, तो यूटेराइन फंडस विल बी नॉट अ कंपोनेंट, तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन 85 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम की तो 3 नंबर 3, तो ट्राइसोमी A is 3 I don't know alpha for example alpha beta alpha और बीटा मुझे पता नहीं है, मैं क्लिनफिल्टर करूंगा, क्लिनफिल्टर इज नथिंग बट व्हाट 47, मतलब एक्स कंडीशन एक्स क्रोमोसोम उधर ज्यादा रहेगा, तो क्या है डी का क्या रहेगा 2 रहेगा, ए का 3 डी का 2, ऐसा कोई ऑप्शन है ए का 3 डी का 2, ए का 3 डी का 2, फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो ए का 3 डी का 2। बी क्या है, बी आएगा 14, सॉरी अल्फा थैलेसेमिया है 16 एंड डी सी इज 1, आई एम सॉरी, ओके करेक्ट करेक्ट ही जा रहे हैं हम लोग। बी का क्या रहेगा 16 क्रोमोसोम एंड बीटा थैलेसेमिया का 11th क्रोमोसोम। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहेगा 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 186। The following are the statement about non-chordates. Non-chordates का statement दिया है, pharynx is perforated by gill slits, कुछ बोला है इधर, pharynx is perforated by gill slits, is perforated, हाँ है, लेकिन chordate का फीचर है, non-chordate का नहीं है। Notochord is absent, yes true, is present in the dorsal region, ना ventral में present है, heart is dorsal is present, okay मैं मान सकता हूँ। Post-anal tail is absent. Yes, it is also correct. So B, D, and E correct है. B, D, and E. B, D, and E. First option, first answer is correct. नेक्स्ट हो जाते हैं 187 और बचा है 12 ही क्वेश्चन बचा है, फटाफट कर लेंगे हम लोग। ये है इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, इवोल्यूशन का ईयर, हाँ लास्ट वाले में जो ईयर दिया है ना, ईयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर इन द सेंस ईरा है, पीरियड है, इपोक है, उसके बारे में जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीसोजोइक ईरा में एक्चुअली क्या हुआ था, कौन डोमिनेट कर रहे थे, डोमिनेट बर्ड्स एंड रेप्टाइल डोमिनेट कर रहे थे, ए का 3 होना चाहिए। और प्रोटेरोजोइक में लोअर इनवर्टिब्रेट डोमिनेट कर रहे थे, यानी कि बी का रहेगा 1। सिनोजोइक एरा में मैमल्स डोमिनेट कर रहे थे, सी का रहेगा 4। और पैलेजोइक में डी का रहेगा 2 फिशेस। तो 3142 3142 3142 सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है हर एक क्वेश्चन का, इतना तुम्हारा प्रैक्टिस रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट 1 and 2, the cerebral hemisphere are connected by nerve tract known as corpus callosum। हाँ दोनों cerebral hemisphere are connected by a tract, nerve tract fiber बोलते हैं, corpus callosum true statement है। The brain stem consists of medulla oblongata, pons and cerebrum बोला है, brain stem पीछे है लेकिन आगे का ये तो बिल्कुल गलत है, pons भी आएगा उधर, तो मैं तो ये स्टेटमेंट 2 को गलत मान रहा हूँ। 1 is correct 2 is incorrect, 1 is correct 2 is incorrect, हाँ फर्स्ट वन आई है। चलो मूव हो जाते हैं नेक्स्ट 199। We are going to complete the, हाँ ये वाला है, identify the correct option A, B, C, D with respect to the spermatogenesis, human reproduction का क्वेश्चन है ये। तो इधर GnRH gonadotropin releasing hormone will directly release LH luteinizing hormone, और A क्या है, AFSH होना चाहिए। LH कहाँ एक्ट होगा और क्या रिलीज करेगा, FSH कौन से सेल में एक्ट करेंगे, ये याद रखना जरूरी। मैंने इसके पहले भी इसमें हम लोग देखे थे कि FSH क्या रिलीज, मतलब कौन से सेल में एक्ट करेगा, सर्टोली सेल में एक्ट करेगा, कौन से सेल में, सर्टोली सेल। एंड्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला है ICSH या लेडिक सेल, लेडिक सेल। तो A रहेगा FSH, B रहेगा लेडिक, A रहेगा FSH, B रहेगा लेडिक, A रहेगा FSH, B रहेगा लेडिक, सी रहेगा सर्टोली, डी रहेगा स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि प्रोसेस कौन सा प्रोसेस करवाता है, स्पर्मिन, तो आंसर 3 रहना चाहिए। चलो मूव हो जाते हैं 90th क्वेश्चन, और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बचा है अपने पास। 190 आरएनए पॉलीमरेज 3, पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3 सब कौन से ट्रांसक्राइब करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल 3 क्या ट्रांसफर, टीआरएनए ट्रांसक्राइब करता है, टीआरएनए कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो ए का क्या आना चाहिए 4, तो ए का रहेगा 4। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किसके कारण, रो फैक्टर के कारण, रो फैक्टर के कारण टर्मिनेशन होता है, तो बी का रहेगा 3, तो A4B3 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 A4B3। सी का स्प्लाइसिंग किसके कारण होता है, स्प्लाइसिंग होता है SNRPNS, and then data box is nothing but the promoter box, to answer directly A1, A is 3, A is 4, sorry, A is 4, B is 3, C is 1, D is 2, तो option 2 will be the correct answer। मूव हो जाएंगे नेक्स्ट में, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर 191, और सिर्फ 10 क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस आ गया ऑलमोस्ट।
एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम, क्रेटिनिज्म किसके कारण होता है, क्या होता है? चलो अभी मैं एक्रोमेगाली देखता हूँ। बी, हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कहीं मेंशन किया है? ये तो थायराइड है, थायराइड है, हाँ इधर है, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो बी रहेगा 4, तो बी रहेगा 4 और बी रहेगा 4 है ना। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट, क्रेटिनिज्म और कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम किसके कारण होगा? एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की ज्यादा रिलीज होने के कारण कुशिंग सिंड्रोम होगा। तो सी रहेगा 1, सी रहेगा 1 है ना। तो बी है 4, सी है 1। तो ए देख लेंगे, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होने के कारण होता है गॉइटर। तो ए रहेगा 3, ए इज 3, बी इज 4, सी इज 1, ए इज 3, बी इज 4, सी इज 1। तो आंसर तो सेकंड ऑप्शन मुझे मान रहे हैं हम लोग। तो डी देखे नहीं, डी क्या आएगा? हाइपोसेक्रेशन, कम सेक्रेशन होने के कारण क्रिटिनिज्म, ज्यादा सेक्रेशन होने के कारण एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। चलो मूव होते हैं नेक्स्ट 92 में। ये क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का क्वेश्चन है। सेल, ग्लैंड, टिश्यू, कौन से टिश्यू कौन से लोकेशन में प्रेजेंट है? यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक ही सेल है, वो ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। गॉबलेट से, गॉबलेट से एक को देके ही मार्क कर लूंगा 3, एक को 3 मार्क कर लिया हूँ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक को 3 मार्क कर रहा हूँ मैं इधर। अभी बी को क्या मार्क करना है हम लोग देखेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? कंपाउंड एपिथेलियम मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी में होगा कंपाउंड एपिथेलियम। तो बी का रहेगा 4। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला है ना। एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन से ग्लैंड एंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है? पैनक्रियास एंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है। और सी का आएगा सैलिवरी ग्लैंड, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हाँ, तो आंसर क्या रहेगा? ए का रहेगा 3, बी का रहेगा 4, सी का रहेगा 1 एंड डी का रहेगा 2। 3 4 1 2। हाँ फर्स्ट ही है, फर्स्ट ऑप्शन। चलो मूव हो जाते हैं 93rd क्वेश्चन में। Bone marrow is the main lymphoid organ. Yes, it is the main lymphoid organ for whom? Where all the blood cells, including lymphocytes and yes, true statement. Both bone marrow and thymus provide the site for microenvironment for the development and maturation of T lymphocyte. हाँ करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है इधर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। कौन सा है इधर? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं इनकरेक्ट, हाँ दोनों करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। चलो मूव हो जाते हैं 194th क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट कंप्लीट करने आ गए हम लोग। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड इन केस ऑफ कॉकरोच, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। कॉकरोच का क्वेश्चन है, लोग बोल रहे थे कॉकरोच का नहीं है, कॉकरोच का पार्ट भी है। इसमें से 2 क्वेश्चन है, एनएल सरकार का भी क्वेश्चन हम लोग इसके पहले देखे थे कॉकरोच में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। फूड कौन स्टोर करता है? क्रॉप स्टोर करता है। तो डायरेक्टली ए का 4, 2 ऑप्शन में इधर 1 और 3। ए का 4 है, बी का देख लेंगे एक बार। रिंग ऑफ 6 to 8 blind tube at the junction of foregut as well as midgut बोला है। foregut और midgut में क्या प्रेजेंट रहता है? गैस्ट्रिक सी के प्रेजेंट रहता है। और 100 to 150 येलो कलर thin filament at the junction of midgut and hindgut is malpighian tubule actually. C will be 3. C will be 3. C will be 3 and B is nothing but 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए? C will be 3 होना चाहिए और B क्या रहेगा? 2 रहेगा। यस, B 2 रहेगा। 4 2 3। अभी बचा क्या है? ग्राइंडिंग द फूड गिजार्ड। D is 1, D is 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1। मुझे कहाँ दिख रहा है 4 2 3 1? थर्ड ऑप्शन 4 2 3 1। चलो अभी मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 195। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा में 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है? जिसका लूप ऑफ हेनले एकदम छोटा रहता है, कॉर्टेक्स रीजन। जिसका लूप ऑफ हेनले एकदम लॉन्ग रहता है, रन होता है, डीप होता है मेडुला में, उसको क्या बोलेंगे? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अभी कॉर्टिकल गिवन रिगार्डिंग जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में पूछा है उन लोग। Loop of Henle of juxtamedullary nephron run deep into the medulla. Yes, it is a correct statement. Juxtamedullary nephron outnumber the cortical nephron. No. Located in the column of Burdini. ये भी गलत है। तो आंसर एक ही है, renal corpuscles of the juxtamedullary nephron lie in the outer portion of the renal medulla. नहीं, अंदर तक डिप होता है। तो फर्स्ट वन विद द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट। 96 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ईसीजी के बारे में मेंशन किया है। ईसीजी का क्वेश्चन है ये, तो लास्ट ईयर पीवाई मतलब इसके पहले वाले पीवाईक्यू में भी आया था। सिर्फ पी था, क्यू आर था, टी था, सिर्फ ये वाला नहीं था, वो एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया उन्होंने।
तो हमें पता है ईसीजी में कितने रहते हैं, नंबर 1 टी वेव रहता है, उसके बाद रहता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है, एंड देन राइट, सो दिस इज अ नॉर्मल ईसीजी। तो पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड देन टी वेव, है ना। तो ये पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए का रहेगा 3, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, बी का रहेगा 2, ए का 3, बी का 2। और टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो बचा क्या है, सी का रहेगा 4 और डी का रहेगा 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, फोर्थ ऑप्शन। चलो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और तीन ही क्वेश्चन बचा है अपने पास। एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड चैप्टर वेरिएशन का क्वेश्चन है ये। ABO blood grouping system, the blood group of father is B positive, mother is A positive and child is O positive. The respective genotype, genotype क्या होता है, for example B positive के केस में हम लोग कंसीडर करेंगे, it is represented by the multiple allele के अंदर आ गया ना ये, तो इनका allele का ऐसा क्या हो सकता है, IA बोलो IB, और इस कंडीशन में भी हो सकता है, और IB हो सकता है, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, और इस कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन इधर चाइल्ड का है ओ पॉजिटिव मेंशन किया है, अगर मैं ये कंडीशन लूंगा तो दोनों डोमिनेंट एलील आ जाएंगे। अभी फादर का जब भी मेंशन किया है, फादर इज मदर, ओके फादर ब्लड ग्रुप इज बी, मदर इज ए, ठीक है फादर बी है, मदर क्या है, मदर ए है, तो इनके एलील क्या रहेगा, अगर ये ऐसा हो सकता है आई ए हो सकता है, या तो आई ए स्मॉल आई हो सकता है। लेकिन चाइल्ड का ग्रुप क्या है, चाइल्ड का ग्रुप ओ है, तो अगर चाइल्ड का ग्रुप होगा तो ओ होगा, तो ये कंडीशन ही रेस्पॉन्सिबल है ओ ग्रुप के लिए, क्योंकि देखा जाएगा तो आई ए इसका कॉम्बिनेशन जब भी करेंगे आई ए आई बी होगा, या तो आई आई होगा, आई आई इज नथिंग बट ओ ग्रुप, तो ओ ग्रुप चाइल्ड है, तो इसमें आई ये वाला कंडीशन देखेंगे, आई ए आई बी है, चाइल्ड का आई आई हैगा, मदर का ए है, फर्स्ट वन ओनली ए, बाकी तो कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि ए भी पॉजिटिव हो जाएगा उधर, तो ओनली ए ओनली थर्ड ऑप्शन। चलो मूव करते हैं 98 वाले क्वेश्चन में। 98 का क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है ये। Gauss competitive exclusion principle state that two closely related species competing for different resources, for different resources बोला है, नहीं बिल्कुल गलत है, सेम रिसोर्सेस होना चाहिए ये, तो आई एम टेलिंग द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज गलत। According to the Gauss principle, during the competition, the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting. Yes, if the resources are limiting, one will be eliminated out from the system. So here, the answer will be first is false, second is true. Statement one is false, statement second answer. चलो मूव करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, हम लोग रिगार्डिंग द कैटालिटिक बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल में इधर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कैसा रिएक्शन ये बनता करके, तो सबसे पहले हम लोग एंजाइम बात करेंगे और सबस्ट्रेट देखेंगे। तो क्या होगा, एक्टिव साइट प्रेजेंट रहेगा, कहां प्रेजेंट रहेगा, एंजाइम के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, तो कौन आके बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फर्स्ट सबसे पहला सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट होना चाहिए, ये नंबर 1 होना चाहिए, ई पहला होगा। उसके बाद उनके बीच में बॉन्ड बनता है ना, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये तो ये रहेगा 2, तो उसके बाद ई के बाद ए आना चाहिए। उसके बाद जब भी देखा जाएगा फ्री एंजाइम नो रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, हाँ केमिकल बॉन्ड इधर टूटता है उनके बीच में, तो ये तीसरा नंबर में होना चाहिए, तो मैं डी को ले रहा हूँ नेक्स्ट। उसके बाद जैसे ये टूटेगा इधर बाहर रिलीज हो जाएगा, एंजाइम वैसे के वैसे रिलीज हो जाएंगे बाहर, इधर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, है ना, तो रिलीज ऑफ प्रोडक्ट विल बी द फोर्थ वन। तो डी के बाद सी रहेगा, तो बचा क्या है, और ए बी बचा रहेगा, तो आंसर है ई ए डी सी बी, ई ए डी सी बी, थर्ड ऑप्शन। चलो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। So 200 question given below are two statement. Mitochondria statement 1 ये कौन सा चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है। Mitochondria and chloroplast are double membrane bond organelle. Yes, true, they are double membrane bond organelle. This is chloroplast and inner membrane of mitochondria is enfolded into a structure. Yes or no? Is enfolded into a structure.
नोन एज क्रिस्टे, ये मैथ कॉलम भी आया था हमें, राइट। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन है, ट्रू है फर्स्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर्ड टू क्लोरोप्लास्ट ना, हाँ ये तो बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इज इन द यूनिट ऑफ लाइफ, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 200 क्वेश्चन इन अ सिंगल गो। तो तुम्हें भी ये सारे स्टेटमेंट तुम्हें भी चेक करना है, आंसर की चेक कर लेना है, चेक कर लो तुम लोग। और 25 के स्टूडेंट्स अगर तुम लोग भी देख रहे हो तो तुम लोग भी चैप्टर के वेटेज देखना बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजी में हम लोग कंप्लीट 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ऑल द बेस्ट, चलो बाय।